power and non-conventional energy, resources, tax and excise, state lotteries, economics and statistics may move demand number allotted to him. Honorable Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying charges during the year ending 31st day of March 2022 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 7, 34, 36, 50, 54, 51, 66. Minister, Public Health, Engineering and Water Supply, Department of Tirap, Changlang and Longding, Information Technology, please move demand numbers allotted to him. Because sir, I want someone to assist me. Anybody? Yeah. Some technician. अच्छा ये ईवान का टेक्निक ईदान में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है दिस आपका ये लिस्ट ऑफ बिजनेस में होगा ना कोई तो नहीं आ रहा है. In the meantime, I'll you get it corrected. I'll call the other minister. Minister, Rural Works, Science and Technology, may please move demands number allotted to him. Minister, Rural Works, Minister RWD, please. नहीं हुआ सर हाँ? आपका भी नहीं है? पेपर नहीं है मॉनिटर में नहीं आ रहा है. हार्ड कॉपी दे देना चाहिए हार्ड कॉपी से रहने से मॉनिटर में नहीं है यहाँ में है ही नहीं आ रहा है. वो सेक्रेटरी का है. ये सर तो बजट का भी हम लोग को क्या नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखा कैसे बात वो दिया है सर नहीं ये सॉफ्ट कॉपी है उसको आप प्रिंट आउट कर मैंने किया है स्पीच हाँ दे ये all the ministers have the same problem. आप सबको प्रॉब्लम है. नहीं है सब में नहीं आ रहा है. हार्ड कॉपी दे दो ना सबको मिल गया है ना. तो should we या यू कैन कंटिन्यू yeah Minister Public Health, please. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March स्पीच में सर 2022 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59 and 73. The Chief Minister may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022 in the respect of the head of demands entered in the second column and thereof against the demand number 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 25, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 51, 63, 67, 71 and 78. The Minister Rural Works, Science and Technology may please move demand number allotted Speaker, to him. sir, on the recommendation of Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of the March 2022 in respect of the heads of demand
enter in the second column thereof against demand number 26 and 49. Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government Estates, Civil Supplies and Consumer Affairs, Geology and Mining may move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 22, 37, 57, 61 and 68. The Minister, Home and Interstate Border Affairs, Rural Department of Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 8, 27, 35, 42, 53, 69 and 72. The Minister, Industries, Skill Development, Textile and Handicrafts, Trade and Commerce, Labor and Employment, Cooperation may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Pradesh, I beg to move that the sum not exceed the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or worse defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 19, 20, 29, 60 and 79. The Minister, Youth Affairs and Sports, Water Resources, Environment and Forest may please move the demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh or towards defraying the charge during the year ending 31st day of March 2022. In respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38 and 52. Minister Health, Kaniwa, na? The Minister Health, Family Welfare, Social Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Empowerment and Tribal Affairs. May please move the demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I wish to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for towards defraying the charge during the year ending 31st day of March 22 in respect of the head of the demand entered in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80 and 81. Thank you. The Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry, Veterinary, Dairy Development, Fishery may move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of
the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of order paper be granted to Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh or towards the paying the charges during the year ending 31st day of March 2022, respect of the head of and entered in the second column hereof against demand number 24, 28, 43 and 38. The Minister Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management, may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that sums not exceeding the respective amounts shown in third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of State of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022. In respect of heads of demands entered in the second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. Thank you. The Minister Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs may please move demand numbers allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the State of Arunachal Pradesh or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2022 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. Now that all the supplementary demands for grant for the year 2021-22 have been moved and are before the House, any members willing to speak on these demands may do so. Now, the House will take up for voting on supplementary demands for grants for the year 2021-22. The question is that the supplementary demand for the year 2021-22 be passed. Those in favor may say ayes. Ayes. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The supplementary demand for the year 2021-22 are passed. The next item is introduction of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022. Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may seek to move for the leave to introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that leave be granted to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022. Now the question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Ayes. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may now introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be introduced. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022 is introduced. Item number 5, consideration and passing the Arunachal Pradesh Appropriation Number 1 Bill 2022. Now the Deputy Chief Minister and Minister in charge Finance may seek to move for consideration of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be taken into consideration. Now the question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2, 3 and the schedule to stand part of the bill. Those in favor may say aye. Ayes. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2, 3 and the schedule are adopted.
Now, the question is that Clause 1 enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1 enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister may move for passing of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The Arunachal Pradesh Appropriation Bill number 1, 2022 is passed. Now the House will take up general discussion on demands for the grant for the year 2022-23. The Chief Minister may please move demand numbers allotted to him. Same जगह में. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding respective amounts shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demand entered in the second column thereof against demand number 1, 3, 4, 5, 6, 9, 17, 18, 25, 31, 33, 34, 46, 47, 51, 63, 67, 70, 71, and 78. नीचे वाला नीचे उसको भी वापस करना है सर. उसको वापस करना है सर. I'll request all the honorable ministers to check the monitor. If there's any hitch, call the technician. So now the Deputy Chief Minister Mr. Speaker, and sir, Minister, let me sir. on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the must be granted to the Minister in charge of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ended 31st day of the March 2023. In respect of the heads of demands entered in the second column thereof, fund number 7, 13, 34, 36, 54, 55, 50, 66. The Minister of Public Health Engineering and Water Supply, Department of Tirap, Changlang, Longding, and Information Technology may please move demand numbers allotted to him. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 59, 65, and 73. The Minister Rural Works, Science and Technology may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending
being 31st day of the March 2023 in respect of the heads of demands enter in the second column thereof against demand number 26 and 49. Thank you. The Minister, Urban Development, Municipal Administration and Government Estates, Civil Supplies and Consumer Affairs, Geology and Mining, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 22, 37, 57, 61 and 68. The Minister, Health and Family Welfare, Social Welfare, Women and Child Development, Social Justice, Empowerment and Tribal Affairs, may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order phase be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charge during the years ending 31st day of March 23 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against demand number 11, 15, 74, 80 and 81. Thank you. The Minister, Home and Interstate Border Affairs, Rural Development and Panchayati Raj, Parliamentary Affairs, IPR and Printing may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh or and towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 8, 27, 35, 42, 53, 58, 69 and 72. The Minister, Industries, Skill Development, Textile and Handicrafts, Trade and Commerce, Labor and Employment, Cooperation, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that sums not exceeding respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund, State of Arunachal Pradesh, or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2003 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 19, 20, 29, 60, 64 and 79. The Minister, Youth Affairs, Sports, Water Resources, Environment and Forest, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amounts shown in the third column of the order papers be granted to the Minister in charge out of the consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 21, 23, 38 and 52. Thank you. The Minister, Tourism, Transport and Civil Aviation, Land Management, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the third column of order papers to be
granted to the minister in charge out of consolidated fund of state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of heads of demands entered in the second column thereof against demand number 30, 41, 45, 56 and 62. The Minister, Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and Veterinary, Dairy Development, Fishery, may please move demand number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendations of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sum not exceeding the respective amount shown in the third column of the order paper be granted to the Minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards paying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of entered in the second column thereof against demand number 24, 28, 3 and 48. The Minister, Education, Cultural Affairs, Department of Indigenous Affairs, may please move demands number allotted to him. Mr. Speaker, sir, on the recommendation of the Governor of Arunachal Pradesh, I beg to move that the sums not exceeding the respective amount shown in the third column of the order papers be granted to the minister in charge out of consolidated fund of the state of Arunachal Pradesh for or towards defraying the charges during the year ending 31st day of March 2023 in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against demand number 14, 16, 75, 76 and 82. Now that all the demands for grants for the year 2022-23 have been moved and are before the House, members who want to speak on these demands may do so. Now the House will take up for voting on demands for grants for the year 2022-23. The question is that the demands for grants for the year 2022-23 be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The demands for grants for the year 2022-2023 are passed. Now the introduction of Arunachal Pradesh Appropriation Number 2, Bill 2022. Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, may seek to move for the leave to introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that leave be granted to introduce the Arunachal Pradesh Appropriation Bill Number 2, Bill 2022. Now the question is leave be granted to introduce the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The leave is granted. The Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, may now introduce the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be introduced. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 2, Bill 2022 is introduced. Now, consideration and passing of the Arunachal Pradesh Appropriation Number 2, Bill 2022. Now, the Deputy Chief Minister and Minister in charge, Finance, may seek to move for the consideration of the bill. Mr. Speaker, sir, I move that the bill be taken into consideration. The question is that the bill be taken into consideration. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. Now the House will take up clause by clause consideration of the bill. The question is clause 2, 3 and the schedule do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 2, 3 and the schedule are adopted. Now the question is that the clause 1, enacting formula and the long title do stand part of the bill. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. Clause 1, enacting formula and long title are adopted. The Deputy Chief Minister may move for passing of the bill.
Mr. Speaker, sir, I move that the bill be passed. Now, the question is that the bill be passed. Those in favor may say aye. Aye. Against may say no. I think ayes have it, ayes have it, ayes have it. The motion is adopted. The Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2002 is passed. Now we will take up private member resolution. The House will take up the private member resolution regarding old pension scheme. That is GPF. Sri Muchumuthi may move his resolution. बजट डिस्कशन नहीं हो रहा बजट डिस्कशन Now that will take place after that. क्या आपका यहाँ में brief में नहीं है ना? Thank you. Adhyaksh ji. Just wait. Huh? गलत हो गया तो लास्ट में होगा ना Bill number 6. डिस्कशन करके पास कर दिया वही तो गो बाय Passing कर दिया. बस प्रोसीजरल सब पास बेग हो तो पास हो ही गॉल तो पास कौन सा है? ये तो पास हो गए Without discussion pass हो गया. It's a very efficient government. Anyway, we will take up the discussion now. yeah give everybody Anyway, it's already been passed. We'll take up again anyway. कितना गड़बड़ हो गया ये लगता है तो पहले Over excellent. सच तो पूछा था हम तो नहीं बोलते पास हो गया ना आज तो वही तो फेल कर देगा दो बार पूछा है Budget को discuss हो जाएगा जिस नाम दिया है ना कलेक्ट नेम्स ना बुलाएगा ना वो बुलाएगा ना appropriation bill no appropriation का आंसर का I think I have already asked the members to take part, but no one, responded. I waited for a while. मतलब Also. names था ना names दिया था Huh? you have given our names there No. I've already called out if anyone wants to speak, but we have only. no problem. It's okay now. We'll take up for discussion. So we have only 5 names which has come up to me. So I suppose that there are only 5 members who will take part in that discussion. If anyone wants, please send your names as quick as possible because we need to work out the timing. So any members willing to take part in the discussion, I have names from 5 of them. The first is Rodebui. The chat box is also open. If someone wants to, send the name, please send the name in the chat box. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से बजट डिस्कशन में पार्टिसिपेट लेना चाहूँगा। मैं हमारे डायनेमिक ऑनरेबल मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डिप्टी सीएम सारे मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। 2022-23 का जो बजट जो प्रस्तुत किया गया है वो आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक है। खास करके जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, एग्री एलाइट में जो प्रावधान किया है ये काफ़ी लाभदायक है। हेल्थ सेक्टर में खास करके जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अपग्रेडेशन के लिए 250 करोड़ जो रखा है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फायदेमंद होगा हमारे जनता को। और 60 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में एक चुनाव क्षेत्रों में मॉडल जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो रखा है, ये भी
काबिल तारीफ है जो आर्थिक रूल इयरमार्क किया गया है, ये काबिल तारीफ है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रिम्स फॉर पोर्टी बेडेड, जो ट्रिम्स हॉस्पिटल हमारे अरुणाचल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक लोन हॉस्पिटल है कि जहाँ पे हमारा जो काफ़ी इलाज वहाँ चलता है, क्योंकि इंसान का जान तो कीमती है, इसलिए हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत है। इसलिए जो ध्यान दिया गया हमारे बजट में, जो ध्यान दिया गया है, ये काबिल तारीफ है। और खास करके जो एजुकेशन सेक्टर में मिशन शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, स्कूल्स और कॉलेजेस में 1330 करोड़ जो रखा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारा स्कूल कॉलेजों के लिए, स्कूल के लिए। और जो 50 ईयर गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल स्कूल के लिए जो पैसा रखा है 500 करोड़, ये भी एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी लाभदायक होगा हमारे आने वाला पीढ़ियों के लिए। और जो मुख्यमंत्री चिकित्सा कोर्स जो रिपेयर्स वगैरह, सब्जेक्ट टीचर वगैरह पोस्टिंग के लिए जो रखा गया है, ये भी काबिल तारीफ है। ये नहीं हुआ। और एजुकेशन एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलम का ताकत जैसे दुनिया में कोई ताकत नहीं है। आप जो डिग्री हासिल करेगा, डॉक्टरेट इंजीनियर डिग्री हासिल करेगा, मरते दम तक आपका प्रॉपर्टी बन करेगा। आप ज़मीन बिक सकता है, आलीशान मकान बिक सकता है, पैसे चले जाएंगे, लेकिन जो डिग्री हासिल किया, ये मरते दम तक आपका साथ प्रॉपर्टी बन के रहेगा। इसलिए एजुकेशन का क्षेत्र में जो ध्यान दिया गया है, ये काबिल तारीफ है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक सुझाव देना चाहूँगा। मैंने खास करके जो हमारे अरुणाचल में 19 कॉलेजेस है, जहाँ पे यूनिवर्सिटी से लेकर कॉलेजेस में एक सोशोलॉजिस्ट जो प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बच्चों को थोड़ा सा परेशानी झेल रहा है उस सब्जेक्ट को प्रोफेसर नहीं मिलने के कारण। तो थोड़ा सा सरकार से मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान देने से बढ़िया रहेगा। और एग्री एलाइट में जो बजट प्रबंधन किया, ये भी काबिल तारीफ है, क्योंकि हिंदुस्तान में जब हम आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, हम ऑर्गेनिक अपना खुद पैदा करना है, क्योंकि आज मिलावट सब्जी मिलावट खाने के वजह से हमारे यहाँ में तरह तरह की बीमारी, यहाँ में कैंसर बीमारी का डिजीज़ है, किडनी फेलर है, स्किन डिजीज़ है, लिवर सिरोसिस है, तरह तरह की बीमारी पैदा होता है। इसलिए अपना यहाँ में ऑर्गेनिक जो सब्जियाँ पैदा के लिए, अच्छी मच्छी पैदा के लिए जिन्होंने जो बजट में रखा है, ये काफ़ी लाभदायक है, काफ़ी काबिल तारीफ है। और हमारे यहाँ पे जो फार्मर लोग, सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग और जो संगठन एनजीओस काफ़ी रुचि है अभी काम करने के लिए, उनको प्रमोट किया जाएगा इस स्कीम से। जैसे कि बागवानी योजना के जरिए, आत्मनिर्भर का जरिए हमारे अरुणाचल को भी हम ऑर्गेनिक स्टेट या आत्मनिर्भर बनाना है। और काफ़ी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपना इंटरेस्ट ले रहा है कि एग्री एलाइट में, फिशरी में काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। उसके बाद मैं अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में आऊँगा। मैं भी टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का एडवाइज़र हूँ। तो खास करके हमारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में जो अभी कॉर्पस फंड रखा है, 2 करोड़ कॉर्पस फंड रखा है। इनकरेज सेल्फ हेल्प ग्रुप इनकरेजमेंट के लिए 5 करोड़ रखा है।
ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए या हमारा जो स्किल आर्टिसन क्राफ्ट आर्टिसन के लिए, क्योंकि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में मैंने देखा है कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स को वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से एक सबमिशन, एक सुझाव देना चाहूँगा, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट होने से काफ़ी फायदेमंद होगा हमारा युवा पीढ़ी के लिए। यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में गया था, काफ़ी एनजीओस आए हुए थे और काफ़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप आए हुए थे। उन्होंने अपना जो क्राफ्ट बनाया, जो कपड़ा बनाया, उनको प्रमोट किया था। तो अभी हमारा खास करके जो एनजीओ संगठन और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग बिल्कुल अपना यहाँ पे अपना यहाँ का जो क्राफ्ट वगैरह जो कपड़ा वो अपना यहाँ से पर्दा करने के लिए बिल्कुल लगा हुआ है। तो उनको थोड़ा सा ध्यान देने से ठीक है, सरकार से मैं निवेदन करता हूँ। और खास करके ये टेक्सटाइल में हमारा जो प्रमोट में जो कपड़ा बनाने के लिए और जो क्राफ्ट वगैरह बनाने के लिए एक या में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने से काफ़ी हमारे युवा पीढ़ी को फायदेमंद होगा। यही मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ। और खास करके अभी अरुणाचल में जो कि आत्मनिर्भर हमें बनाना है, हमें यहाँ पे अपना ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। इसीलिए अभी जो बजट जो रखा है एग्री एलाइट में, एजुकेशन में, हेल्थ में रखा है, इसी के लिए मैं सरकार को, हमारे युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री डिप्टी सीएम को, सारे मंत्रीगण को मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। श्री लोकमता सर, थोड़ा समय का ख्याल रखिएगा, बहुत है पार्टिसिपेंट। थैंक यू स्पीकर सर। तो आज मैं बड़ी खुशी से हमारा ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब का जो बजट स्पीच को मैं भाग लेने के लिए मैं बहुत खुशी से भाग लेना चाहूँगा। हमें आज खुशी ये भी है कि यूनियन मिनिस्ट्री का जो बजट, जो बॉर्डर एलिमिनेशन जो प्रोग्राम है, जिसके लिए मैंने ये असेंबली में भी लास्ट ईयर हमारा इंडो तिब्बत बॉर्डर का लेजिस्लेचर का थ्रू से हमें यहाँ सुझाव दिया था, उसको सुन के मैं बहुत खुशी है। और आज जो बजट बनाया गया 2022-23, अब ये आने वाला 2023 ये साल के लिए बजट टू ए फिगर है। बजट फॉर एजुकेशन सेक्टर रुपीस इतना, बजट फॉर हेल्थ सेक्टर रुपीस इतना, लेकिन उसमें जो द प्लानिंग फॉर द एक्टिविटीज, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ में जानकारी जाना जाता है कि हाउ क्रिएटिवनेस इज आवर लीडर ऑफ द हाउस श्री पेमा खांडू जी। इनका क्रिएटिवनेस किस टाइप है, कवरिंग ऑल द सेक्शन ऑफ द पीपल, कवरिंग ऑल द डिपार्टमेंट्स, measuring the detailed landscapes of the state of the अरुणाचल प्रदेश। उसमें हमें ये जानकारी, उसमें हमारा दिल ये मजबूत होता है कि आवर चीफ मिनिस्टर इज ए डायनेमिक।
एक फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग होना, हम लोग का निसिंग में एक साइटेशन है सर, हम थोड़ा सा निसिंग साइटेशन को बताना चाहूँगा। ये मैंने हाउ ए बिगिनिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर प्रोडक्शन स्टार्ट्स। दू तमंगने मिलेंगे मिचारिकू मैं दबयानी गुप्तारिकू पिंचंग पाको याक्सारिकू चंगते अरबे दू तमंगने मिलेंगे मिपेतला चंगते हanya relariku चंगते anguriku ala atu gongte bu kadue audu ani pertene bermerin tene jebang di rem tela jakabdi prem tela duk tamne abodi haralo ge miligi aligam amling aligam kum biam aligam puliyali amgam jebu jakabe kabra gediku cermuli long lira debe maloli long lira be debna agem। इसके मतलब हम लोग निसिंग का जो फाइनेंशियल ईयर किस टाइप से बिगिनिंग होता है, हमें सदियों में आदमी गवर्नमेंट में था, एग्रीकल्चर सेक्टर में सेटलमेंट नहीं था। जब सेटलमेंट कहाँ से शुरू हुआ, ईयर कैलेंडर किस टाइप से काउंट हुआ, द सीजन किसा करके बिगिनिंग हुआ, द प्रोडक्शन सीजन, उसमें जो है कि हम लोग दुख तमंगने मतलब जो है कि द गॉडेस ऑफ द सीड्स, जो डोमेस्टिकेटेड सीड्स, जो जैसा जंगल का हर प्रकार का पेड़ पौधे को, हर चीज का फल को पूरा काके देखा, काके वहां से प्रोडक्शन हुए में इसका सीड का विजन उसका देवती है। और देवती ने जमीन में आके हर जमीन को उसमें उसी ने जमीन में ही लेंद किया। जो वो लेंद किया जिसे हम लोग दबे के पिंचन पैक होगा सर, हम लोग ये सीजन में यही सीजन में आपका चिड़िया जो है एक सीजनल बर्ड्स का आवाज आता है। तो यहाँ से सब आदमी हम लोग जैसा इसी लोग तो कोई स्क्रिप्ट नहीं है जो कैलेंडर को लिखने कौन महीना में क्या प्रोडक्शन होता है, क्या यहाँ में सीजन से काउंट किया जाता है, सीजन से काउंट किया जाता है। फिर यहाँ में यही है बिगिनिंग जहाँ आदमी सेटलमेंट, विलेज लाइफ का सेटलमेंट होने के बाद, विलेज लाइफ को सेटलमेंट किस टाइप का सेटलमेंट है, विलेज लाइफ तो पहले एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक परमानेंट सेटल प्रोडक्शन का से तो विलेज लाइफ बिगिनिंग किया। तो ये कुछ भी कहानी होने से यहाँ से बिगिनिंग होकर कहानी ऐसा लिखता है। तो आज हम लोग का ये जो बजट जो है, बजट यही बजट अभी बजट हमने हमारा कैबिनेट मिनिस्टर अंडर लीडरशिप ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिप्टी सीएम जो प्लानिंग पॉलिसी जो बनाया उसी अनुसार में बजट जो बनाया। अभी हमें इसको एक नंबर जो है हमें किसा करके इसको अचीवमेंट में लाए, सक्सेस में लाए, ये अभी मैटर करता है। हमें बजट का प्लानिंग का मुताबिक में हमें डेवलपमेंट का विकास के तौर पे जाने से हमारे यहाँ में दो सब्जेक्ट है। एक जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो फ्लैगशिप प्रोग्राम आता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एक जो है कि स्टेट से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो ऑपरेट करने के लिए अरुणाचल में एक इनकन्वीनियंट चीज रह गया। अरुणाचल में को खाया जाने से हम लोग प्लानिंग बनाओ, अब बजट बनाइए, प्लानिंग पॉलिसी, अरुणाचल का जो कुदरत का मुताबिक में हमें फॉलो करना पड़ेगा। बिकॉज नेचर कैन नॉट फॉलो द गाइडलाइन, गाइडलाइन हैज टू फॉलो द नेचर। If we speak about the Arunachal Pradesh, the detailed landscape of the state of the Arunachal Pradesh, Arunachal has got three
temperate zone or at least 4 temperate zone. The फुटिल जो असम का जो लेवल से बिलोंग करता है ये 1 जून होगा, उससे हायर होगा 1 जून होगा, उससे हायर होगा 1 जून होगा। एक जो एक्सट्रीमिस्ट था में स्नो और ग्लेशियर का एरिया का, तो उसी को हम लोग नप के हर टेम्परेट जून में उसका जो कोई भी नेचुरल फ्लोरा एंड फौना हो, पेड़ पौधे हो, कुछ भी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर क्रॉप हो, इट वेरीज फ्रॉम द स्वीट्स जैसा करके स्वीटेड है, उसी अनुसार में हमें प्लानिंग एंड पॉलिसी बजट बनाना चाहिए। तो उसी के लिए हमें एक नोटिफाइड टेम्परेट जोन बनाना चाहिए। भाई हर टेम्परेट जोन का कौन सा लेवल का है, कितना एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल से है, इट इज सुइटेबल फॉर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्शन, ऐसा करके ये बनाना जरूरी है। ये बना के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जानकारी देना जरूरी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन जो है, मेरा प्रथम विधायक में 2004-2008 में एक PMGSY जो अभी जो चल रहा है, इसका गाइडलाइन के मुताबिक जो था क्लस्टर अप्रोच इन रेडियस मैनर, वही रेडियस में 4-5 गांव इन रेडियस में सेटलमेंट है, वो बीच में सड़क को बना के रखेगा 1.5 किलोमीटर, उसका हाईएस्ट पॉपुलेशन को नंबर 1 प्रायोरिटी, ऐसा करके था। तो मेरा अरुणाचल में हमने देखा, अरे मेरा गांव में कॉन्स्टिट्यूंसी एक स्कीम भी क्वालिफाइड नहीं आ रहा है। मेरे RWD का सेक्रेटरी, RWD का मंत्री, CM साहब को पूरा दरखास्त किया, सभी बोला कि अभी गाइडलाइन है, क्या करेगा। तो मैं दिल्ली में जाके दरखास्त, मेरा एप्लीकेशन का ड्राफ्ट, ये नालों में जो अभी बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी है, हमें रिप्रेजेंट करके हमें मंत्री में उधर मंत्रालय में ये कहा कि हमारा नेचर जो है आपका यहाँ का रेडियस मीनर में नहीं है, आवर इज ए लाइनर इन्फेशन, द क्लस्टर अप्रोच लाइनर इन्फेशन होना पड़ेगा। हमारा गांव का जो सेटलमेंट है इज ऑन द बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट एंड रिवर बैंक ऑफ ए बेसिन, तो इट इज द सेटलमेंट इन नेचर इज ए लाइनर इन्फेशन। ऐसा करके 1 टाइम रिलैक्सेशन मिला है। तो लाइकवाइज मेरा ये दरखास्त है हर डिपार्टमेंट का मंत्री, हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, एंड खास करके आवर लर्नेड चीफ सेक्रेटरी नरेश जी, जो अरुणाचल में हाईएस्ट टॉपर के फर्स्ट टाइम DC आया, ही इज वेल एक्सपीरियंस्ड, वेल एक्टिव ऑल्सो, इज वेल अवेयर अबाउट द जोग्राफिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट। तो आप लोग को यह दरखास्त है कि गाइडलाइन को तोड़ा किस टाइप से नेचर का माध्यम से किस को फॉलो करते हुए, आदमी का जो अवेयरनेस को भी, कॉन्शियसनेस को भी तो फॉलो करते हुए थोड़ा रिलैक्सेशन किस टाइप से लाया जाए। हमें देखा है जैसा अभी आपका आत्मनिर्भर किस कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना, तो इसमें देखा जाए तो हमें उसमें जो गाइडलाइन के मुताबिक में जो प्रोविजन ऑफ द एक्टिविटीज, तो ये तो स्वीट नहीं है। हम कुछ भी बजट बनाए, प्लानिंग बनाए, हम लोग आदमी का ह्यूमन जो हिस्ट्री जो बनता है, रोटी कपड़ा और मकान, हमें रोटी को पहले ध्यान देना पड़ेगा। रोटी सही है, मकान सही होगा, कपड़ा सही होगा। तो हमें रोटी कपड़ा ये एक बेसिक प्रिंसिपल है फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो उसी दिशा पे जाए तो हमें रोटी को ध्यान देना पड़ेगा। देने से आपका यह मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ हमारा नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन का मुताबिक में, जो अदर स्टेट में लाइक यूपी, बिहार, गुजरात एंड द रेस्ट ऑफ द प्लेन स्टेट लैंड सेम स्टेटस ऑफ लैंड है, उसमें तो अच्छा से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, हॉर्टिकल्चर सेक्टर सब आगे बढ़ रहा है। उसमें जो कि जैसा अभी मैंने कहा कृषि
और बागवानी योजना है, यहाँ में बैंक लोन का भी कंपोनेंट है। यहाँ में एक चीज हमारा इनकॉम्पिटेंट जो दिखाई दे रहा है, यहाँ में कि वो पैसा से वो योजना में ट्रैक्टर खरीदना है, कोई सोसेज वायर खरीदना है। इसका बाद में तो ये देखा जाएगा तो हमारा अरुणाचल में तो ट्रैक्टर चलाने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होने से पासीघाट एरिया है, नामसाई एरिया है। मैं अपना किटी में ट्रैक्टर लगा के देखा, ट्रैक्टर तो हेवी है, हमारा काम करने वाला को उल्टा खींच के पानी बुक्स के नीचे में ले गया। ट्रैक्टर को घुमाना और ट्रैक्टर जो है कि ड्राइवर चलाना, एक जो है कि पावर टिलर है। पावर टिलर इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल। आई हैव सीन ट्रैक्टर का सब्सिडी कितना दिया गया, नो एनी ट्रैक्टर इज बीइंग ऑपरेट, उसको कोई यूज में नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो मार्केट नीचे में बेचता है जो बेनिफिशियरी लोग या आसाम आदमी लोग रेंट लेके लेता है। तो इस सर्टेन गाइडलाइन को एक रिलैक्सेशन करने के लिए हर डिपार्टमेंट, हर मंत्री, मेरा सुझाव एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने ये देखा है, तार फेंसिंग तो हम लोग बॉर्डर बेल्ट में कभी नहीं पहुंचता है, हेडलूड। और तार जो है कि आपका कुत्ती चाहिए, वो कुत्ती तो अगर काट से लगाएगा, वो काट गिलेगा तो तार भी जमीन में मिट्टी में जब मिल जाता है तो जल्दी रास्टिंग हो जाता है। द ड्यूरेबिलिटी इज नथिंग। तो उसी में आपका बैंक लोन तो ठीक है, बैंक लोन में मानता हूं, पावर टिलर ट्रैक्टर का जगह में सोसेज वायर फेंसिंग को भी मैं नहीं मानता है। उससे अच्छा हम हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में यह लागू करा कि बॉर्डर विथ क्ले का वॉल फेंसिंग बनाएगा, पत्थर अवेलेबल है, दैट विल बी वंस फॉर ऑल, और जनरेशन टू जनरेशन फेंसिंग बनाना नहीं पड़ेगा। MIC एग्रीकल्चर को मुकाबला करने के लिए नंबर 1 फेंसिंग इन द MIC जो वाटर सिस्टम जो है ये सही होना पड़ेगा। जो वाटर इरिगेशन का सिस्टम, वाटर इरिगेशन सिस्टम बोलने से उसमें टेक्निकल रिक्वायरमेंट अलग अलग है। उधर पहाड़ का पानी किसा निकलता है, किसा का फेलर होता है, देयर आर मेनी रीजन। नीचे फुट हिल में आपका जो वाटर, ये जो दिल्ली या अदर यूपी बिहार असम में देखने से तो पानी ऐसा जो वाटर ये क्या बोलता है, ड्रिपिंग ऐसा कुछ बोलता है, उसका सिस्टम जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसा पानी दिया जाए वो अलग है। तो ऐसा करके एग्री और हॉर्टी को हमें झूठ देना चाहिए। यहाँ में खास करके फेंसिंग एंड वाटर सप्लाई, ये दोनों चीज है। इसका बाद में इसका बाद में जो टाइमली क्रॉपिंग, उसको आपका कौन समय में आपका जो हार्वेस्टिंग का पीरियड कौन महीना में क्या क्या सूटेबल है, ये डिपार्टमेंट वर्कआउट करना चाहिए। तो डिपार्टमेंट का जो हमने देखा है, डिपार्टमेंट का एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फिशरी, वेटनरी, इंडस्ट्री, जितना जो नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, नॉन इंजीनियरिंग जितना डिपार्टमेंट है, दिस इज द एक्चुअल द मेन इंजन ऑफ द डेवलपमेंट, मेन मैकेनिज्म ऑफ द डेवलपमेंट इन द रूरल एरियाज। इनका दिमाग में अगर कुछ जागरूकता अगर नहीं है तो कहां से पब्लिक रूरल आदमी जागरूकता में आएगा। तो होना जरूरी है, अवेयरनेस कराना जरूरी है। तो हमें देखा है हमारा या पीपल या जहाँ में जो डेवलप है, अवेयरनेस कॉन्शियसनेस है, लाइक सागाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 0 और जितना जितना जो फुटिल एरिया वहाँ से लेके पासीघाट हो गया, ये हो गया। हमारा बात को सुन के फिर शुरू लगे, अरे आप लोग उधर में तो बुद्धू है, कुछ चिट्ठी करने भी नहीं आता है। हम तो हमारा तकलीफ को बता रहे हैं आप लोग को। हम चाहते हैं कि हमारा गांव आदमी, हमारा जो नौजवान भी, अनएम्प्लॉयड यूथ भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जाइए, अपना जमीन को यूज में लाइए। सभी तो नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी मिलो, नौकरी करो या बिजनेस करो, खेती तो होना चाहिए। दिस इज माय फोकस, क्योंकि अपना जमीन को यूज में लाना पड़ेगा।
And my another issue is, I being from the border area, in the Tibet border area, हमारा आदमी पूरा माइग्रेट होके बैठ रहा है. These migrated group को रिहेबिलिट रीऑर्गेनाइज करने के लिए हम बहुत दिन रात चिंता में बैठा हूं. हमारे कंस्टिट्यूंसी में हमने ये जारी किया, हमें हर एवरी ग्राम सेगमेंट में एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएगा. दिन हर प्रोडक्शन जो निकलेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू से हम लोग ओवरऑल सर्कल में एक ब्लॉक में एक होलसेल नॉमिनी बनाया जाएगा और नॉमिनी बाय कैश पेमेंट लेके उठाएगा. नॉमिनी के लिए हम एमएलए फंड से एक गाड़ी देंगे कि वो मार्केट में जो ये कमर्शियलाइज करेगा बाहर में. तभी भी आदमी पीपल कन्विंसिंग नहीं हो रहा है. ऑफिसर्स ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग मी. नहीं, ये इनका बात तो सही है, उसमें जाना है, ये भी नहीं हो रहा है. इसलिए जितना जो गाइडलाइन है उसको हर डिपार्टमेंट का गाइडलाइन, जो फ्लैगशिप प्रोग्राम का गाइडलाइन जो स्वीट नहीं होता है उसमें हमें किसा करके प्लस करना पड़ेगा, इसका किसा करके माइनस करना पड़ेगा. किसा जो इनकन्वीनियंट कुछ जो गैप को किसा करके फिलअप किया जाए, ये हम लोग स्टेट गवर्नमेंट उसको या कुछ जुड़ाएगा या उसको एक साथ इनोवेटिव वे में सेंट्रल फ्लैगशिप प्रोग्राम के ऊपर में हम लोग स्टेट का फंड भी एक साथ जुड़ा के जहाँ में पैसा इन्वेस्ट होता है वहाँ में अच्छा से सक्सेस होने के लिए ये एक कैलकुलेट करके एक जाने से ठीक है. अनदर थिंग इज हमें हर डिपार्टमेंट का जो सिस्टम को, जो ऑफिशियल फंक्शनिंग सिस्टम को, उसको भी थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव एक पॉलिसी बना के किस टाइप से इफेक्टिव फंक्शन हो, जो सेक्रेटरी को बात को डायरेक्टर अच्छा से फॉलो करे, डायरेक्टर और इसका नीचे को अच्छा से फॉलो करे, सो दैट एवरी रेस्पॉन्सिव आपस में झगड़ा तो हो जाओ. हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी जिसका सीनियर हो गया, यह हो गया, वो कोई किसी का बात को भी अपना बड़ा वाला का बात को भी नहीं मानता. अरे हमको क्या सर्वे से क्या, ये चैलेंजिंग ना हो, इसका ड्यूटी हमें तो अवर पॉइंट इज पब्लिक का पॉइंट है कि हमें आपका वर्क आउटपुट हो. द वर्क आउटपुट इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी हेड इज वेरी शॉकिंग. हमारा स्टेट ओवरऑल का आपका सैलरी हेड में कितना रुपया जाता है, तो कौन सा डिपार्टमेंट में इसको ब्रेकअप करके कितना कितना रुपया जा रहा है, तो इसका आउटपुट क्या है, आउटपुट टू वेरी इनप्रोपोर्शनेट है. दिस इज ड्यू टू आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक कंट्रोल मैकेनिज्म सिस्टम थोड़ा सही नहीं होने के कारण से हम दिखाई देता है. इसलिए हमें सब सोचना पड़ेगा. हम अभी खुशी है बजट में, उसको किसा अचीवमेंट करना पड़ेगा, ये सुझाव मैं मेरा तरफ से जो है दे रहा हूँ. अभी आपका देखिए, हम लोग स्टेट गवर्नमेंट में दो प्रकार की आपका जो हम लोग ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट बोलता है. एक ब्यूरोक्रेट है, एक टेक्नोक्रेट है. हम लोग हो गया पॉलिटिक्नोक्रेट. देन ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट में भी हम जो चीज देखा है, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग. तो नॉन इंजीनियरिंग में लाइक फिशरी डिपार्टमेंट में हमने देखा है, खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट का भी हम देखा है, वो एस्टीमेट बनाता है एक DFDO डिस्ट्रिक्ट फिशरी ऑफिसर, वो 50 लाख 60 लाख का एस्टीमेट बनाएगा. तो हम बोला कि आपका एस्टीमेट पास होता है क्या? हाँ, हम लोग पास करता है, पैसा मिलता है. तो दिस इज इट इज मैटर ऑफ दिस थिंग. तो ये तो हमको शॉकिंग हुआ. हम कोई भी एस्टीमेट जो अदर देन प्रोक्योरमेंट आइटम तो ठीक है, मार्केट का जो कोटेशन का मुताबिक में, मार्केट फैक्ट्री का जो और चालान का मुताबिक, रेट आइटम का मुताबिक में चलेगा. जो भी चीज फिजिकल वर्क आएगा तो उसमें क्या चीज का है,
उसमें टेक्निकल का कैलकुलेशन आएगा, टेक्निकल का जस्टिफिकेशन आएगा। अब एक फिश पॉन्ड को कूदने के लिए एक उसको 8 एक्सकेवेशन होगा, उसको डिस्पोज बाहर में करने से कितना लीड कितना डिस्टेंस में फेंक रहा है उसका कॉस्ट आएगा। फिर उसमें सीमेंट कंपोनेंट आएगा, तो स्टोन एग्रीगेट आएगा, सेंड आएगा। देन हाउ डू यू कैलकुलेट? हमने इनको पूछा है, वो कैलकुलेशन नहीं है। वो कैलकुलेट करता है तो देन आखिरी में रेट आएगा, डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट आके दिन रेट आएगा। रेट तो कहाँ से बेस करेगा? अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ऑफ रेट को बेस करेगा। देन हु इज अथॉरिटेटिव पर्सन टू कोट द एपीएसआर? ये तो इंजीनियरिंग विंग है, तो नॉन इंजीनियरिंग विंग किसा रेट कोट करके एस्टीमेट बनेगा? तो उसको भी तो अगर फाइनेंस एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट ये बात अगर मान के चलता तो भी तो गलत है। तो हम चाहता है सर, प्लीज 1 more सेकेंड, हमें ये हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जितना जो है वो आइडिया देना चाहिए। उसमें जितना जो टेक्निकल का पार्ट जो कंपोनेंट है जो है उसको वर्क्स डिपार्टमेंट को दिया जाना चाहिए, इंटरेस्ट करना चाहिए। हमारा सुझाव ये है कि वही है वर्क्स डिपार्टमेंट में क्या जाने से वही है PWD, वही है पावर, वही है हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, वही है और RWD रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, वही है WRD, then we have got RD। PWD का रोड एंड ब्रिज में ठीक है, RWD जो जितना जो विलेज अभी जो PMG का रोड चला रहा है ठीक है। देन WRD जो है, WRD का कहे जाने से WRD डिपार्टमेंट को मैंने देखा है, ये WRD जो है अर्लियर RD WRD सब एक ही डिपार्टमेंट में था, यूनियन टेरिटरी समय में। RWD PHEB वो अंडर में था। तो अभी WRD जो है ये जो है कि आपका जो इरिगेशन का मेथड करता है, जो ये डिपार्टमेंट जो है कि जैसा ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, ब्रह्मपुत्र का बोर्ड कोई स्कीम मेरा एक दोस्त एक बार प्रोसेस किया था दिल्ली में, मैंने पता चला वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड से पास करना पड़ेगा। ब्रह्मपुत्र का बोर्ड अंदर में अगर आता है तो अरुणाचल का जैसा कि सुबनसिरी नदी है, कामिंग नदी है, तिराप नदी को सियांग सिर्फ कैचमेंट एरिया में आता है, उसको तेजू और सियांग। बाकी तो वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गाइडलाइन में नहीं है बोला, उसमें जैसा कि फ्लड कंट्रोल बनाना क्या बनाना। तो मैंने इसको बोला, अरे भाई वही अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड अगर है, वो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मेंबर को मैंने बोला अगर ब्रह्मपुत्र बोर्ड है, अब व्हाट इज ब्रह्मपुत्र, यू शुड फर्स्ट स्टडी। ब्रह्मपुत्र एक ध्रुव से तो पानी समुद्र बनता है, ये किसा के ब्रह्मपुत्र बन गया? यू हैव टू डिटरमाइन द कैचमेंट एरिया ऑफ द ब्रह्मपुत्र। तो मूल स्टेट गवर्नमेंट से आखिर में बोला कि मूल स्टेट गवर्नमेंट ही नोटिफाइड ऐसा कुछ दिशा नहीं दिया इन लोगों को कि ये बेसिन ब्रह्मपुत्र आंध्र में आता है, ये बेसिन ब्रह्मपुत्र में आता है। तो ये WRD का बात याद करके मैं ये बता रहा था। तो WRD इज इरिगेशन रिलेटेड है, इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर का जो भी वर्क है हम देखने से होती एग्री में WRD एंड RD को देना चाहिए, एजेंसी एंड RWD, ये तीनों को। और यहाँ में जो रूरल में जितना जो एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में जो भी टेक्निकल जो वर्क है तो वो होना चाहिए। एंड इंजीनियरिंग विंग में मैंने थोड़ा ये करके देखा है, अभी RD इन द पंचायत, RD में है कि आपका नीचे में सबसे नीचे में EO इंजीनियर है, देन EO एग्री है, EO इंजीनियर, देन APO RE, देन जॉइंट डायरेक्टर RE। जो जॉइंट डायरेक्टर RE इज इक्विवेलेंट टू AC, जो इसका जो फाइनेंशियल जो पावर है जो वर्क ऑर्डर वगैरह को जो साइन करने के लिए। तो मेरा सुझाव ये है कि जो पंचायत में जितना जो JEE इंजीनियरिंग जो है वो जो एक फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब से आया, एजुकेशन में जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम का हिसाब में आया। तो पंचायत और RD जो रिलेटेड है
दोनों को एक साथ में मार्च कराने से, ठीक है, और आरडी में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर रहता है तो उसमें एक चीफ इंजीनियर खुद होने से, ठीक है, आपका जॉइंट एपीओ आरई और इसके बाद में जॉइंट डायरेक्टर आरई, ये डिजिग्नेशन को हटा के, बिकॉज दिस डिजिग्नेशन इज ए ओल्डन डिजिग्नेशन जो डीआरडीए का रूल नॉर्म्स का मुताबिक में आया गया। आजकल डीआरडीए का भी तो हटा रहा है, वो अभी आरडी में मार्च हो रहा है। तो वही लाइक मैंने आपका यहाँ में AJ एग्जीक्यूटिव और इसी चीफ इंजीनियर लेवल में अगर आरडी डिपार्टमेंट में अगर इंजीनियरिंग विंग अगर होना है तो मेरा सुझाव है कि वो होने से, ठीक है। ये आपका जो जॉइंट डायरेक्टर आरई, जो एपीओ आरई, इट्स कॉम्प्लिकेट टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। और then in the block level, because RD is the department, is the key department who is operating in the grassroots level at the village level. Its administrative setup, its monitoring setup should be well transparent and very active, should be very strong. हमने देखा है एज पर जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, block development officer is the key officer in the block level, in the grassroots level. Under the umbrella of the BDO, block development officer, there is a AO industry representing from industry department. There is a AO agri representing from the agriculture department. There is a AO horti, AO fishery, AO veterinary. So in the गांव लेवल का मुताबिक में हम लोग तो ये समझता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट का, बिकॉज आपका BLW है, BLW जो पोस्टिंग हो गया एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वहाँ पोस्टिंग हो गया, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ द BDO. अभी अर्लियर यूनियन टेरिटरी पीरियड में द मॉनिटरिंग सिस्टम, द वर्क एक्टिविटी सिस्टम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द BDO वाज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट. अभी जो है कि ये होच-पोच हो रहा है. अभी BDO डज नॉट नो व्हाट एग्जैक्ट एक्टिविटीज इज फ्लैगशिप प्रोग्राम जहाँ में एग्रीकल्चर का होता है, हॉर्टिकल्चर का होता है, ये होता है, तो डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन डिस्ट्रिक्ट हेड ही खुद इम्प्लीमेंट कर रहा है, विच इज अंडर नॉलेज ऑफ नॉट अंडर नॉलेज ऑफ द BDO. तो ये होने से तो BDO नोज, तो दिस इज क्रिएटिंग डुप्लीकेसी इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरीज. तो इसका अलग है और BDO का अलग है. BDO is holding the detailed economic census. We follow the economic census of the own block. उसमें ओल्ड एज का किस्सा है, ओल्ड एज का डिटेल है, देन बिलो प्रॉपर्टी का डिटेल है, तो हर चीज़ तो वो मॉनिटर कर रहा है. तो उसमें फिशरी डिपार्टमेंट में क्या बेनिफिशियरी स्कीम, बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स क्या ले रहा है, BDO डज नॉट नो, तो डुप्लीकेसी आ जाता है. तो क्योंकि आरडी में जितना जो है बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम है, तो ये सब एक माने ये हो रहा है. इसलिए उसको स्ट्रीमलाइन करने, रीऑर्गेनाइज करने के लिए मेरा इस में जो BDO का जैसा जो फंक्शन है ऐसा रहने दे के अंडर BDO का अम्ब्रेला में उसको पोस्टिंग किया जाए हर डिपार्टमेंट को, जो पहले जैसा करके चलता था. तो दिस इज वन थिंग दैट हैज टू बी कीप इन माइंड टू रेक्टिफाई. ये मेरा सुझाव है. देन अनदर है कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ज़्यादा चीफ इंजीनियर होना भी कॉम्प्लिकेट है. इस चादर में थोड़ा ये हो के जूत मूत में हम लोग पब्लिक हेम्पर्ड इसलिए आती है, पेपर वर्क डिले में, डिलीवरी ऑफ द टाइमली वर्क, इस चादर उसका एक उधर चलेगा, एक उधर चलेगा. तो इसमें एक लिमिटेड उसको स्ट्रीमलाइन करने से ठीक है इंजीनियरिंग ये सेक्टर में. इसके बाद हम खास करके ये मेरा एक सुझाव है, अगर उसमें कोई गलत है तो माफ़ कीजिए, बिकॉज दिस इज अ प्योरली माय सजेशन व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, जो प्रैक्टिकल में जो ग्राउंड जो देखा देता है. देन लास्टली हम बोला जाए तो और बोलने के लिए है, लेकिन ज़्यादा सुनना भी तो आदमी बोर होने से तो फ़ायदा भी नहीं है बोल के.
कान में नहीं घुसेगा, अभी तो जबरदस्ती घुसा भी नहीं दे सकता है। तो मैं कभी जो भी बोलो, हमारा ये टीम, हम लोग इस बार का जो सरकार है अंडर लीडरशिप ऑफ पेमा खांडू हैव ऑर्गेनाइज्ड ए टीम स्पिरिट, टीम अरुणाचल है। हर डिपार्टमेंट में भी एक टीम स्पिरिट हो, टीम RWD, टीम PWD, टीम एग्रीकल्चर, टीम हॉर्टिकल्चर, पूरा ये मैकेनिज्म को सही ढंग बनाने के बाद में टीम स्पिरिट में जाके हमें विकास को, हमें खास करके रूरल गांव में किसा करके हो। गांव में हम अकेला समझा के तक गया, आप सब ऑफिसर भी साथ दो। हम तो ये बताता है कि डेवलपमेंट गांव से आता है, रॉ मटेरियल गांव से आता है, कपड़ा भी गांव से आता है। नो बॉडी एग्री दैट। कपड़ा कहाँ से गांव आता है? वो तो दिल्ली से आता है, गुवाहाटी से आता है। हम बोला इसका प्रोडक्शन तो गांव से होता है। तो इस टाइप का हम गांव का तरफ दिशा में तो विलेज डेवलपमेंट को आगे ले जाना एक हम लोग का मिशन। हर डिपार्टमेंट का जो टारगेट, एक कमिटेड टारगेट होना चाहिए कि गांव को किसा आगे ले जाए। अभी अर्बन एरिया के लिए हम लोग का ये रोड का बारे बोलने से ट्रांस हाईवे चल रहा है और PMG भी चल रहा है, ये है। और अभी गांव का भी हमें मोड़ना पड़ेगा। गांव खास करके हमारा इंडो बॉर्डर एरिया जहाँ में इनएक्सेसिबल एरियाज को एक टूरिंग प्रोग्राम का रख के हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी, एक आप लोग का ब्यूरोक्रेट लेवल में, और CM साहब तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी को तो विजिट हो रहा है, इनका पास तो नॉलेज है कि कॉन्सेप्ट है कौन कौन का, किसका कुदरत किस टाइप का है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा कॉन्स्टिट्यूंसी में किसा है। तो उसी आधार पे हमारा यह प्रयत्न है कि सबको जितना जो हमारा जितना मेंबर्स है, जितना हमारा ब्यूरोक्रेट टेक्नोक्रेट को, हमारा बॉर्डर को हमारा साथ थोड़ा हमको भी इनकरेज कीजिए और हमारा आदमी को किसा के इनकरेज करके हाउ माई पीपल टू live intact in my own land for the safeguard of the own land, being border area, international border area. तो ये मेरा प्रेयर है, प्रार्थना है आप सबको। मेरा ये है कि हमारा बॉर्डर में पूरा इंटेक्ट हो, कुछ भी इवेंचुअलिटी में अपना खुद प्रॉब्लम को, कुछ भी इवेंटी में, बॉर्डर मैटर्स में, बॉर्डर अफेयर्स में, इंटरनेशनल बॉर्डर अफेयर्स में सब अगर इंटेक होता है तो कुछ भी हम लोग एक साथ में अपना सेफ गार्ड के लिए काम कर सकेगा। तो दिस इज माई दिस थिंग। Another thing is Honorable members, please conclude. Just 1 minute, sir. No, you are supporting or you are objecting the what called budget? No. Objection है ना supporting कर? No, supporting, sir. हाँ, तो जल्दी खत्म कर दीजिए। It is purely supporting. More than 35 minutes. My another suggestion is that we have a targeted, committed work project to be completed. जैसा कि PMG विषय में अभी सब लोग बोल रहा है, आपका सितंबर में खत्म नहीं आएगा तो फंड आना लॉक हो जाएगा। तो ये भी मेरा एक सुझाव है कि हमारा अरुणाचल में हिंड्रेंस किसा है, नेचुरल हिंड्रेंस। ये बारिश एक बड़ा हिंड्रेंस है, कोविड इस बार तो कोविड तो बड़ा हिंड्रेंस है, तो ग्लोबल एक हिंड्रेंस है इन वर्क एक्टिविटीज में। बारिश वर्षा जो है, अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट चेंज इज अ वन हिंड्रेंस। हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को कई बिल्कुल अच्छा काम खत्म करेगा बोल के दिन रात करता है, लेकिन बारिश को, क्लाइमेट को मुकाबला ही नहीं कर सकता, जिसका कारण कुछ डिले है। और इसको सब अगर ब्लॉक हो जाएगा बोलने से हम तो घबरा रहे हैं कि मेरा अंदर में पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो खत्म हो। मैं ऑनरेबल CM साहब को भी, DCM साहब और हमारा जब IS ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, सबको यह दरखास्त है कि इसका थोड़ा ख्याल करें ताकि लोग ना हो। Then, thank you. Lastly, I once again congratulate and appreciate the planning of the budget of the year 2022-23 under the dynamic leadership of Shri Pema Khanduji, the Chief Minister of Arunachal Pradesh. Thank you. Thank you. Next, Kagong Tagu जी, आप लोग 10 मिनट लेने से ठीक है, बहुत ज़्यादा आदमी है।
Honorable Deputy Speaker, sir, thanks for giving time to speak on Budget 2022-23. Sir, I have gone through the budget 2022-23. Really, it's a grounded and realistic budget as it covers what are to be covered. ये बहुत अच्छा बजट है, हर सेक्टर को ध्यान दिया गया है. इट्स एन इंक्लूसिव बजट. ये बजट को लेके मैं ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ Mariangeku and my own behalf, I would like to congratulate our most dynamic Honorable Chief Minister, our most competent Honorable Deputy Chief Minister, learned Chief Secretary, Secretary Planning Finance, and team members for taking pains to prepare this realistic budget. Sir, while appreciating and supporting the budget, I would like to throw some light on my constituency. Sir, मेरा Mariangeku constituency जो है एक ऐसा constituency है कि ही international border touch नहीं करता है, and also it does not fall in district headquarter, it does not fall in urban areas, and also my constituency does not fall in foothills and interstate boundaries. इसका चलते we cannot take the schemes of border area, we cannot take the schemes of urban areas. Sir, अरुणाचल में ऐसा भी बहुत कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 2-3 ब्लॉक्स जो है अर्बन एरिया बॉर्डर एरिया में पड़ता है, जिससे अर्बन बॉर्डर फंड मिलता है, एंड 2-3 जगह जो है अर्बन एरिया में पड़ता है तो अर्बन फंड मिलता है, एंड 2-3 ब्लॉक्स जो है माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ब्लॉक भी होता है तो इससे भी फंड मिलता है. ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है आगे निकल जाता है और मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बीच में रह जाता है. सर, हमको लगता है Mariangeku कॉन्स्टिट्यूंसी जो है अरुणाचल का वन ऑफ द मोस्ट बैकवर्ड कॉन्स्टिट्यूंसी होगा, जबकि मेरा मारियांग टाउन जो है वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाउन ऑफ आदि बेल्ट नेक्स्ट टू पासीघाट. बट आदि बेल्ट का जितना भी टाउन है आगे निकल गया सब. मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी Mariangeku जो है बीच में रह गया. सर, आई एट्रीब्यूट दिस misfortune to the reasons that my constituency fall in middle zone, which cannot avail the fund the schemes of border areas, the schemes of urban areas, and the scheme of foothills. इसलिए सर मैं थ्रू यू मैं ये अपना पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगा. मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी, द कॉन्स्टिट्यूंसी लाइक Mariangeku needs little more sympathy from the government. गवर्नमेंट से sympathy मिलता है, ऐसा बात नहीं मिलता है. We get sympathy from the government, but it needs more sympathy. क्योंकि अपना मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को भी बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी का साथ ले जाना है, साथ में जाना है. No part of Arunachal can be left behind. सर, इसके बाद मैं आपका थ्रू कहना चाहूँगा, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी नॉन बॉर्डर ब्लॉक, नॉन बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो नॉन BADP दिए हैं, फंड दिए हैं, ये बहुत काम में आता है.
और इफ इट कुड बी एनहेंस, मेरा जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी को बहुत रिलीफ मिलेगा अप टू सम एक्सटेंट। सर, ये सब कहते हुए मैं ये बजट 2022-23 को सपोर्ट करते हुए यही मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। थैंक यू सर। Thank you. Next, Wangin Nowadong. Honorable Deputy Speaker, sir, thank you for permitting me to take part in the budget discussion. At the outset, I would like to appreciate the Honorable Deputy Chief Minister, who is also in charge of finance and planning, for bringing out a sustainable budget in this very difficult situation and times. Though it may be called a deficit budget, deficit is good in developing economies like India, and also an upcoming state like ours, Arunachal, which also helps in generating additional demand to boost the economic growth. That way, there is a positive sign and aspect of being a deficit budget. The estimates of 2022-23 projected an amount of 24.253.54 crore as capital receipts, as revenue receipts, sorry, and 1,858.09 crore as capital receipt, making a total receipt of 26.111.63 crore, which is an encouraging 15.6% higher than last year's. One of the good aspects of this budget which I've seen is the creation by blocks, the presentation in a block form of 6 blocks, which is very easy to assess also by any person and to understand. And I feel that is what the essence of the budget should be, that it is easily subscribable to the lay person to follow and to make his own or her assessment of what the budget of the state indicates. I would also like to appreciate the state government under the leadership of Shri Prema Khanduji, along with Honorable Deputy Chief Minister, that our state has been awarded the most improved small state category as far as infrastructure and governance is concerned. That I feel is a good achievement. Though I may be critical of some of the aspects of the budget, but the good things that are there in it, I have to appreciate. That is the very essence of our discussion, and that is the true ambience of the parliamentary form of democracy in our state.
going into the detailed conscription of the budget may take quite a long time. It may not be very relevant. But some of the points that I would like to raise, that this government has this year given emphasis to culture and also particularly the indigenous and also the Atmanirbhar, which I think is very important in a state like Arunachal. We have to go back to the roots. We have to know who we are. And that can truly be reflected by preserving and promoting our cultural heritage. Coming into the cultural aspect, I would once again like to thank Honorable Minister, Deputy Chief Minister and Finance Minister for sanctioning in the last year's budget an amount of 2 crore for the Narottam Cultural Heritage Center at Borderia. Narottam was my forefather, the erstwhile chief of Borderia Namsang, undivided, who was initiated into the Vaishnavite fold in the year 1670. And remembering him and his contributions as a saint will reflect the due importance that the government has given to the cultural affinity of our people. And many of the schemes that has been promoted in building cultural halls, centers, there in Tirap also, there are some people who still believe in the Vaishnavite fold, in the Hindu fold. So they have namghars in the villages. So I would like to request Honorable Deputy Chief Minister to also keep aside some fund for these namghars in Tirap district, in the places where it needs to be built. And also I would like to take this opportunity to request him further to enhance the Narottam Cultural and Heritage Center building fund as suggested in the DPR in the current fiscal year if possible. Now, the government has also given emphasis on health sector. And amount of 30 crore has been earmarked for allocation to improve PSCs and CSCs. That is very important. What we had been focusing on was only in the general hospitals situated in the towns and the capital regions, and also the district headquarters of district hospitals. But those in the remote areas subscribing to the health services of the poor villagers in remote localities where PSCs and sub-centers are situated. These centers also should be looked into. Most of the PSCs in the state
are functioning with inadequate manpower and staff, and also without the basic medical infrastructure that is so much required for improving the health. As health is the key to progress, an amount of 450 crore had also been kept aside. I feel that due importance and cognizance must be taken. We have just gone from a very critical situation. We have not yet come out from the dark COVID situation. We all have to be careful. There is a talk, we have just seen the third wave. There are assumptions and talks of a fourth wave. God willing, I hope that no more waves will occur, but one can't say. So health is very important, and we have to be very careful as far as this is concerned. Another sector is the education, which is equally important. The government has earmarked an amount of 500 crore, if I may be right, for the Eklavya model residential schools in the state. 8 more are in the pipeline. I too have one suggestion, as I have an Eklavya model residential school, EMRS, in my constituency at Khela village, which was sanctioned in the year 2016. The construction is yet to be completed because of inadequate funding. An amount of 14 CR was allocated for this construction of the EMRS in my constituency at Khela village. The buildings and the structures have come out excellent. And people who have gone there to visit and see it have all appreciated it. Say that it's coming up beautifully. Only some infrastructure is yet to remain completed. And hopefully by this year itself, this session, we will start its operation. Why I'm saying so is that an amount of 14 crore was allocated for that EMRS, whereas now we see an amount of 500 crore being ought to be utilized for this EMRS. So if we take that into consideration, each EMRS will be allocated a substantial amount of, say, 40 crore rupees. Why I'm stating this is that with the 14 crore that has been allocated for the EMRS there is no proposal for auditorium. That means there's no auditorium, no playground, no power supply connection, no approach road. The boys' hostel is yet to be constructed. The water supply, with the kind approval of the PHE department, has been connected. There was an additional expenditure. So I feel that while allocating this 500 crore, please also remember me. The PMGSY maintenance, an amount of 30 crore has been earmarked. $60 crore, I'm sorry.
But then there is a condition that any road which is less than 5 kilometers will not be benefited by this maintenance fund. Many of the PMGSY road in my constituency are below 5 kilometers. So I'll be deprived of this maintenance fund. So can't the department concerned bring out an amendment to include all PMGSY road, no matter how small it may be, so that we are not deprived of this maintenance fund. And most of the PMGSY road in my constituency was constructed more than 10 years ago. I would also like to appreciate, as far as education is concerned, innovative schemes and ideas have come up to uplift and encourage the students of the schools, like the Mukhya Mantri Shiksha course and also the Mukhya Mantri Champion Fund, which will bring out the talent, the hidden talent among the children. But one thing I would like to point out is that Tirap Polytechnic, the buildings which were completed, is lying idle. No attempt has been made by the education department as yet to start the polytechnic. Neither is there any ITI in the district. So I feel that the education department should take steps to see that this polytechnic comes up and start functioning. There are various reasons and excuses that are given by the department, but I'm not sure how far that is true. And also, as far as the Golden Jubilee multipurpose activity centers in the 5 basins are concerned, there is also an innovative scheme as far as sports is concerned. There is also a very appreciable scheme. And the agriculture, horticulture sector of providing 60 crore for areca nut, tea, rubber, etc. is a brilliant idea to bring about the improvement of horticulture and agriculture in various parts of the state. My region, PCL region, has got good climatic condition for these crops, and people have taken up these 3 crops in a large way. Last year too, I think some fund was allocated for that, but I do not know how that distribution took place. I hope that this year, when such a huge amount has been kept, the encouragement of the farmers of these 3 crops, that it will reach all the beneficiaries. The government has taken a deep concern and importance for the development of border areas, the border villages. Very appreciable. But besides that, there are areas who reside in the Assam border part, like my constituency and various other constituencies are there. We have a non-BADP schemes allocated to the non-border area, international border areas. But that amount is not sufficient, 1 crore. So I feel that the entry to our state should also be beautified. And how do we beautify and fortify it?
by giving us various schemes of development so that anyone coming, any tourist entering Arunachal will feel that, yes, some semblance of development and progress has been done. So besides the international border areas, which is a very welcoming step by the government, both of the center and the state, non-BDP fund also should be enhanced. I would not like to go any further, but there are so many things which I can narrate. But there is one important aspect which I would like to mention. This has come out also in the short duration discussion just today. The de-reservation of the reserve forests. While standing up to the occasion and participating in the budget discussion towards the development and progress of our state, there can be no semblance of progress and development if there is no land. Yes, Arunachal has got a huge geographical area of 83,000 plus square kilometers. That is besides the point. But we have more than 10,000 square kilometers under the reserve forest. Besides the other forests of protected forests and the unclassified state forests, USF, which is equivalent to more than 2/3 of our state area, 51 or 52,000 square kilometers to be precise. Why this de-reservation is important as far as the environment and forest is concerned is because on every occasion when there are plans and programs to partake to development, even a simple road construction, and most of the foothill areas of our state are reserve category. Now the permission has to be taken from the Environment and Forest Government of India. And forest clearance has to be given. There are over 307 notified forests in Arunachal. (66%), that is 201 of such forests are still awaiting final notifications. For example, even Itanagar, our capital, is under the wildlife sanctuary. Itanagar Reserve, which was declared a wildlife sanctuary. Just a few months back, there was a tussle between the highway and the forest department in regard to the construction, the extension of NH 415. Why? Because of this forest issue. So we have to take some decision, urgent decision, to clarify this notion. Many of the areas, I'm not saying that we should declare as de-reserve the entire forest, but particularly areas which may be required for the progress and development projects that will come up in the state, those have to be earmarked. Deomali is under the reserve forest. Although Deomali town existed in 1948, Namsai itself is under the reserve forest. Deopani
was de-reserved, 134 hectares. There are various forest areas which need to be de-reserved, especially the township that has come up, like Namsai, like Diomali, and some settlement areas in my constituency of Bogapani. And there may be various other places also which required. Ultimately, the budget is for the development of our state. And where do we develop? There are towns which have come up, like Diomali and Namsai, for example, even Itanagar. Tomorrow, any activist can raise this issue. So the government has to be deeply concerned as far as this is concerned. And I suggest that the Honorable Supreme Court may be approached to constitute a high-powered committee or a central empowerment committee comprising of retired Chief Justice to suggest ways to come out of this precarious situation in the best interest of the state, country, and also the flora and fauna, to put an end to the mockery of reserve forest status. Taking into consideration all the stakeholders that are there. So this is one very important issue that has to be given due cognizance. And as far as the police department is concerned, the activities of the police in controlling the law and order in the state has made tremendous strides. And for this, I would like to suggest one particular request, is that many Mahila police stations have been set up in various townships and district headquarters. Kunsa, one of the oldest headquarters of the state, district headquarters, is yet to come up with any Mahila police station. So I request that a Mahila police station at Kunsa also to come up within the current fiscal. आपका भी मेंशन, आपका नोट भी है. While supporting the budget, I appreciate the concern of the finance minister in trying to bring about a best possible budget as can be in this very difficult situation of this COVID era, and trying his best to bring about development, structural activities in the state. And I'm sure that this amount that has been kept would be spent in a very judicious manner, and it will reach each and every pocket of the state for its future growth. Thank you, sir. Thank you. Next, Lumbotang, Honorable MLA. So please try to manage and maintain time because we have so many. Thank you, Mr. Deputy Speaker, sir.
I won't touch upon the budget discussion is because in the history of this August floor of House, we have already passed the budget without discussion. So, sir, I will begin with few submissions only for the consideration of the government. First of all, sir, when the budget was already passed, my submission would be regarding enhancement of the MLA Local Area Development Fund. I urge upon the government that the local area MLA Local Area Development Scheme funds should be raised from 3.25 crores per annum to 5 crores per annum. It's because it is only the sustainable scheme available with the MLA to maintain their own constituencies. I think almost all my member colleagues will agree with the enhancement of the rate. Secondly, this may be just to make out the fund if necessary. Mr. Chairman, if necessary, fund may be curtailed from some other sectors to make it 5 crores per annum. Sir, Chief Minister's Gramin Awas Yojana is really a popular program. This should be enhanced from 1 to 2 to 3 villages in a constituency in a year. For, sir, what I saw is inordinate delay in according financial concurrence to any schemes. For example, during May 2021, Education Department moved the case for obtaining financial concurrence for a sum of rupees 2 crores for meeting up the 100-bedded girls' hostel in the entire state, which was released as the central share from Government of India. Now the total committed liability in the Education Department is still 15 crores, Chairman sir. Education Department was supposed to submit the utilization certificate after using these 2 crores. But the concurrence accorded only February, March. Where is the time for them to use? And where is the time for the Education Department to submit the utilization certificate to Government of India to obtain the subsequent installment? I think the system should be corrected. Then secondly, under the principle of Sabka Saath, Sabka Vikas and Sabka Vishwas, there should be equal distribution of fund in all the places in the state for equitable development in the state. There is parity. Anyway, it will be recorded, sir. They will hear from the recording system. दो मालिक नहीं है. And then secondly, sir, Chairman sir, I would suggest the government of Arunachal that the district development committee be wind up. Initially, it was
constituted in order to avoid the overcrowding and unnecessary hovering around the CMO, Deputy Minister's office, and also other offices by so many individual people asking for the individual schemes. But what I found, the District Development Committee has got nothing to do in any recommendation of schemes, selection of schemes, and obtaining sanction from the government also. Any schemes decided in the District Development Committee is not taken in consideration even in the Cabinet Committee on Infrastructure also. So this may be wind up. And I am also in agreement with Honorable Member Kangong Taku and Wang Linji for enhancement of non-BADP fund at least to 3 crores in a year. Sir, I appreciate the government is frank enough to lay a deficit budget. And that deficit should be borne by every one of us. But at the same time, what I should say is, state is facing a deficit budget. In one hand, it should not be surplus in some areas. For the last so many years, what I saw, though there is a deficit, but somewhere there is surplus. Fund is pumping and pumping and pumping in only few selected places. So it should not be happen right from this year. Then, Chief Minister's Samaj Shiksha Yojana should also be continued with sufficient fund. Then lastly, sir, Chairman sir, my request to government is, since we are now a COVID-free state, the austerity measure for creation of posts, for sanction, for everything, austerity measure which was imposed upon should be lifted. With this, I need not support, but we have already passed the budget earlier. I extend my sincere thanks to you, Mr. Chairman, for giving me the chance. Thank you. Thank you, Honourable Member. Now, Tarin Dakpe, Honourable Member. Thank you, Honorable Chairman, giving me this opportunity to participate the budget discussion of 2022-23. First of all, I would like to congratulate the Council of Ministers, particularly Chief Minister and Deputy Chief Minister, and also the Planning and Finance Investment Department for preparing budget meticulously covering all the sectors. Under the energetic and young leadership of Chief Minister, has performed well supportive budget for the year 2022-23. Hopefully, 2022-23 budget will definitely take our state in one step ahead of development of project schemes.
Although this budget has covered up all the sectors, and this time the 6 pillars have been guided in this budget. That is investing in health sector, investment in human capital, Atmanirbhar Arunachal Pradesh, synergy and convergence, governance reforms and prudent financial management, environment and protection and climate resilient infrastructure, last 2.5 years, we were under lockdown of pandemic, 2019 pandemic. The state is emerging out of the COVID-19 pandemic. We have learned lessons during pandemic. Due consideration may be taken and need to shift the focus from expenditure-oriented planning to outcome-oriented planning. Although this has been taken in this budget, this budget taken in the budget, as I have seen, is required to be aligned with SDG goal. It is observed that several budget announcements were made in the previous years, but many of them could not be taken up as due to various timeline factors. We must appreciate the government, Council of Ministers. Before budget is prepared, pre-budget discussions were taken, especially from experts who have suggested how budget has to be oriented for the next. And their valuable suggestions for the state budget and share priority concern. This has already been brought to the common people to participate and is appreciable and commendable. I am happy that proposal to increase the allocation for honorarium to registered indigenous priests, especially. This government has taken our traditional ritual, especially the priest. Here, the government has earmarked for honorarium for priests. Yesterday, I think I have discussed in my star question regarding modalities, how the priest has to be appointed and their guidelines has to be made. After announcement or after guidelines is given, the deputy commissioners or circle officers are to be made, and they should scrutinize it, and the priest which will daily, the priest whom they will select or appoint must be a real priest. Here in this budget also, the government is upgrading 18 district hospitals in the state in amounting to rupees 250 crores. And also 60 identified PHCs, CHCs. Here I would like to urge upon the government through you, sir, the funding pattern, especially construction of hospital, district DC secretariat, should not be made phased manner. It should be funded at one go, so that the hospital could be built up within 2 years or 1.5 years. And also district secretariat, DC secretariat. I have seen that phased manner funding
This year, say, in my district, DC Secretariat has been sanctioned last 2019-20. Due to pandemic, of course, it could not be materialized. But the fund has been funded for only 50 lakh, which was sanctioned for 12 crore 50 lakhs. In this manner, if we go phased manner, it will never be completed within the stipulated period. As a result, उगर होने वाला नहीं है. तो इसलिए my submission to the government, especially hospital जो आपने earmark किया है, and district secretariat को जो earmark किया, उसको full funding होना है, so that we can continue it, complete it within 2 years. ये मेरा submission है. Budget to education में फोकस किया है. Then 2021 was declared as education year. तो उसमें भी ये है, लास्ट 2021 में डिक्लेयर किया, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. दिस ईयर आई हैव सीन दैट अभी मेरा डिस्ट्रिक्ट में रागा हायर सेकेंडरी स्कूल हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, लेकिन फंड नहीं हुआ है. तो इसी वजह में अगेन देयर इज ए प्रॉब्लम. तो उसको अगर विद इन 1 or 2 ईयर में अगर एट वन गो फंडिंग नहीं देगा, देन डेफिनेटली ये स्कूल का जो पोजीशन है कभी सक्सेसफुल नहीं होगा. हम लोगों का टेन्योर तो 24 में ख़त्म होने वाला है. ड्यूरिंग आवर टेन्योर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे. इसलिए इसमें भी मेरा जो रिक्वेस्ट है कि यू हैव earmarked for 500 crore, whether you are going to give at one go or phased manner. तभी तो आज का जो है स्कूल हम लोगों का जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का, हमारा डिप्टी सीएम का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का जो विजन है वो कंप्लीट होना होगा. तो ये पूरा फंडिंग देने से अच्छा है. मेरा जो रिक्वेस्ट है. लॉट ऑफ टॉक हैज़ बीन टेकन अप, स्पेशली स्पोर्ट्स एंड यूथ का बहुत अच्छा है. हमारा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर तो इज टेकिंग सो मच इनिशिएटिव. रियली ये जो है हमको इनकरेज करना है. यूथ आजकल ड्रग एडिक्शन हो रहा है और सब लोग अपना लाइन से भागते जा रहा है. इफ़ वी कैन ब्रिंग देम बैक द स्पोर्ट्स स्पिरिट में, डेफिनेटली हम लोगों का स्टेट यूथ का एम्प्लॉयमेंट आजकल नाउ डेज क्रिकेट में बोलिए, एनी स्पोर्ट्स इवेंट पे ही और सी इज एक्सपर्ट मीन्स वो उसका अपना लाइन भी बन जाता है. इसलिए ये बहुत इनकरेजेबल है. देन अदर्स जो है आपका इधर दिया हुआ है. और स्पेशली अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स टू आवर ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट. इन्होंने एक बढ़िया अच्छा चीज़ लिया है कि एयरगन सरेंडर अभियान. और कल भी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि अभी तो एयरगन सरेंडर अभियान के बाद हम कुछ चिड़िया का चींची या चिड़िया का आवाज़ सुनने आया है. ये अभियान सचमुच और भी जोर लगाने से ठीक है. रोयो सर, आई वुड लाइक टू अर्ज अपॉन ऑल माय esteemed colleagues, ऑनरेबल एमएलएस, अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में जैसा हमने तो सरेंडर कराया मेरा उधर जब मिनिस्टर आए थे, दैट इज़ ऑल्सो इन रिमोट प्लेस. जब फॉरेस्ट का वो लास्ट टाइम हमने डी रिजर्व के लिए रिक्वेस्ट किया था, आज भी ये चर्चा हुआ डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. तो मेरा उधर तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया. देन आई हैड यहाँ में अगस्त हाउस में हमने अपील किया था, अर्ज किया था गवर्नमेंट को. अकॉर्डिंगली ऑनरेबल मिनिस्टर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट ने आकर अपना खुद देखा है कि सचमुच गांव तो वाइल्ड लाइफ का अंदर में पड़ गया. दैट इज़ वाई इसको भी हम ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
एक कमेटी, हाई पावर कमेटी बनाकर, जैसा सर ने तो बोला है पूरा सुप्रीम कोर्ट में जाना है, तो सेम थिंग इसको सुप्रीम कोर्ट में तक ले जाने के लिए कमेटी बनाना पड़ेगा। कमेटी का स्क्रूटिनी करके हम लोग भेजना है। और आज तो इस आश्वासन दिया है ऑनरेबल मिनिस्टर एनवायरमेंट प्रदेश ने कि हर डीसी को और डीएफओ को और ऑनरेबल एमएलए लोगों को कि जल्दी से जल्दी इसका जो एक सजेशन या आपका उसका माइनस बना के भेजने के लिए वी आर डेफिनेटली, वो हम लोग ज़रूर हम तो भेजेंगे पास में, तो उसका आगे बढ़ाने से बहुत अच्छा है। एक हमारा जो गवर्नमेंट का ये 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में कैबिनेट मीटिंग हुआ था 0 में ऑन 28 फरवरी को। ये 365 इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट फिक्स किया था कि इस बार कंप्लीट होना है। ईयर ऑफ दी जुबली ईयर गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, बहुत अच्छा बात है। इसी तरह ये मिशन चलते जाने से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होंगे, हमारा जो स्टेट का, ये बहुत अच्छा है। इसको हम तो अप्रिशिएट करना ज़रूर है। और एक अच्छा काम किया ये गवर्नमेंट का, committed to provide 10% of state-owned taxes revenues to PRS, तो ग्रास रूट बॉडी को, ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन को, जैसा पंचायत बॉडी। ये बहुत अच्छा है कि ग्रास रूट में हम लोग इनकरेज देने से वही डेवलपमेंट उधर ही होगा। मेरा जो प्रीवियस स्पीकर ऑनरेबल एमएलए कोलोरेंग का, उन्होंने बोला है, बहुत अच्छा बोला है कि इतना इन्होंने एलाबोरेटली बोला है कि ग्रास रूट काम है, डेवलपमेंट काम है, गांव में है। गांव से डेवलप होने से हमारा बाहर में डेवलप होगा। इसी तरह ये जो है पंचायत राज को एक स्टेट लेवल से ये गवर्नमेंट 10% ऑफ स्टेट ओन टैक्सेस रिवेन्यू जो पीआर को देने का, ये बहुत अप्रिशिएबल है, सराहनीय है एंड अप्रिशिएबल। One of the most important topics during this ongoing BE 22-23, I'd like to speak the present scenario of education system. It's deteriorating day by day. The reason is very simple. Enrollment number decreasing due to non-functional schools in the main reason is SSA, Sarva Shiksha Abhiyan teachers. ये सर्व शिक्षा अभियान का जो है टीचर्स who have been posted in interior schools do not get regular salary even after 6 months. As a result, teachers are not staying at their posting place due to non-receipt of their payment. ये एक मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया और मेरा अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमा, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी एक डिस्ट्रिक्ट भी है, तो मोस्टली ये सर्व शिक्षा अभियान का जो टीचर्स है दे डू नॉट स्टे देयर बिकॉज ऑफ दैट ओनली। 6 महीना अगर दरमा नहीं मिलेगा वो कहाँ से खाएगा? गांव में तो कुछ मिलता नहीं। इसको हम लोगों को गौर से देखना पड़ेगा। और आई वुड लाइक टू माई हम्बल सबमिशन टू द गवर्नमेंट थ्रू यू सर कि इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। सर्व शिक्षा अभियान का कैसे पेमेंट कर सकते, वेदर वी कैन उनको रेगुलाइज कर सकता है या उसको पेज मैनर में हम लोग एक गोल्डन हैंडशेक देकर भेज सकता है। नहीं, दैट कैन बी थॉट ऑफ। हम लोग यही थोड़ा देखना पड़ेगा। सिंपली स्कूल टीचर चाहिए। अभी तो सीएम का जो है कि टीचर अपॉइंटमेंट के लिए प्रिंसिपल लोगों को और डीडीएसई को पैसा कुछ रखा है 7 करोड़ ना, इससे होने वाला नहीं है। विल हैव टू डू ड्रास्टिकली। हमको फ्यूचर को देखना है। जस्ट मोमेंटरी प्लीजर या मोमेंटरी के लिए ये कभी नहीं होने वाला है। इसलिए मेरा सबमिशन है स्पेशली चीफ सेक्रेटरी, लर्नेड चीफ सेक्रेटरी, लर्नेड कमिश्नर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो भी है, डीडीएसई या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन एंड इंक्लूडिंग आवर ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन, इसको थोड़ा आपको गौर से देखना पड़ेगा। तो सिंपली हम लोग टीचर को भेज देता, उधर बैठता है और सैलरी नहीं मिलता है, पढ़ाता नहीं बोलेगा। इसलिए तो लास्ट टाइम हमारा मोर देन 300 स्कूल तो दिपांग होकर अभी तो खत्म ही हो गया। तो इन डेट के सब ऐसा चलते जाएगा, प्रॉब्लम होगा। इसमें क्या है,
there are two sections of people. One is government employee है और थोड़ा इकोनॉमिकली अच्छा वाला है, और एक तो है एकदम फॉरेस्ट ऑफ द पोर, एकदम बैक में बैठा है. Their children cannot go, they cannot send it out for the better education. वो सेक्शन पूरा deprived, that is 80% है. बाकी 20% ओनली जो हम जो बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर हो या कुछ एम्प्लॉय हो या इकोनॉमिकली थोड़ा अच्छा हो, वो लोग तो भेज सकते हैं अच्छा अच्छा स्कूल. लेकिन अभी गांव में जैसे मेरे महंगे कावक है, जिगरी बस्ती है, रादुम है, युरकुम है, उधर रास्ता भी नहीं है. उधर का गांव का बच्चा लोग कहाँ पढ़ेगा? तो टीचर को बोलने से तो हम लोग दौरमा मिलता है नहीं, क्या करेगा? और वो लोग तो उपाय नहीं है, कॉन्टेक्ट ढूंढता है, उल्टा एमएलए को बोलता है हमको सप्लाई ऑर्डर दो. ये अभी हम लोग तो उल्टा है, वी आर बीइंग हरास्ड. तो उसका एक मेथड निकालना पड़े एजुकेशन सेंटर. अनदर थिंग इज दैट मशरूमिंग ऑफ कॉलेजेस. अपने टेक्निकल कॉलेज भी बनाया, अपने डिग्री कॉलेज भी बनाया, देयर इज नो एनी एकोमोडेशन. उसके बाद एकेडमिक ब्लॉक नहीं है, उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक नहीं है. कॉलेज तो दिपांग पड़ा हुआ है. तो इसलिए ये कॉलेज को भी हम लोग अभी, मेरा रिक्वेस्ट है कि जहाँ में पॉलिटेक्निक में स्कूल नहीं, ये स्टूडेंट नहीं है, डेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जो मॉडल डिग्री मॉडल स्कूल है या कोई भी स्कूल, उसको आप कन्वर्ट कर उसको दे दीजिए. जो पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं चल रहा है उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि आप फैकल्टी मेंबर उधर भेजेगा, स्टूडेंट नहीं है. 7 तो स्टूडेंट होगा और फैकल्टी तो मोर देन 13-14 होगा मैंने जो टीचर है. तो टीचर इज मोर देन दैट ऑफ स्टूडेंट. ये जो हम लोगों का जो थिंकिंग है, फर्स्ट वी शुड क्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, देन कम्स हमारा जो एरिया का फीडर स्कूल होना है, फीडर कॉलेज होना है, देन ओनली. येस्टरडे ऑल्सो आई पार्टिसिपेटेड रिगार्डिंग दिस. आज ये जो है इतना यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज डीम यूनिवर्सिटी और व्हाट इज ये जो यूजीसी का अप्रूव वाला यूनिवर्सिटी आने की, इतना बच्चा कहाँ होगा? तो इतना यूनिवर्सिटी, वेदर इट इज डीम यूनिवर्सिटी नॉट प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड. तो यूनिवर्सिटी बनेगा, बच्चा नहीं रहेगा. सिमिलरली ये टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज बहुत खुला हुआ है, हार्डली 7 और 8 स्कूल्स आर रनिंग. कॉलेजेस मेरा ख्याल में डिग्री कॉलेज में तो हार्डली जो अच्छा अच्छा कॉलेज वही चल रहा है. इसलिए इसको भी हम लोग वी कैन डू दैट, आपका प्राइवेटाइज कर दीजिए जहाँ में वो अच्छा से कर सकेगा. तो ऐसा ऐसा हम लोग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जस्ट मशरूमिंग ऑफ कॉलेजेस, मशरूमिंग, ये तो नहीं होना है मेरा ख्याल में. और मेरा अपना एरिया का यही है कि लास्ट टाइम ये बहुत ज़ोरदार से चल रहा था ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. डीपीआर भी हो गया, लेकिन इसका अभी नाम भी नहीं निकल रहा क्या हो गया ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर. क्योंकि हम लोग आसाम में पासेस होता है, स्पेशली मेरा दुलुमुख है. मेरा एरिया ऐसा है कि आसाम में भी लगता है, 8-9 टू एमएलए के साथ टच होता है, इंटरनेशनल बॉर्डर में भी पड़ता है. तो इसलिए ये ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो रोड है, इसको बनाने से बहुत ज़रूरत है और ये इम्पोर्टेंट है. ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग अप्रोच करना पड़ेगा ये देने के लिए. ये बनेगा तो हमारा जो फुट हिल इलाका का जो प्रॉब्लम भी बहुत सॉल्व होगा और इजीली वी कैन रीच टू द ईटानगर और डिब्रूगढ़, ऐसा भी होगा. हम लोग सब डेवलपमेंट तो देख रहे हैं, स्पेशली हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये तो चर्चा हुआ है. दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हम लोग ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, मिनरल एक्सट्रैक्शन. मेरा इलाका में एक बोपी से लेकर आई थिंक बसर साहब का उधर तक टच होता है, दैट इज ग्रेफाइट एरिया. एंड हमारा तक नाचो तालिया एरिया में भी, मैंने ये जो एरिया में है ग्रेफाइट बहुत होता है और लाइम भी है उस साइड में. ये सब हम लोग को थिंक करना पड़ेगा. एक कंपनी आया था, उसको फॉरेस्ट ने मना कर दिया है, ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को. इसको भी गौर से देखना है, क्योंकि ग्रेफाइट अपना इधर इंडस्ट्री हुआ था, हम लोग और बढ़ेगा. हम लोग हमेशा दिल्ली से मांगते रहने से नहीं हो. वी शुड थिंक फॉर, हम लोग अपना रिवेन्यू अर्निंग के लिए, रिवेन्यू जनरेट के लिए विल स्टार्ट नाउ. हाइड्रो हो गया,
ये ग्रेफाइट हो गया, कोल हो गया, देन ऑयल हमारा तिरप चकना वो साइड में तो बहुत है, आपका लोहित साइड में, ये भी हम लोग वी कैन थिंक ऑफ दैट फॉर फ्यूचर रिवोल्यूशन जनरेशन। अभी जो डिस्ट्रिक्ट क्रिएट हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट, हम लोग ने बोला ही था कि डिस्ट्रिक्ट हम लोग को चाहिए एडीसी हेडक्वार्टर, लेकिन अभी ये हो गया कि हम लोग को प्रॉब्लम हो गया है ना, इंटरनल रोड में विद इन दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एडीसी हेडक्वार्टर इंटरनल रोड नहीं है। ये सब थोड़ा अच्छा से देखने से ठीक है, क्योंकि इंटरनल रोड नहीं होने से डिस्ट्रिक्ट का हमारा उधर प्रॉब्लम है। तो टेकिंग दिस एडवांटेज, हम ये जो बजट को सपोर्ट करते हुए और सीएम, डीसीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्लानिंग डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को हम थैंक्स देता, कॉन्ग्रेचुलेट करता है सपोर्टिंग दिस बजट। बहुत अच्छा बजट है, सब में कवर किया है। अगर ये रियलिस्टिक में आएगा तब तो बहुत अच्छा है। तो उसी से साथ में मैं हमारा जो सीनियर लीडर फॉर्मर मिनिस्टर लंबोटाइंग साहब का जो प्रपोजल है उसको भी हम सपोर्ट करते हुए कि एटलीस्ट नॉन बीएडीपी फंड को 2 करोड़ बढ़ाने से ठीक है। और दूसरा है एमएलए लेट, जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे, अभी लीडर है, अच्छा है, उनका जो लॉन्ग साहब का जैसा एमएलए लेट को अगर 5 करोड़ कर देगा तो इससे बहुत डेवलपमेंट। हमारा एमएलए लेट को तो हम पूरा गांव में दे देते, इससे बचा है। बाकी में तो पान तो आया ही नहीं, एमएलए लेट को तो हम पूरा दिया तो गांव को सब एकदम ऑल ऑफ दे आर रियली हैप्पी। तो इसलिए इसको ये 2 चीज़ को आप लोग इस बार गवर्नमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों का जो मेरा सिर्फ नहीं होगा, लॉन्ग साहब का नहीं होगा या लंबोताई साहब का नहीं, हम सब का एमएलए को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 5 करोड़ का अगर एनहांस कर देता है तो बहुत अच्छा है। 375 है। देन ऑल्सो जो बीएडीपी नॉन बीएडीपी को 2 करोड़ करने से बोले विद दिस बाय सपोर्टिंग दिस बजट। चेयरमैन या स्पीकर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। Now, Honorable Member Nyamar Karbak. Thank you, Chairman sir, for allowing me to participate in this budget 2022-23. As government has stated, this year is a year of e-governance. Lots of innovations and new schemes has been taken under e-governance. I welcome that. Especially 4G mobile connectivity in 1,683 villages. ये इससे आज समाज में मोबाइल का होना, नेटवर्क का होना, इंटरनेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई के मामला में हो, चाहे वो खुशी का कोई खबर देना हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का वार्तालाप हो। तो आई वेलकम दिस स्टेप बाय गवर्नमेंट। एट द सेम टाइम इन पर्टेनिंग टू माय कॉन्स्टिट्यूंसी लिरमोबा, यमचा एंड दराक सर्कल, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी पूरे तरीके से नहीं है, एंड वी हैव आइडेंटिफाइड मोर देन 30 विलेजेस जहाँ पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। विद द हेल्प ऑफ डीसी आलो ऑलरेडी गवर्नमेंट में हम लोगों ने भेजा है, इसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी में लेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर सरकार ने बजट बनाया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। 6,000 सोलर स्ट्रीट लाइट for 700 borders blaze at ₹16 crore. इसका भी मैं वेलकम करता हूँ। At the same time, I'd like to suggest the government, अरुणाचल में सभी गांवों को स्ट्रीट लाइट का, सोलर स्ट्रीट लाइट का जरूरी होता है।
So not only border villages, if we can divide this into 60 constituencies, then every constituency will be getting 100 solar street light. एक मैं सुझाव देना चाहूँगा गवर्नमेंट को 50 micro hydel projects at the cost of ₹200 crore जो बनाने का बात किया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। इससे गांवों में जो बिजली का जो कंजम्पशन है उसमें लाभदायक होगा। और साथ ही साथ मैं ऑनरेबल डिप्टी सीएम और डिपार्टमेंट ऑफ हाइड्रो पावर को मैं एक सुझाव भी देना चाहूँगा। ऑलरेडी जो छोटे छोटे जो माइक्रो हाइडल्स बनाया गया है, सपोज फॉर एग्जांपल एट लिरमोवा आई हैव 2 megawatt हाइड्रो पावर जनरेशन इज देयर, जिसमें से 1 मेगावाट का चलता है। कंबा में आई हैव 6 मेगावाट का है एक हाइडल सिरू में, उसमें से 2 मेगावाट चलता है। इनको चलाने के लिए भी जो ईयरली जो एलोकेशन होता है बहुत ही कम मेंटेनेंस के लिए आता है, इसमें भी ध्यान देना चाहिए। नया बनाना चाहिए ज़रूर, लेकिन पुराना जो बन गया है उसे भी अच्छे तौर से चलाने के लिए कुछ रखने से ठीक है। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल के ऊपर में बहुत जोर दिया है इस बार का बजट में। मुख्यमंत्री शिक्षा कोष, जिसके अंदर एम्पावरिंग प्रिंसिपल एंड हेडमास्टर, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल और हेडमास्टर्स को एम्पावर करते हुए जो 7 करोड़ का धनराशि रखा है, ये भी बहुत वेलकमिंग स्टेप है, इससे प्रिंसिपल और हेडमास्टर को अपने स्कूल को एक अच्छे ढंग से चलाने में उसे मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री चैंपियन फंड छोटा जरूर है, लेकिन प्रयास बहुत बड़ा है। इससे कहा गया कि एक्टिविटीज़ लाइक ऐसे कंपटीशन में खर्च करेंगे, इसको 3 करोड़ रुपए रखा है पूरे अरुणाचल के लिए। ये मेरे हिसाब से तो फंड बहुत कम रखा है, इसे ज़्यादा रखना चाहिए। इससे एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक बढ़ावा मिलेगा और ये बहुत ही स्टूडेंट will be attracted towards schools also. This is a very welcoming step. At the same time, laptop for the toppers in every district, 10 लैपटॉप हर डिस्ट्रिक्ट में देने का बात किया है, ये भी वेलकमिंग स्टेप है और क्लास 10 और 12 का। लेकिन भी इन सम डिस्ट्रिक्ट देयर आर ओनली 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, इन सम डिस्ट्रिक्ट देयर आर 5 हायर सेकेंडरी स्कूल। एंड इस स्कीम को इस प्रकार से ना करते हुए मैं एजुकेशन मिनिस्टर और एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैं सजेशन देना चाहूँगा, इट शुड रीच टू एवरी हायर सेकेंडरी स्कूल अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश। बिकॉज आप इसको डिस्ट्रिक्ट तक सीमित नहीं रखते हुए लैपटॉप का अवार्ड को 1 या 2 रख दीजिए। whoever will be topper of humanities in class 12 in that particular higher secondary school will get 1 laptop। मगर प्रयास ये करना चाहिए कि हर हायर सेकेंडरी स्कूल में ये पहुँचे, तभी इसका असली ये स्कीम का असली में वो हो पाएगा, इसका नतीजा हम देख पाएंगे। एक स्टूडेंट में कंपटीशन का माहौल होगा, क्वालिटी एजुकेशन का माहौल होगा। ये एक बहुत इंकरेजिंग स्टेप है, इसे मैं वेलकम करता हूँ। गोल्डन जुबली अरुणाचल के 50वीं साल पर एक गिफ्ट जैसा स्टेट में 500 करोड़ रखकर 60 स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बनाने का जो बात किया है, ये बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। इससे नया अरुणाचल का आगाज़ होगा और अरुणाचल में शिक्षा में एक नया क्रांति हम लोगों को देखने को मिलेगा। और अरुणाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर अरुणाचल बनाने के लिए जो स्कीम्स जो रखा गया है, ये भी बहुत ही अच्छा स्कीम्स है, मैं इसका भी वेलकम करता हूँ। स्टार्टअप पॉलिसी के अंदर 50 करोड़ रुपए 5 साल में देने का बात किया है, ये भी वेलकमिंग स्टेप है। जिसमें 10 करोड़ इस साल देने के बात किया है, जिससे 31 स्टार्टअप को सिलेक्ट कर पैसे देने के बाद किया है, इसका भी मैं वेलकम करता हूँ। 32 लाख रुपीस एक स्टार्टअप में दिया जाएगा, ये बहुत ही अच्छा
योजना है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। चीफ मिनिस्टर पर्यटन योजना फॉर होम स्टे एंड एडवेंचर टूरिज्म एंड फूड कोर्ट्स, जिसके लिए भी 8 करोड़ रुपया का रखा है, इसका भी मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, विनती है, ऑनरेबल मिनिस्टर से, एंटायर टूरिज्म डिपार्टमेंट से, होम स्टे जो पुराना जो होम स्टे अरुणाचल में जो बना के है, सेम लोगों को इनवाइट ना करते हुए नए लोगों को भी इसमें मौका मिलना चाहिए। टू प्रमोट आवर कल्चर एंड आवर प्राइड, हमारा कल्चर को बचाने के लिए, हमारा प्राइड को बचाने के लिए कुछ स्कीम्स लॉन्च, कुछ स्कीम्स का घोषणा किया है इस बजट में, उसका भी मैं स्वागत करता हूँ। ट्रैवल सेंटर, ट्रैवल कल्चरल सेंटर 3 करोड़ रुपया, क्रिएशन ऑफ लोकल फेस्टिवल और लोकल फेस्टिवल के लिए भी 5 करोड़ रुपया, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। प्रीस्ट, जितने भी प्रीस्ट है उन लोगों को ऑनरियम देने के बाद भी किया गया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूँ। 4 करोड़ रुपये इसके लिए रखा गया है। लेकिन इसमें एक सुझाव भी देना चाहूँगा। अरुणाचल में खासकर मेरे गलो समाज में जब हम प्रीस्ट को हम निबो कहते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रीस्ट। एक प्रीस्ट होता है जो घर घर जाकर लोगों का इलाज करता है, लोगों के लिए पूजा करता है ताकि वो बीमार से ठीक हो जाए। और एक प्रीस्ट वो होता है जो गांगी में बैठते हैं और गांगी में पूजा करते हैं, चेंटिंग करते हैं लोगों के लिए, और जो गांगी आते हैं दर्शन के लिए, उसके लिए और हम लोग जैसे पंडित लोग करते हैं, रिदिन बांधते हैं, इस प्रकार का होता है। तो मेरे हिसाब से जो गांगी में रहते, गांगी में जो प्रीस्ट है, उन लोगों को जो गांगी का जो अरेंजमेंट है और जिस प्रकार से लोग श्रद्धा पूर्वक जो आते हैं, कुछ डोनेशन दे के जाते हैं, वहाँ से उन लोगों को कुछ धनराशि मिलने का मिलने का प्रावधान होता है। लेकिन सही मायने में जो प्रीस्ट घर घर जाके लोगों के लिए पूजा करता है, उन लोगों के लिए ऑनरियम उन लोगों को मिलना चाहिए अच्छी तरीके से। बिकॉज अरुणाचल में जो प्रीस्ट है, जो घर घर जाके लोगों को बीमार के लिए जो पूजा करते हैं, उनका संख्या दिन ब दिन घटते जा रहा है। घटने का कारण ये है कि दे डजंट हैव एनी प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम, उनका पास कोई डिफाइन नहीं होता है। इस प्रकार से उनको इस इलाज के लिए इतना रुपया, इस इलाज के लिए इतना रुपया, उनके लिए कोई डिफाइन नहीं है। तो इसीलिए इस धनराशि का उपयोग इन लोगों को ऊपर करने से, इन लोगों को आइडेंटिफाई करके इन लोगों को पैसा मदद देने से ये बहुत ही लाभदायक होगा, बहुत ही अच्छा होगा। और अंदर RWD डिपार्टमेंट मेंटेनेंस ऑफ PMJSY रोड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। PMJSY 1 में बहुत सारा सड़कें बनाई अरुणाचल में, लेकिन उन लोगों का मेंटेनेंस का टाइम भी खत्म हो गया है। तो अभी अरुणाचल गवर्नमेंट ने 60 करोड़ इसके अंदर रखने का प्रावधान जो बात किया है, बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है। एट द सेम टाइम मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए भी ऑनरेबल मिनिस्टर को, डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, BRTF रोड हाईवे से लेके दारक जो CO सर्कल को जोड़ता है, उसको भी इसका श्रेणी में लाना चाहिए, उसमें भी मेंटेनेंस का आवश्यकता है। रोड टू करबाग मोकू, दारक रोड टू करबाग मोकू, ये भी PMJSY पुराना रोड है, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, इसमें भी कुछ धनराशि रखना चाहिए। PMJSY रोड और बोले एनकाई एट लिरमोवा सर्कल, इसके लिए भी, इसमें भी कुछ रुपया देने का काम करने से बहुत ही अच्छा होगा। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से और डिपार्टमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, न्यू रोड काफ़ी लेने का बात किया है, मैं इसका भी वेलकम करता हूँ। साथ ही साथ ऑनरेबल CM को, ऑनरेबल डिप्टी CM को और एंटायर कैबिनेट को मैं ये रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट ADC सर्कल, योमचा सर्कल, जिसमें प्रॉपर रोड नहीं था, अभी गवर्नमेंट ने हम लोगों को वॉक टू योमचा रोड दिया है। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर तुंके बागरा जी और मेरे तरफ से भी गवर्नमेंट को थैंक्स देता हूँ। वॉक टू योमचा रोड को डबल लाइन रोड बनाने के लिए कुछ धनराशि रखा है, उसको हम लोग काम शुरू करेंगे। साथ ही साथ मेरा लिरमोवा EAC हेडक्वार्टर है, अभी भी कनेक्टिविटी नहीं है। योमचा से जो लिरमोवा का जो सफ़र है, जो रास्ते का जो निर्माण है,
इसको भी इस साल के अंदर में टॉप प्रायोरिटी में गवर्नमेंट ले देने से ठीक है। एक EAC सर्कल which doesn't have proper connectivity with own constituency is very tough. It's very tough and very difficult. इसको भी रखिए। और एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए जो सरकार ने जो बहुत सारे स्कीम रखा है, मैं सबको नहीं कहूँगा, मगर आत्मनिर्भर कृषि योजना 100 करोड़ का धनराशि, आत्मनिर्भर बागवानी योजना 100 करोड़ का, आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम 60 करोड़, आत्मनिर्भर पशुपालन 30 करोड़। ये बहुत ही, इससे एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा, बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। इसका भी मैं वेलकम करता हूँ। और साथ ही साथ ऑनरेबल CM और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी सब ने बैठकर अनटाइड फंड टू DCs इसको 50 से 75 किया है। ये भी एक वेलकमिंग स्टेप है। एट द सेम टाइम माय सजेशन विल बी, there are districts which has only 1 MLA. There are districts which has 3 MLAs, 4 MLAs, 5 MLAs. At the same time, when you are giving giving 75 lakhs to a district like Anjo, having 1 MLA, Madam, please don't mind, but 1 MLA. At the same time, West Siang having 3 MLAs. थोड़ा सा इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज नहीं करके MLA वाइज देना चाहिए। और उसके बाद एक रिक्वेस्ट भी है गवर्नमेंट से, while utilizing these untied funds by DC, they should consult the MLAs. At least ये इस बात का छूट भी होना चाहिए कि DC जहाँ मन करेगा वो उस फंड को यूज करेगा। There is no doubt about it. But at the same time, if DC can consult the concerned MLAs कि इस प्रकार का अनटाइड फंड है सर, कोई जगह में किस प्रकार से होना चाहिए, तो तालमेल का साथ होने चाहिए और अच्छा होगा। ये मेरा एक सुझाव है। एट द एंड आई टोटली सपोर्ट दिस बजट 2022-23। आई एम थैंकिंग फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल Chonamin sir and his entire team for presenting such a wonderful budget for the state of Arunachal Pradesh. With this word, thank you Honorable Deputy Speaker sir for giving me a chance. Thank you so much. Thank you. Next, GK Tako, Honorable MLA. Honorable Deputy Speaker, आज मेरा टार टाइम है कि बजट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला और अरुणाचल नामकरण का 50 साल है, गोल्डन जुबली बजट ही उसको मानता है, तो उसमें मुझे पार्टिसिपेशन करने का मौका मिला। भगवान को भी थैंक्स बोलता है। सर, इसमें बजट का ऊपर जो कमेंट है बहुत लोग दिया है, बहुत लोग का पढ़ा भी है, सब कुछ thoroughly देखा है। तो बजट पहले से अच्छा था, पहले भी अच्छा था, आज भी अच्छा है, लेकिन इस बार हमको ऐसा लगा कि मैं डीपली पढ़ा है तो 2-3 जैसे हम लोग ने फील करता था, ये जो अरुणाचली कैसे कैसे फील करता था, वो 2-3 चीज़ को फोकस किया गया है। उस 2-3 चीज़ को ही हमको बोलना है, क्योंकि अरुणाचल एक ट्रैवल स्टेट है। ट्रैवल स्टेट में एक बॉर्डर होता है, चाइना का साथ होता है, म्यांमार का बात होता है, भूटान का साथ होते हैं, और इसमें बॉर्डर ना हो के भी इंटीरियर सर्कल है, इंटीरियर गांव बहुत है। तो उस लाइन पे हमारा गवर्नमेंट फोकस दिया गया है, बजट में स्ट्रेस किया गया है, उसमें मैं दिल से बहुत खुश हूँ। तो उस चीज़ को 2-3 वर्थ फोकस करना चाहता है, क्योंकि आजकल ऐसा सिचुएशन था कि मेरा खास करके इंडो चाइना का बॉर्डर साइड का अगर बोले तो एक समय ऐसा था, हमारा वो नमक आता था, कपड़ा आता था, तेवित से आता था, तो हमारा लोग उस तरफ माइग्रेट करते गया। असम से उल्टा गया कि तेवित साइड में हम लोग चलते गया। अचानक ऐसा हो गया कि हम लोग को गवर्नमेंट इंडिया को फ्रीडम मिल गया, तो वहाँ बंद हो गया। तेवित को चाइना ने कैप्चर कर लिया, उसके बाद नमक कपड़ा सपड़ा सब यहाँ से आना शुरू हो गया, तो हम लोग वापस गया। तो ऐसे एक दौर आया कि सारा के सारा कुछ समय का बाद चलते गया, माइग्रेशन होते गया कि ईटानगर, नाहरलगुन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में चलते गया। अब ऑलमोस्ट बहुत सा गांव जो गायब हो गया,
कि कोई आदमी नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन है, वोटर्स है, लेकिन आदमी नहीं है, हाउस होल्ड नहीं है। ऐसे ऐसे सिचुएशन में वो सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, आई थिंक सारा डिस्ट्रिक्ट में जो स्टूडेंट लीडर सारा बहुत घुमा है। ऐसे ऐसे जगह है, एक गांव में सिर्फ एक घर है, 2 घर है, ऐसे सिचुएशन में पड़ गया। तो इस बजट में देखा है तो आपका इस गांव को कैसे बचाया जाए, उसको कैसे स्टैंडर्ड करेगा। तो लिविंग स्टैंडर्ड को बनाना है तो गांव का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये उसमें फोकस किया गया है। लाइक है उसका सारा सोल्यूशन तो माइग्रेशन को और कंट्रोल करेगा, प्लस यहाँ से गो बैक अगर होना है, गांव की ओर वापस चलना है, तो डेवलपमेंट ग्रास रूट से अगर डेवलपमेंट स्टार्ट करना हो तो गांव का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको फोकस किया गया है। मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता है कि गांव वालों की ओर से कि यहाँ में सोल्यूशन ये दिया है कि मॉडल विलेज स्टार्टअप हो गया, मॉडल विलेज देना है। एक गोल्डन जुबली का रेजोल्यूशन ने लाया है, उसको बजट में कन्वर्ट किया गया है कि माइक्रो हाइडल बनाएंगे। तो हर ब्लॉक में, अगर रूरल ब्लॉक में या बॉर्डर ब्लॉक में हाइडल बनाएंगे, लाइट अगर होगा, रोड का चलो रोड आते रहेगा, अगर वो हाइडल आ जाएगा तो उसके गांव का एक घर से दूसरा घर जाने के लिए बहुत दूर भी होता है, तो उसके लिए स्ट्रेट लाइट लगा देंगे। और अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम बना रहा है। ऐसे सिचुएशन अगर ये सच में ये बजट को इम्प्लीमेंटेशन में विश्वास करता हूँ, ये बजट है तो इम्प्लीमेंटेशन भी होगा, तो उसमें सारा अपना लोग अपना गांव वापस जाने का पॉसिबिलिटी बहुत आ रहा है। तो मैं उसी खुशी का साथ सारा प्रॉब्लम जैसे माइग्रेशन स्टॉप जाने से, माइग्रेशन का प्रॉब्लम ये ड्रग्स एडिक्शन जो भी डेवलप हो रहा है उसमें भी 50-60% जो है हमारा माइग्रेटेड पॉपुलेशन लोग, जिसका रहने का ढंग ठीक ठाक नहीं है, खाने के लिए प्रॉपर नहीं है, तो किसी भी आदमी का साथ दोस्ती यारी कर जाता है और ड्रग्स में चला जाता है। तो ये रूरल बच्चा लोग ही ज़्यादा वक्त ड्रग्स में चला गया। अगर ये अपना गांव में सही सलामत रहेगा, स्टैंडर्ड का साथ रहेगा, माँ बाप का साथ रहेगा, एजुकेशन अगर वहाँ है होगा, हेल्थ फैसिलिटी होगा, तो वहाँ ग्रोथ होके क्लास 8, 9, 10 पास होके आ जाएगा, मेच्योर होके आ जाएगा, तो टाउन में आने से भी ड्रग्स का साथ अपना आप भी कंट्रोल कर पाएगा। तो इसलिए ये अगर विलेज डेवलपमेंट पे स्ट्रेस दिया है, मैं सच में तारीफ करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ कि ये अच्छा बजट है, अच्छा प्रकाश किया गया है कि इसको बहुत सोच समझ के सोल्यूशन लाया गया है। ये सोल्यूशन अगर हो जाए 2-3 साल का बाद, हमारा ईटानगर हर सिटी में, टाउन में हल्का हो जाएगा, क्योंकि अपना गांव में रहने का स्टैंडर्ड एक फीलिंग्स आएगा। Honorable members, with the permission of the House, I extend time up to 6 p.m. for sitting. और एक छोटा सा है लेकिन बहुत सा जरूरी चीज़ हुई है। जैसे अभी हर गांव में, हर सर्कल, सीओ सर्कल में देखता है, एडीसी हेडक्वार्टर में देखता है, बहुत लोग माइग्रेट होके चला गया इंटीरियर में। कुछ लोग है जो है लेबर है, हमारा एएलसी बोलो या डिपार्टमेंट का कोई भी लेबर बोलो, लेबर लोग ही वहाँ बैठा हुआ है, लेबर लोग ही गार्डिंग कर रहा है कोई भी सर्कल को। तो उस लेबर के लिए ध्यान दिया गया है कि उसका लाइफ इंश्योरेंस देंगे, प्रीतार्थी पर इनाम गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत लाइफ इंश्योरेंस 2 लाख देंगे। ये सिचुएशन जो है लेबर के लिए ये है फोकस किया गया है। सच में ये सर डीसीएम सर को मैं और प्लानिंग फाइनेंस टीम को मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि आप लोग सच में इस लेवल तक का सोचा है। ये दिल से प्राउड फील करता है कि आप लोग है हम लोग के लिए सोचने वाला, ये फील करता है। अब अरुणाचल एक ट्रैवल स्टेट है, उसका आइडेंटिटी मेंटेन कैसे किया जाए, ये बहुत दिन से सोच रहा था। हम लोग एक रिलीजियस ऊपर रिलीजियस को लड़ते रहा, वो सोल्यूशन नहीं है, किसी का साथ लड़के कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अपना आपको, अपना इंडिजिनस को कैसे बचाए रखे, अपना ये है अपना डायलॉग को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए है गवर्नमेंट, पेमा खांडू गवर्नमेंट, चौनामिन साहब का गवर्नमेंट सच में सोचा है। तो उसको हम लोग उसका फ़ायदा उठा के अपना आइडेंटिटी को कैसे मेंटेन किया जाएगा, तो इसका सोल्यूशन के लिए डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। बहुत लोग का अभी कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत लोग का डिमांड भी आ रहा है कि इसका नाम इंडिजिनस अफेयर नहीं कि इंडिजिनस पेट कल्चरल अफेयर्स होना चाहिए। वो चल रहा है, चलते रहेंगे, लेकिन
सोच तो क्लियर है कि इंडिजिनस का बिलीफ ऑन पेट को कैसे बचाया रखे, ये डिपार्टमेंट ने आपने क्रिएट कर दिया। और हर गांव में हम तो पता है ये है, अगर उसको टीचर्स हम लोग डेवलप नहीं करेंगे, स्क्रिप्ट को डेवलप नहीं होने से कम थर्ड लैंग्वेज को लिखित रूप में अगर नहीं लाएगा, अभी हर अपना अपना भाषा गायब हो जाएगा। तो अब अपना ट्रेडिशनल का नाम में कपड़ा पहन के घूमने से नहीं होगा, क्योंकि सच क्या है, अपना भाषा को मेंटेन करना होगा, अपना ये बिलीफ को मेंटेन करना होगा, कल्चर को मेंटेन करना होगा। तो इसके लिए जो 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 कर रहा है, प्रबंधन रखा है, जो प्रोविजन रखा गया है, मैं दिल से खुश हूँ कि एक इंडिजिनस बिलीवर का तौर पे मैं दिल से खुश हूँ, क्योंकि इसमें आपको दिया क्रिएट कर दिया, विद सफिशिएंट फंड का साथ दिया है। और उस भाषा को, उस कल्चर को हर कोई वेल नॉलेज नहीं होता है, वेल इक्विप नहीं होता है, उसके लिए एक फीस होता है। वो फीस को अब ऑनररियम देने का बात कर रहा है। तो वो फीस अगर रहेगा तो हमारा कल्चर का बारे में हम कुछ साल का बाद लिखित रूप में पूरा रखेंगे, तो भी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपना आइडेंटिटी तो भी होगा। तो ये सच में एक और एक आपने बजट में क्लियर कर रखा है कि निबू निगम को गुरुकुल स्कूल है, उसको हर भाषा का, हर ये में ट्रैफ का अगर एक स्कूल हो जाए, अगर मेजर 26 है तो एटलीस्ट 26 स्कूल अगर खोला जाए स्टेट में, तो हर ट्राइब्स का अपना भाषा कम से कम मेंटेन किया जाएगा। हर ट्राइब का अगर कुछ तो पुजारी निकल जाएगा, कुछ तो नॉलेज आ जाएंगे। तो मैं विश्वास का साथ तो इस सॉल्यूशन का, इस बजट से हमारा ट्रैवल आइडेंटिटी मेंटेन होगा, ये मैं दिल से खुश हूँ और थैंक यू बोलता हूँ और तारीफ करता हूँ। और अभी जो है एक प्रेयर सेंटर बोलो या ट्रैवल कल्चरल सेंटर बोलो, जो जो कर रहा है, तो जो फाउंडिंग कर रहा है उसको दिया डिपार्टमेंट का थ्रू से जो भी हो, ये सजेशन है, कंप्लेन नहीं है, लेकिन उसको स्पेसिफिक, जैसे नॉर्मल स्कीम, जैसे ये किसी को स्कीम देने का चक्कर में नहीं जाते हुए, जहाँ सच में नीडेड है उसमें अगर किया जाएगा, ये मेरा विश्वास है। और डॉक्यूमेंट्री जो करना है उसकी, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस फंडिंग को यूज करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और सारा अभी और तार्कली मेरा एक इम्पोर्टेंट है, अरुणाचल में अगर दिया जाए, सारा बड़ा स्कीम का नाम बड़ा चल रहा है, सब तो बात चल रहा है कि नया टूरिज्म में अगर देखा जाए, अरुणाचल में हम लोग टूरिज्म हैब से हम बोल रहे हैं, हम सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको देखा है कि यहाँ बुद्धिस्ट सर्किट एक तो हो रहा है, एक हिंदू पिलग्रिम्स हो रहा है, परशुराम कांड हिंदू लोग आते हैं, तवंग या मेचुका बुद्धिस्ट बेज का कुछ लोग आते हैं, स्नोफॉल का एक बेज है। तो अदर हमारा टूरिज्म कुछ और सेक्टर दिखाई नहीं दे रहा है कि इसका मतलब उसमें हम लोग सीमित रहेगा क्या ना, और अदर कुछ और आइडिया ट्रैवल सेंटर में जहाँ टूरिज्म आ सकता है, इसका अट्रैक्शन के लिए दिया गया है। जैसे अभी एडवेंचर टूरिज्म है, जैसे अभी ट्रैवल विलेज, एक लोग तो हमारा बिल्डिंग देखने के लिए नहीं आएगा, जैसे हमारा निशी लोग किस टाइप का रहता है, गालो किस टाइप का रहता है, आदि किस टाइप का रहते हैं, ओक्चो नोंगते किस टाइप का रहता है, उसका एक विलेज को अगर किया जाए, डेवलप किया जाए, एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल विलेज, नहीं मॉडल नहीं है, उस तरह पुराना ज़माना का विलेज ये क्रिएट किया जाए, और एडवेंचरस को तो करना ही करना है। ऐसे ऐसे करके अगर हम लोग को क्रिएट करने का अगर प्रोविजन यहाँ दिया गया है, मैं भी उसको दिल से वेलकम करते हुए और एक्सेप्ट करता हूँ कि और तारीफ करता हूँ, ये सच में सोचा है, अच्छा सोचा है, और उसे ही हम लोग अरुणाचल पूरा कवर कर पाएगा। अदरवाइज हम लोग ये 2-3 डिस्ट्रिक्ट को डिपेंड करते रहेगा, उसमें टूरिज्म आएगा, ऐसे कुछ पर आगे बढ़ेगा नहीं। आगे बढ़ाना है तो सबको कवर करना होगा, हर एंगल में, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा चीज़ क्या है, तो उसको हम लोग फोकस आउट करना, उसके लिए जो प्रोविज़न रखा है बहुत अच्छा है। लास्टली, और मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए, डीसी को 75 लाख इन्हेंस किया 50 से, अच्छी बात है। तो डीसी सच में डिस्ट्रिक्ट में छोटा चीज़, बड़ा चीज़ भी हैपनिंग होते रहता है, तो इमरजेंसी हम लोग कभी कभी पॉलिटिशियन हिसाब से दिखाई भी नहीं देता है, ऐसे सिचुएशन में वो डीसी का काम आएंगे। लेकिन ऐसे मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगी, सबमिशन रहेगा कि डीसी का भी थोड़ा इन्हेंस करा दे,
ताकि बहुत लोग का एक कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग एक कंस्टिट्यूंसी में एडीसी इंडियन बिजनेस चलाता है, तो एडीसी का भी अगर 20 था तो 40 कर देने से बहुत अच्छा है, तो देते एडीसी इंडियन बिजनेस एडीसी भी अपना काम अपना हैंडल कर सके। जो मैक्सिमम डीसी ये बोलता है कि इंडियन बिजनेस डीसी आप अपना देखो इस टाइप का भी आ जाता है। तो मेरा ये सबमिशन रहेगा कि एडीसी का भी कुछ इन्हेंस किया जाए तो बहुत अच्छा बात है। और ओवरऑल 2-3 जो है अरुणाचल बेस का जो हमारा आइडेंटिटी बेस में कुछ था हमको दिल में लगा, मैं उसको बोलता हूँ। ऐसे नहीं कि दूसरा चीज़ को अच्छा है खराब है, हम नहीं बोल रहे, क्योंकि अच्छा तो अच्छा ही है, क्योंकि सारा चीज़ मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं अपना दिल में जो आया, जो बेस हम लोग का हुआ, जो सोच में आया, तो वो रिफ्लेक्ट होने से खुशी में अपना वर्ड को ये कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। और ना ज़्यादा बोलते हुए थैंक यू डिप्टी स्पीकर सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट यातो डुकुम ऑनरेबल एमएलए। ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर, ये जो 22-23 का जो बजट है वो निसंदेह एक बहुत रियलिस्टिक बजट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस बजट में पारदर्शिता हो, जो बजट जन कल्याण के लिए हो, वो बजट मैं तो कहूँगा सबसे बढ़िया बजट है। और हर साल इन 3 सालों में जो देखा हूँ मैं, हर साल बजट जो है अगले साल से और बढ़िया बन के आ रहा है। जो बजट है रिवम्प होता हुआ ये बजट आ रहा है 1920, 2021 एंड 22-23। यहाँ जैसे हर वर्गों के लिए स्कीम्स रखा गया, प्रावधान रखा गया, हर क्षेत्र के लिए रखा गया, हर डिपार्टमेंट के लिए रखा गया। ऐसा कोई नहीं है जहाँ छुआ नहीं हो। जैसे हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, रोड कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, ई गवर्नेंस में, माइक्रो हाइडल में, टूरिज्म में, हर क्षेत्र में जो प्रावधान है वो काफ़ी है। अभी यहाँ में जितने वक्ताओं ने यहाँ अपना बात रखा है, अब लगभग सब बिंदुओं पे उन लोगों ने बात किया है, अपना बात रखा है। मैं चंद जो बिंदु है जो मेरे नज़र से मुझे अच्छा लगा, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक मेरा जो वक्तव्य होगा उसको रखते हुए मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस भी सदन के सामने रखूँगा। कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं डिप्टी स्पीकर सर, यहाँ सदन में, सदन के थ्रू से, आपके थ्रू से, आपके माध्यम से हमको, हमारे लोगों को बताना होगा कि ऑब्जर्वेशन, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है, वो भी पब्लिक जानना होगा। तो बीच बीच में मैं अपना ऑब्जर्वेशन भी रखता हुआ अपना बात रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आत्मनिर्भर अरुणाचल के ऊपर मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा। अभी जिस तरह से जो आत्मनिर्भर अरुणाचल में जो प्रावधान है, मेरे ख्याल से अगर ये जमीनी स्तर पर अगर सही ढंग से इस स्कीम को, इन सारे स्कीमों को रखा जाएगा, तो हमारा जो रूरल इकोनॉमी है उसमें बूस्ट अप होगा। अभी क्या है कि देखिए, हर सरकार पब्लिक के लिए होता है, लोगों के लिए होता है। हर सरकार कोशिश करती है कि बजट अच्छा हो, लेकिन बजट जिसके लिए रखा गया है वहां तक पहुंच रही है कि नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये जमीनी स्तर पर अगर पहुंचा,
मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले साल हमारे जो ग्रामीण जो लोग हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, देहातों में जो रहते हैं, उनका जो इकोनॉमी, ये अभी जो हाल है वो नहीं होगा, बेहतर हो जाएगा। अभी तो ऐसा हाल है, मैं बताऊं आप लोगों, सदन को मैं बताऊंगा, मेरे ख्याल से सबके अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा ही होता होगा। पता नहीं, कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र होते होंगे जहां जो खेती बाड़ी अच्छा होता होगा, लोग खेती बाड़ी में लगे हुए होंगे, लेकिन अभी जो तकू साहब ने जो बात रखा है वो मेरा भी बराबर है। ना वहां बॉर्डर में पड़ता है, ना अर्बन में पड़ता है, बीच में अटका हुआ है। बॉर्डर के नाम से बीएडीपी मिल रहा है, अर्बन के नाम से अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, खूब हो रहा है, लेकिन हमारे तो बीच में फंसे हुए हैं। उसके ऊपर हमारा दुखड़ा ये है कि हमारे लोग गांवों में बिल्कुल भी नहीं है, सब चले गए, माइग्रेट करके निकल गए। क्या करते होंगे शहरों में, क्या करते होंगे हेडक्वार्टर में, कैपिटल में आके क्या करते होंगे, कहां से खाते होंगे, कमाते होंगे, ये पता नहीं। गांव में लोग नहीं है, जो है बूढ़े लोग हैं, खेती बाड़ी करने लायक लोग नहीं है। वहां खेती बाड़ी तो बिल्कुल छोड़ दिया लोगों ने, बिल्कुल छोड़ दिया। अब मैं एक किस्सा आप लोगों के सदन के सामने रखूंगा डिप्टी स्पीकर सर, कि इसका जो उदाहरण है आप इलेक्शन में देखने को मिलेगा। इलेक्शन में क्या होता है, हमारे वहां से भी ज्यादा कुछ लोगों का तो होता है। मेरा परसेंटेज मैं बता दूं, जब इलेक्शन होता है, मेरा जो कैंपेन होता है 50% यहां कैपिटल में खत्म हो चुका होता है, बाकी 50% जो रह जाता है, 30% मैं दापोरिजो हेडक्वार्टर में कैंपेन खत्म कर देता हूं। सिर्फ 20% लोगों के लिए मैं गांव में जाता हूं। ये है हाल गांवों का, आज का हाल। मैं तो सुनता हूं ये ताली वाले हैं जो हमारे जिक्र तक साहब के, उसके तो 90 के 90% कैंपेन यहां होता है ईटानगर में, वहां 10% के लिए वो लोग वोटिंग करने के लिए जाते हैं। इससे आपको पता लगा, सदन को पता लगाना होगा कि हमारे गांव के क्या हाल है। प्रावधान तो बजट में है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको जमीनी स्तर पर कैसे रखा जाए, हकीकत में इसको कैसे बदला जाए, लोगों को कैसे मोटिवेट किया जाए, उस पर भी सरकार को हमको ध्यान देना होगा, प्रावधान उस पर भी रखना होगा। केवल आप वहां खेतीबाड़ी करने का, बागवानी करने का, किचन गार्डन करने का बहुत सारा वो प्रावधान रखोगे, करेगा कौन? वहां लोग है ही नहीं। तो अभी कुछ लोगों ने शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ लोगों ने कहा है ट्रैक्टर का खरीदारी हो रहा है, ट्रेलर का वो उसका खरीदारी हो रहा है। उसका उपयोग कहां करोगे, प्रश्न ये है। हमारे वहां तो चलेगा नहीं, पहाड़ों में आप ट्रैक्टर कैसे चलाओगे? हल भी जोता नहीं जाता है, जानवर घूम नहीं सकते, हल नहीं जोता जा सकता है, तो आप ट्रैक्टर कहां चलाओगे? ये मेरे ख्याल से जो हमारे जैसे जो रीजन है, एरिया है, उसके लिए प्रावधान अलग रखा जाए, और जो फुट हिल्स में है उसके लिए आप ट्रैक्टर खरीदे, ट्रेलर खरीदे, कुछ भी खरीदे, मशीन खरीदे। हमको तो अलग चीज चाहिए हमारे गांवों में। अब बजट के बारे में तो मैं तो कह दिया हूं, इतना पारदर्शिता है, इतना अच्छा है बजट। तो एक किसी विद्वान ने कहा है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अरे हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, आप तो हर कोने पे पहुंच चुके हैं। आपके नजर इतना पारदर्शिता है कि गांव गांव तक पहुंचाइए। जैसे जिस तरह से आपने आत्मनिर्भर अरुणाचल के लिए जो प्रावधान रखा है, ये बहुत अच्छा है। हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाए, इस पे भी
थोड़ा सा, अगर एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी मेरा ये है, थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दें। और अभी प्रीस्ट के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। हमारे जो प्रीस्ट है, अभी जिस तरह से ऑनरेबल मेंबर न्यामर करबक साहब ने कहा है, बाहर वाले कोई माने ना माने, लेकिन हम टाइम मेमोरियल, हमारे परदादा, दादा परदादा, हमारे पास प्रमाण है कि ये जो प्रीस्ट लोग हैं, पुराने जमाने में जब डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, जब ये मेडिकल साइंस जब नहीं आया था, तब हम किससे बचे? प्रीस्ट लोगों ने तो हमें बचाया। हमारे बचपन में हमने अपने आंखों से देखा, बहुत करिश्माएं करते हुए, ये जो नींबू कहते हैं हम लोग, इन लोगों को अपने आंखों, हम खुद अपने आंखों से देखा हुआ चीज वो करते हैं, इलाज करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, जो इविल स्पिरिट है उसको भगाते हैं। ये सच्चाई है। अब जब ये सारे खत्म हो जाएंगे तो ये नींबू का खत्म होना नहीं, ये फ्रिस्ट का खत्म हो जाना नहीं, उसका लुप्त हो जाना नहीं, ये तो कल्चर का लुप्त होना कहा जाना चाहिए। कल्चर लुप्त हो जाएगा, हमारा ट्रेडिशन गायब हो जाएगा अगर नींबू गायब हो जाएगा तो। इसके लिए भी देखिए, हमारे बजट में इतना अच्छा प्रावधान रखा है, इससे बेहतर और बजट हो ही क्या सकता है? बजट तो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं माइग्रेशन पे फिर थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा। अभी प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये यूनियन बजट में है। यूनियन बजट से हमारे जो सरकार ने इस बजट में 4,000 करोड़ का प्रपोजल टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एज पर दिस प्लान। अभी हमको जो शहरों में जो माइग्रेट हो रहा है गांव से, उसको रोकने के लिए ये बहुत अच्छा कदम है। इस कदम को और भी जोर देते हुए इस कदम को फेल होने न दे, ये कदम आगे जाएगा। अब मैं बजट पे और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो मेरे बातों को रखने से पहले मैंने कहा था कि कुछ ऑब्जर्वेशन भी रखूँगा। कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसा है, मैं सदन को बताना चाहूँगा, डिप्टी स्पीकर सर, जो स्कीम्स का जो पैराचूटिंग होता है, एमएलए को पता नहीं है। जब एमएलए कोई उस क्षेत्र का जो एमएलए है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसको पता नहीं है, लेकिन वहां स्कीम सैंक्शन होके आ जाता है, और जो हमारा प्रपोजल है वो कहीं गायब हो जाता है। और जो लोग उन स्कीमों का जो मालिक जो सैंक्शन होके आया है, उन लोग वहां कहते हैं कि देखा, हमको क्या जरूरी है हमारा अपना सरकार होने का, हमको तो ऐसे ही मिल जाता। ये सरकार को बदनाम नहीं है क्या? इज इट नॉट ए टैग ऑन आवर गवर्नमेंट? बहुत खराब टैग है। लोग लेके भी बुराई करके लेते हैं। ये है, होता कैसे है? मैं फाइनेंस मिनिस्टर इंचार्ज, जो हमारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इस पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, ऐसा आइंदा ना हो। और पिछले 2 सालों में जो अनटाइड फंड है, वो जो हुआ करता, जो हम लोगों को देता है, जो हमारे पास आते थे, कम था या ज्यादा थे, हमारे पास आते थे, हम हमारे जरूरत के मुताबिक हम उसको स्कीम आइडेंटिफाई करते थे, कहाँ उसको खर्च करना है, क्या करना है। लेकिन इस बार ऐसा
डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भूचाल आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां के लोग चिल्लाने लगे, आपने क्या गलती किया जो आपको 1 रुपया भी अंतर फाइन नहीं दिया? आपने क्या किया जो आपको नहीं दिया? तो मैंने डीसी को फोन किया। अब डीसी बोलते हैं कि वो अंतर हैज बीन एग्जॉस्टेड, सो आई एम सॉरी। जस्ट उसने सिर्फ सॉरी कहा, अभी तक यहां मैसेज है। सॉरी से तो काम होता नहीं। अभी सदन के माध्यम से, डिप्टी स्पीकर सर, आपके माध्यम से जनता को मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। कहीं ना कहीं कोई लूपहोल्स है, समवेयर सम लूपहोल्स इज देयर, तो विच इज टू बी, जिसको करेक्ट करना जरूरी है। दिस शुड बी करेक्टेड, अदरवाइज ये एक दब्बा होगा सरकार के ऊपर, हमारे ऊपर। इतना अच्छा सरकार चल रहा है, इतना सुंदर, इतना पॉपुलरली इलेक्टेड सरकार है, इस पे क्यों दब्बा लगने देते हो? कौन है ऐसा लोग? ऐसा लोग कौन है? इसको ढूंढ के निकालना होगा, कुरेद कुरेद के इसको ढूंढना होगा, निकालना होगा। कौन है ऐसा करने? कोई तो है। Now, lastly, Deputy Speaker, sir, I thank you for giving me this opportunity to take part in the budget discussion. And while thanking you, I thanks to Honorable Chief Minister, the dynamic Chief Minister Pema Kanduji, and the most experienced, most senior leader, Deputy Chief Minister Chonamenji, and all the Council of Ministers and all my colleagues for hearing me. Thank you very much. Thank you. Next, Nabam Tuki, Honorable MLA. Honorable Deputy Speaker, sir. So, 2022-23 budget has been already passed by the House, but this will be the discussions can be taken as a suggestions from our side. So I don't want to take much of your time with few suggestions that which I will mention about the certain development projects in the state. First of all, I'd like to express my gratitude to Honorable Speaker, who was also the chairman of Arunachal Pradesh Golden Jubilee Celebration Committee, who could able to organize beautifully during the celebrations, and under the guidance and good heart of Honorable Chief Minister Pema Kanduji, that all the Pradesh councils, the agency councils were recognized and felicitated, including senior leaders, the former chief ministers of the state were also felicitated the occasion of State Golden Jubilee celebrations. And this year, being a Golden Jubilee year, the government has also taken initiative to name many of the projects in further development in coming years in memory of those pioneers, those leaders who were served the state as Pradesh councils, then agency councils. And in this budget speech,
I could able to see that there are proposal for golden jubilee schools to be established every and each assembly constituencies, which is good step and good decision taken by the cabinet under the leadership of Chief Minister. I appreciate such steps. There are many other initiatives in this budget which I don't want to repeat it because of constraint of time. So I don't want to take much participation in all the subjects that all honorable members has already spoken. And they have expressed their views and their opinions, suggestions, and points. I will be limited to certain points that which is important, which I usually said, and also I mentioned this in previous budget sessions also, that the previous initiatives taken by the previous governments should also be carried forward, like the district secretariat, mini secretariats, cement concrete roads, and other infrastructure development in the border areas that has been already mentioned in this budget speech. I would like to suggest that those infrastructure development created during 1970s, 80s, 90s, the OBT type, Assam type, what called SPT types of building, just to establish the administrative headquarters in various parts of the state, in many districts. The circle headquarters, ESC headquarters, ADC headquarters. We have to take care of those areas also, and we have to replace them by constructing a permanent establishment like office and residential areas. So that is not seen here. I think it is missed in your budget speech. Maybe overall you might have kept the provision, I don't know. That is most important areas. And we have to see that the communications, of course, it is very key for the development. The road communication, particularly in border areas and the interior areas, the administrative headquarters were still not yet connected by road communication. That has been mentioned, of course, Vijaynagar, Baming, then Tali, Pepsorang, those areas has been mentioned in the budget. There are some more areas which are not yet connected. First, we have to see this Arunachal into three parts: the foothills, middle belts, and the higher belts. Then we have to identify the places where it is already connected, which are the places still yet to be connected, and which are the administrative headquarters not connected by all weather road. That these areas we have to identify. And there are certain villages also which are not connected because of connected by PMGSY because of less population. But though they are less population, but people are important, they must also be connected by road communication. Where there is not feasible for the PMGSY, then the state plans should be provided to there, so that village can be connected through state plan schemes. This way, we can propose in current budget or the future, because budget and planning and budget and development is a continuous process. It keep on going.
but we have to plan according to our need, according to our resources. In my area, of course, almost many of the administrative headquarters has been connected. But one headquarter, Sagali to Parang, was constructed long back, but roads are not maintained. Dilapidated conditions, lot of potholes, can't move 10 kilometers an hour. And public, they do repair themselves every year, but that can't be continue for long. So I also requested Honorable Chief Minister also, being the in-charge PW Minister, that road can be considered in current financial year on priority basis, because it is a connection connecting to one administrative headquarter to another administrative headquarter. The rest are connected by PMJSY road. Another important one that which I would like to mention here is that the engineering college. It was, I think, the proposed first engineering college in our state, Toru Engineering College. And I raised this here in the assembly twice. And every year budget, of course, they kept budget provisions for that. The main administrative block, boys and girls hostel were constructed. And it is about to complete by this, I think, next 2 to 3 months' time. That will be completed. But after that, there are a lot many works to do. To establish engineering college, make it functional, we have to build the infrastructure fully. First, we have to provide water supply. We have to provide them electricity. We have to make approach and colony roads, then drainage and sewerage systems. We have to have minimum infrastructure requirement for the college, the auditoriums or indoor halls, something like that. Then the residential buildings for faculty members, for staffs. So for that, this you have kept rupees 3 crores in this budget. I don't think it will sufficient for that. At least minimum. My request would be, at least it will not sufficient. It is an engineering college, not the ordinary college. It is not a school. It grow in future. It may be cross 100 crores and above. But for the beginning, not that much amount not required, but at least 15-20 crore will be required to start with the college. And to make it functional, we have to post immediately the principal or staff. Which staff, not all, to start with, because they require a leadership. कोई लीडर तो चाहिए, उसको कम से कम जो जरूरत को प्रोजेक्ट बनाएगा, जरूरत को बताएगा, डिपार्टमेंट को, सरकार को बताएगा, ऐसे आदमी तो चाहिए ना। एक कम से कम पहले प्रिंसिपल पोस्टिंग हो जाए, ताकि वो वहाँ बैठ के देखेगा, काम को स्पीड लगाएगा, थोड़ा सजेशन देगा, ऐसा करके जल्दी से करवा सकते हैं। नहीं तो फिर वो डिफांग होके बैठ जाएगा, और एक काम में उसको इंतजार करते करते इट विल टेक अनदर 5-10 years टाइम। तो तब तक तो स्टेट का जो जरूरी था वो पूरा नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज स्टार्ट करने के लिए कोशिश किया था। इट इज नियर बाई स्टेट कैपिटल, यहाँ से 1 घंटा सिर्फ रास्ता चलती है। और हाईवे सामने है अभी तो, ट्रांस अरुणाचल हाईवे। यहाँ का जो स्टूडेंट है जो बाहर पढ़ने जाता है, अभी इस समय पेंडेमिक पीरियड में, कोविड-19 पेंडेमिक में कितना हमारा बच्चे तकलीफ हुआ, कितना लोगों को सहना पड़ा है तकलीफ हर जगह में।
कितना माँ पिताजी उसका गार्जियनों को कितना उस समय में डर लगा था। तो ऐसा स्थिति हो जाता है। तो अपना स्टेट में कम से कम बाकी कॉलेज तो है, डिग्री कॉलेज तो अवेलेबल है, डिग्री कॉलेज का और ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जो है उसको हम लोग अच्छा से मेंटेन करें या मैनेज करें, एडमिशन सिस्टम मैनेजमेंट कंट्रोल करें तो ठीक है। लॉ कॉलेज भी है, बाकी सब कॉलेज है, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए हमारा बच्चे सब बाहर जाते हैं। तो अपना स्टेट में अगर 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज होने से तो और अच्छा होगा, तो लोग बाहर जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, यहाँ पड़ेगा और वहाँ बाहर से लोग यहाँ आके पढ़ाएगा तो मेन फैकल्टी मेंबर के लिए। ये मेरा हर समय मेरा विनती हुई है कि इंजीनियरिंग कॉलेज इज बिलोंग टू स्टेट, नॉट बिलोंग टू सगाली और नॉट बिलोंग टू माई कॉन्स्टिट्यूंसी एलोन। ये पूरा स्टेट का एसेट है और ये स्टेट का कॉलेज होगा। पूरा अरुणाचल वहाँ जाके पढ़ेगा, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान देने से ठीक होगा, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकने से, या तो एटलीस्ट टू बिगिन विथ। और कुछ इसमें सेकेंडरी स्कूल भी है, वो अच्छा से फंक्शन नहीं हो रहा है, उसको भी ले सकते हैं कॉलेज में, उसको भी ले करके जो वर्तमान जो एसेट है उससे शुरू भी कर सकते हैं। कम से कम फॉर टू स्टार्ट विथ सर्टेन इक्विपमेंट्स, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स विल बी देयर, वो शुरू कर सकते हैं। तो ये मेरा रिक्वेस्ट था। और जो रेस्ट जो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज हो मेरा डिमांड था। और एजुकेशंस में तो एक सजेशन देना चाहता था। एजुकेशन में आप लोगों ने इस साल ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया, लोग बहुत खुशी हुआ, हम लोग सपोर्ट किया और लास्ट ईयर बजट में भी हम लोगों ने ताली बजाया। प्रीवियस ईयर ने हेल्थ ईयर ऑफ हेल्थ के लिए कहा, वो भी अच्छा डिसीजन था, भी सपोर्टेड। तो बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया होगा, अच्छा से हुआ होगा, और पेंडेमिक मैनेजमेंट वगैरह तो दैट ऑल सपोर्टेड। जैसे सीएम साहब ने कहा कि टीम अरुणाचल, सो वी आर पार्ट ऑफ टीम अरुणाचल। हम होल हार्टेड आपका टीम के साथ मिलकर हम लोगों ने काम किया ताकि अरुणाचल डेवलप हो। अरुणाचल तो एक परिवार है, अनेकता में एकता है। अरुणाचल जैसे सुंदर जगह तो कहीं मिलेगा भी नहीं दुनिया में, अरुणाचल जैसे सुंदर समाज कहीं दुनिया में मिलेगा भी नहीं। इतना सुंदर समाज है, हम लोग एक साथ मिल के रहते हैं। तो टीम अरुणाचल ये जो हम लोग का जो स्लोगान है, ये पॉपुलर स्लोगान है, अभी दूसरा प्रदेश में भी वो उसको सीखेगा। तो टीम अरुणाचल में हम लोग मिलके ये जो भी निर्णय लेता है तो हम लोग सपोर्ट करते हैं अरुणाचल का हित के लिए, अरुणाचल का लोगों का उन्नति के लिए। तो इसलिए मेरा वही है कि जो लास्ट ईयर में आप लोगों ने ईयर ऑफ हेल्थ डिक्लेयर किया तो बहुत कुछ किया होगा, लेकिन हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में या कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिला, क्योंकि अब जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जैसे परंकाल क्वेश्चन पेपर में पूछा था ना, वो अभी तो कंप्लीट नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है और काम भी कंप्लीट नहीं है, फाइनेंशियल फिजिकल कंप्लीट नहीं है। सगाली में सीएचसी बिल्डिंग को फर्स्ट फ्लोर सिर्फ बना के यूज कर रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट सेकेंड फ्लोर बनाना बाकी है। हाँ, वो बाकी है, आधा बना करके वो भी उसको भी कंप्लीट नहीं है। तो बाकी सब फैसिलिटी तो है, ऑक्सीजन वगैरह तो ऑक्सीजन प्लांट वगैरह तो दिया है, तो वो पूरा नहीं हुआ, तो उसको भी ध्यान में रखने से ठीक है, क्योंकि आपका पॉपुलर स्लोगान है तो उसको कमिटमेंट को पूरा करना है। और पूरा अरुणाचल एज ए 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एज अरुणाचल देखना चाहिए, तो ये कामयाब होगा। तो दिस ईयर ऑफ एजुकेशन में आप लोगों ने 1000 करोड़ एलोकेशन दिया, और अभी बजट स्पीच में दिखाई तो 1300 करोड़ है, 1000 से ज़्यादा हो गया आरई में। तो वो पैसा हम सोचा कि हम लोग को भी कुछ मिलेगा, लेकिन तो मिला तो नहीं, वो क्या फॉर्म में दिया वो भी पता नहीं है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया या स्कूल में भी मिलेगा, वो भी वो
उसका इतना जानकारी नहीं है, इसलिए प्लानिंग को डिपार्टमेंट अच्छा से भी उसको नीड बेस में देखने से ठीक है। नीड बेस जहाँ ज़रूरत है उसको देखना चाहिए। तो हम मंत्री को भी पूछा था, हमको तो हमारा सगाली को भी थोड़ा ध्यान रखो बोल के बोला, तो उनका हाथ में पैसा नहीं आया, वो पैसा कहाँ गया। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि मेजर जो सेक्टर्स है, हेल्थ है, एजुकेशंस है और जो कम्युनिकेशंस है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर्स है, जो इकोनॉमी सर्विस के लिए करते हैं, वाटर सप्लाईज है, पावर, इरिगेशंस है, जो रूरल एरिया का डेवलपमेंट इम्पोर्टेंट है। वो मेजर सेक्टर्स को ध्यान दे करके उसको अच्छा से प्लान करने से ठीक है। या डिपार्टमेंट वाइज प्लान करिए या सेक्टर वाइज प्लान करिए, अच्छा से प्लानिंग को करने से ठीक होगा। जो जनरल डिस्ट्रीब्यूशंस तो उसका बाद में करने से ठीक, क्योंकि मेजर सेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर, उसका बिना तो होगा नहीं, स्टेट आगे नहीं बढ़ेगा। मेजर सेक्टर को एजुकेशन और हेल्थ को तो ध्यान रखना ही है, उसका बिना तो कैसे आदमी चलेगा। आदमी खुशी तो उसी में होगा जहाँ हेल्थ एंड एजुकेशन ठीक होगा, तब स्टेट डेवलप होगा। ये दोनों सेक्टर को केयरफुली, इसलिए मेरा सजेशन होगा कि एजुकेशन में बहुत सारा स्कूल दिपांग हो गया, नॉन फंक्शन स्कूल तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी बहुत है। एमई स्कूल भी नॉन फंक्शन है, कुछ सेकेंडरी स्कूल भी नॉन फंक्शन हो गया, और कुछ गवर्नमेंट लोग ने शायद उसको ये भी कर लिया होगा। मेरा सजेशन होगा कि जो पॉपुलेशन माइग्रेशन की वजह से हो सकता है या फैसिलिटी का कमी होने की वजह से हो सकता है, स्कूल कैसे बंद होगा। इतना सारा स्कूल तो सडनली बंद होना तो बहुत गलत बात है ना। इसलिए वी हैव टू आइडेंटिफाई दो एरियाज, दो स्कूल्स, इसलिए कंटिन्यू करने। मेरा पहले भी हम सजेशन दिया था कि इंटर विलेज स्कूल उसको कंटिन्यू करिए, तो अच्छा कॉन्सेप्ट था शुरू से, और इसमें पढ़ाई लिखाई भी क्वालिटी भी अच्छा था, मेंटेन होता था, सब मिलके डेवलप करता था। देन दी रेसिडेंशियल स्कूल्स वो लोग आप लोग कर ही रहा है, यू आर ऑलरेडी स्टार्टेड रेसिडेंशियल स्कूल्स, वो जगह जगह में है, वो अच्छा हो रहा है, रेसिडेंशियल स्कूल अच्छा हो रहा है। लेकिन वी कैन कंटिन्यू द इंटर विलेज स्कूल। बाकी प्राइमरी स्कूल को तो बंद हो ही गया, उसको तो बंद कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो स्टूडेंट। या स्कूल नहीं, स्टूडेंट नहीं तो वहाँ रख के पैदा नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा स्कूल किस लिए बंद है। रीजन जो है, फर्स्ट रीजन जो है नो सब्जेक्ट टीचर, सेकेंड रीजन जो है देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब पहले जो पुराना जो बिल्डिंग लोग को तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर दिया। थर्ड रीजन जो है जो क्लास, इसमें कुछ नियम बनाया आपका डिपार्टमेंट ने या गवर्नमेंट ने कि सेकेंडरी स्कूल में जो एडमिशन होगा हर सेकेंडरी में क्लास 6 to 12, सेकेंडरी स्कूल में 6 to 8, मिडिल स्कूल में नो स्टाइपेंड। तो कहाँ से बच्चा मिलेगा। क्लास 1 to 5 के लिए कोई स्टाइपेंड ही नहीं है, क्यों स्टाइपेंड। 6 से स्टाइपेंड मिलता है, क्लास 1 to 5 का बच्चा क्या ट्रैवल नहीं है क्या, वो गाँव का नहीं होता है, उस गाँव का नहीं है। पब्लिक का वही विचार है कि वाई क्लास 1 to 5 स्टूडेंट्स आर डिप्राइव्ड ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, गवर्नमेंट स्टाइपेंड क्यों नहीं दिया जाता है। एवरी स्टूडेंट शुड हैव दैट प्रिविलेज, हर बच्चा को इक्वल राइट मिलना चाहिए, ये क्यों डिप्राइव करेगा। ये मेरा सजेशन होगा कि आईवी स्कूल बनाइए, रेसिडेंशियल स्कूल बनाइए, या सेकेंडरी स्कूल में क्लास 1 to क्लास 10 एडमिशन लेने दीजिए, स्टाइपेंड दे दीजिए, तो ये कोई बच्चा नहीं जाएगा, स्कूल फंक्शन इफेक्टिवली। और सब्जेक्ट टीचर बहुत जरूरी है हर जगह में, हर स्कूल कहीं भी स्कूल जाएगा तो सब्जेक्ट टीचर, मैथ्स टीचर नहीं है, साइंस टीचर नहीं है, हिंदी टीचर नहीं है, इंग्लिश टीचर नहीं है, ज्योग्राफी टीचर नहीं, ऐसा करके बताते हैं। और हम लोग कहाँ से लाएगा। तो अपना प्राइवेट से भी कहीं कहीं स्कूल में हम लोग रखना पड़ता है, 1 2 3 4 करके रखना।
और एमएलए लेड फंड से तो नहीं दे सकता है बोलते, वो तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स में नहीं डाल सकता है, ओनली फॉर द स्कीम, वो भी रिस्क है। तो ऐसे ऐसे सिचुएशंस है, इसलिए मेरा सजेशन होगा नेक्स्ट फ्यूचर आप लोग इस हिसाब से प्लान करने से ठीक होगा स्कूल को। और सेकंड से जो दिफांग स्कूल हो गया उसको इंजो को दे दीजिए। तो जो आर इंजोस हु आर विलिंग टू रन सच इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स इन द इंटीरियर एरियाज, लेट देम रन। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट देम। गवर्नमेंट उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दे दीजिए, बुक दे दीजिए और या स्टाइपेंड दे दीजिए, लेट इंजो रन इट। बिना प्रॉफिट का तो इंजो ऐसे चलाने वाला बहुत है ना, चैरिटेबल सोसाइटी बहुत है, दे कैन ऑल्सो रन द स्कूल्स इफेक्टिवली। तो इस प्रकार से भी प्लान किया जा सकता है। दिस इज माई सजेशन ओनली दैट यू मे टेक ए डिसीजन अप्रोप्रिएटली एट योर लेवल। ये देन मेडिकल के लिए, मेडिकल तो अभी बहुत पहले से तो इम्प्रूव हो गया, फैसिलिटीज आर कमिंग एंड टर्शरी कैंसर ट्रीटमेंट भी हो रहा है। एंड मैं रिसेंट पास्ट मेरा एक्सपीरियंस है 2-3 केसेस का, मोस्टली फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्यूंसी, बिकॉज देयर में भी अदर केसेस आल्सो फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर एरियाज, बट फ्रॉम माय ओन कॉन्स्टिट्यूंसी आई हैव 2-3 एक्सपीरियंस दैट आई वुड लाइक टू टेल आगस हाउस थ्रू योर ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर साहब, कि यहाँ में डॉक्टर है लेकिन इक्विपमेंट फैसिलिटीज कमी है, particularly neuro patient and heart patient. कार्डियोलॉजिस्ट तो डॉक्टर है ट्रिम्स में और नेरो डॉक्टर भी है, लेकिन वो इक्विपमेंट नहीं है। इमीडिएटली जब पेशेंट सीरियस पेशेंट आते हैं तो दे रिफर टू दी गुवाहाटी। देन आई रिफर में 1-2 पेशेंट लेके भी गया, तो वहाँ पता किया कि नेरो पेशेंट और हार्ट पेशेंट according to doctor there at Guwahati, they said it is already late for 2 hours, late for 3 hours, late for 6 hours, तब तो वो ख़त्म हो जाता है, बचने के चांसेस ही ख़त्म। तो इसलिए मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ नेरो और कार्डो फैसिलिटीज़ को भी थोड़ा उसको मजबूत करने से इक्विपमेंट्स फैसिलिटीज़ है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, हाँ, इस ट्रिम्स में या आरके मिशन में या कोई भी हॉस्पिटल हो, सुविधा होने से हमारा अरुणाचल का पेशेंट यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि समय कम हो जाता है। वहाँ पहुँचते पहुँचते कोई नेरो पेशेंट 6 आवर्स में अंदर में बचा सकता है। जो हेड इंजरीज वाला, ब्रेन डैमेज वाला, विद इन 6 आवर्स डॉक्टर सेड दे कैन सेव द पेशेंट। बियॉन्ड 6 आवर्स नॉट पॉसिबल, ऐसा केसेस आता। तो उसके लिए मेरा वो मैं हेल्थ में शुरू से बचपन से मेरा ये है इंटरेस्ट है, इसलिए मैं हेल्थ के बारे में बोलना चाहता हूँ। देन last not the least, but I have one information I would like to share before this August House, that yesterday I saw a social media news पोर्टल में हम देख रहा था कल शाम को ना, इसमें कुछ मिड डे मील का कुछ एडल्ट्रेशन है बोल के न्यूज में, सही है ना गलत है, और कौन सा डिपार्टमेंट का है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का ना मिड डे मील, या कौन उसको देखता है, या ये सिविल सप्लाई FCI से चावल है ना, या मार्केट का चावल है ना, उसको तो कम से कम इंक्वायरी करने से थी, क्योंकि वो मेनली मिड डे मील रेस्टोरेंट्स फॉर माई एरिया मिंगो सर्कल के लिए वो निकाला था। उसको पका के देखा तो वो तो पानी के ऊपर में तैर रहा है, तो बोला कि ये कैसे चावल हो सकता है। तो अभी इस प्रकार से ना उसको थोड़ा सीरियसली थोड़ा एग्जामिन करिए, ऐसा ना हो कि पूरा बच्चे ऐसे ही खा रहा होगा या कहीं मिलावट होगा, कोई ना कोई कहीं ना गलत तो होगा ना, उसको तो फाइंड आउट करके वो पानिश करने से ठीक है, कंट्रोल करने से ठीक है। मैटर ऑफ लाइफ
किसी बच्चा का जीवन का बात है, ये तो सीरियस है, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए ना। अगर सही में गलत है तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, सीरियस एक्शन लेना चाहिए। देन जो दीज आर माई एडवाइजेस। लास्ट में रोड का बारे में जो अभी जो कभी कभी न्यूज़ में आते रहता है, और मैं खुद भी देखता हूँ, जो हम लोग का आसपास वाला सामने रोड वाला जो रोड मेंटेनेंस वाला, इसलिए मैंने सजेशन पहले भी दिया था कि टाउनशिप रोड को तो सीसी कंक्रीट रोड बनाने से ठीक है, थोड़ा लास्टिंग है, थोड़ा दिन चलता है, थोड़ा 4-5 साल चलता है। लेकिन वो बिटुमिन वाला ब्लैक टॉप रोड तो 1 साल भी नहीं चलता। अभी देखिए ये अभी जो हाईवे में यहाँ बना रहे मेंटेनेंस, 6 महीना में ख़त्म हो जाएगा। अब तो दो कितना साल से देख के आ रहा है, रोड मेंटेन अच्छा से होता ही नहीं है। तो क्वालिटी को चेक करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत जगह जगह से भी अभी अब तो सोशल मीडिया में भी तो घूमते रहता है ना, कोई पीम जैसे रोड से भी आप हाथ से निकल करके घूम के, ऐसा भी चल रहा है। तो काम तो हो रहा है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं गलती हो रहा है कि क्वालिटी को चेक नहीं कर पा रहे हैं। जो एजेंसी को या करने वाला को या कॉन्ट्रैक्टर कोई कम से कम तो कहीं वो लोग गलत तो कर रहा होगा, नहीं तो कैसे पब्लिक उतार के पे कर रहा है हाथ से निकल कर। उसको काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन थोड़ा कंट्रोल भी होना, चेक होना भी ज़रूरी है। तो ध्यान रखिएगा। और जो डिपार्टमेंट कंसर्न उसको इमीडिएट एक्शन लेना है, इंटरवेन करना है, एक्शन लेना है। उसको ये इग्नोर नहीं करना। इग्नोर करने से ख़राब हो जाएगा बाद में, और बाद में करते करते ये केस बन जाएगा। जब केस बनेगा तो स्टेट के लिए भी बदनाम होगा, समाज के लिए भी बदनाम होता है, सरकार के लिए भी बदनाम होता है, और लीडर के लिए भी बदनाम होता है। तो इसलिए वो क्वालिटी चेक और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलरली रोड में ना, रोड मेंटेनेंस में बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि 6 महीना भी नहीं चलता। अभी लास्ट मंथ का जो बना हुआ, अभी नेक्स्ट 2 महीना के बाद जाके देखे, 3 डिपू टोल्स आउट देयर ऐसे देखने को मिलता है। तो इसलिए को चेक करना है, जब खर्चा कर रहा है उसको मीनिंगफुली उसको काम को भी करने देने से ठीक है। तो रेस्ट आई appreciate that your budget, of course, you have already laid the table and we have read it. Many of the department, many of the subject has been taken care. Most of them, what I see that reforms, you have taken lot of new initiatives, lot of new reforms that e-Bidan, e-File, e-Treasury, financial management system, and not many things has been taken, appropriate decisions. That's a good decision. We appreciate good work. And now finally the budget has been already passed by the House unanimously. So nothing more to discuss. So thank you very much for giving me this time. Thank you. Next, Tanya Sokiji, Honorable MLA. Thank you, Deputy Speaker, sir, for giving me the opportunity to participate to discuss in support of the budget 2022-23. सर, मैं बजट को ऐसे पढ़ के देखा हूँ कि इस साल का बजट 2022 बजट जो है 6 ढांचाएँ पे बैठा है, जो 6 पिलर्स ऑफ द बजट जो है इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ सेक्टर, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश, सिनर्जी, कन्वर्जेंस, governance reforms and prudent financial management,
environment protection and climate resilient infrastructures. तो इन्हीं 6 पिलर्स में मैं जो मुझे अनुमान है कि ये 6 पिलर्स जो है बहुत मजबूत है और उसमें वाइब्रेंसी भी दिखाई दे रहा है और इसमें एनर्जी भी दिखाई दे रहा है. जिसमें वाइब्रेंसी है, मजबूत है और एनर्जी है, डेफिनेटली ये 6 पिलर्स ऑफ बजट जो है 2022 तो हमें नया ऊंचाई की ओर ले जाएगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ. तो इनके साथ मैं जो इन पिलरों में ब्लॉक्स में कुछ जो चीज़ें मैं सही समझता हूँ उससे थोड़ा जिक्र करना चाहूँगा. जो सर आप हमारे चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर के इफेक्टिव जो लीडरशिप के कारण जो कोविड अरुणाचल में स्प्रेड होने का इसको कंट्रोल किया और ये कंट्रोल करते हुए सारा हिंदुस्तान में मोर्टेलिटी रेट जो सेकेंड लोएस्ट में जो अटेंड किया और रिकवरी रेट. Honorable members, with the permission of the House, I extend time up to 7 p.m. रिकवरी रेट को 99% में मेंटेन किया. ये सर एज ए प्रेज वर्दी अचीवमेंट है और ये कन्वर्जन ऑफ MLA अपार्टमेंट्स टू डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल was a great decision to save the precious life of our people. मैं सर ये भी समझता हूँ अगर हमारा लीडरशिप ऐसे प्रोएक्टिव डिसीजन नहीं लेता, ये कोविड-19 बहुत प्रीशियस जान को ले लेता. तो इसके साथ मेडिकल का जो है कुछ स्टेप्स उठाया, जो अपग्रेडेशन स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स एंड टीम्स वेयर बहुत फार रीचिंग और फार साइटेड डिसीजन हुआ. इसके चलते हुए आज हमारा मेडिकल फैसिलिटी जो है रोबस्ट में पहुंचा है और आने वाला कोई भी समस्या हो उसको हल करने में सक्षम होगा. तो अभी बजट में जो सर 60 आइडेंटिफाइड PHCs और CHCs एज ए गोल्डन जुबली PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने के लिए जो कदम उठाया है, ये सर बहुत बड़ा कदम है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर इन रूरल एरियाज. और एक जो हेल्थ सेक्टर में जो देखा है, एक कॉन्सेप्चुअल जो किया है कि टू ट्रांसफॉर्म कैजुअलिटी रूम्स जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में या जनरल हॉस्पिटल कोई भी CHC PHC और हॉस्पिटल में जो कैजुअलिटी रूम्स होते हैं वो बहुत नॉट वेल इक्विप्ड. तो इसको जो है स्टेट आर्ट ऑफ इमरजेंसी केयर सेंटर्स बना के जो प्रोवाइड क्वालिटी एक्सेसिबल और अफोर्डेबल इमरजेंसी केयर देने के जो कदम उठाया है, जिसका संक्षेप में ये बोल रहा है CM's हेल्थ इमरजेंसी लाइफ प्रोटेक्शन सर्विस, CM's हेल्प्स. ये बहुत विजनरी स्टेप है. तो आने वाला दिन में ये स्टेप के वजह से बहुत से हमारा हेल्थ जो कैजुअलिटीज़ होते हैं हॉस्पिटल्स में उसको राहत मिलेगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ. और एक इनोवेटिव जो स्टेप हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ऑनरेबल डिप्टी CM ने जो उठाया है टू इंगेज जापानीज इंस्ट्रक्टर इन नर्सिंग स्कूल्स
and colleges on contractual basis. तो ये बहुत ही इनोवेटिव मेजर है। और जापानीज़ का जिस तरह जो नर्सिंग स्किल्स है, जो सर्विस केयर देते हैं, अगर इन्हीं को हमारा स्टेट में लाता है तो डेफिनेटली जो नर्सेज जो हमारा पेशेंट्स को केयरिंग करते हैं और उनका सर्विस देते हैं, वो बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। और इसको सभी स्पेशली जो गरीब लोग इसको भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इसलिए ये एक बहुत बहुत वेलकम एक स्टेप है। सर, ये इन्वेस्टमेंट और ह्यूमन कैपिटल में बहुत लोग ने बहुत कुछ बोला और मैं भी समझता हूँ जो 2021-22 को ईयर ऑफ एजुकेशन डिक्लेयर किया और मिशन शिक्षा को की तरह इनिशिएटिव्स उठाया, ये बहुत सही कदम है। आज का जो एजुकेशन का सिनेरियो बहुत ही ख़राब है और बस्ती में स्पेशली जाता हूँ तो कोई भी स्कूल्स फंक्शनिंग नहीं है और टाउन में पर्टिकुलरली अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ कोई भी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और एक क्लासरूम में 400-500 स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो उसमें कैसे शिक्षा जो है क्वालिटी शिक्षा टीचिंग्स प्रदान करेगा? दिस इज़ अ वेरी क्वेश्चनेबल। तो इसी ईयर ऑफ एजुकेशन और मिशन शिक्षा के तहत तो अच्छा पॉलिसीज अडॉप्ट कर सकते हैं कि किस तरह जो इस एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाए और किस तरह जो स्टूडेंट्स और टीचर्स रेशियो को मेंटेन किया जाए एंड हाउ टू हम लोग का जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाए और जो दूर दराज में जहाँ स्कैटर्ड वे ऑफ स्कूल्स इस्टेब्लिश किया है, उसको अगर हम ये करके अगर आईबी स्कूल के तरह सेंटर में कुछ स्कूल्स को क्लस्टर्स बेसिस में करके रेसिडेंशियल टाइप ऑफ अगर स्कूल बनाए जाए तो शायद हमारा स्कूल का सीनियर भी इम्प्रूव होगा। अदरवाइज मेजर एक ड्रास्टिक बोल्ड डिसीजन जो शिक्षा की तरह कदम नहीं उठाएगा, पॉलिसी अडॉप्ट नहीं करेगा, सो आने वाला दिन में मुझे ये न लगता कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस ढंग का चले तो विल हैव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसके तहत बहुत बोल्ड डिसीजन उठाना ही पड़ेगा। इसी बजट में इनिशिएटिव्स जो कुछ लिए हैं कि इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्किलिंग ऑफ आवर चिल्ड्रेन, यूथ्स फॉर प्रोग्रेसिव, मॉडर्न, इनोवेटिव एंड आत्मनिर्भर अरुणाचल, ये सब अगर सही में हम लोग सही दिशा देता, ग्राउंड में उसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से करता, इट विल हैव डेफिनेटली फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा कि हम लोग का ह्यूमन पूल ऑफ रिसोर्स पे। ये बजट में सर ये जो है 500 करोड़ जो फंड जो रखा है फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन 50 आइडेंटिफाइड गवर्नमेंट स्कूल्स अंडर गोल्डन जुबली मॉडल स्कूल प्रोग्राम। सर ये एक रिवोल्यूशनरी होगा अगर यदि एंटायर डिस्ट्रिक्ट में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मॉडल स्कूल बनाई जाए विथ फुल इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का अपडेट, टीचिंग स्टाफ से, टीचर से, देन अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ को सही ढंग से अगर ले जाए, हम अच्छा से इस स्कूल को रन करें तो दिस विल रिवोल्यूशनाइज दी एंटायर एजुकेशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। ऐसे दिशा पे हमें जोर देना है, गवर्नमेंट जरूर जोर देने के लिए कदम उठाए। दिस इज़ ए वेरी वेलकम स्टेप है।
सर, मुख्यमंत्री शिक्षा कोष ये बहुत ही अच्छा कदम है। मैं सर अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बहुत स्कूल में विजिट किया हूँ। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है हायर सेकेंडरी स्कूल में भी, सेकेंडरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनका पास करने का है ही नहीं है, कुछ साधन नहीं है, फाइनेंशियल पावर नहीं है और फंड नहीं है, जो चाह के भी कर नहीं पाता है। तो इसलिए अगर इसी ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे हेडमास्टर का हाथ में कुछ धनराशि जो प्रबंध करे, जिस तरह जो आज वो करने के लिए बजट में रखा है, तो डेफिनेटली देयर आर गुड टीचर्स जो अपना स्कूल का वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहता है। सो दिस विल lend a very helping hand to the good teachers who will definitely do good service to the welfare of the school. और जो बजट प्रोविजन में कुछ फंड्स रखे हैं, जो कैचअप कोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स क्लास 10-12 फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल, award of 2 lakhs to students, securing admission in the premier institutions like IIT, IIM, AIMS, etc. सर ये बहुत ही अच्छा कदम। ऐसे नहीं कि सभी छात्र जो है स्टूडेंट्स खराब है। हाँ, बहुत लोग आज का युग में स्पेशली वेस्टर्न मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होने के नाते जो गेम्स का बाजे काफ़ी पढ़ाई में रुचि नहीं दे रहा, फिर भी देयर आर स्टूडेंट्स जो पढ़ना चाहता है, स्पेशली फ्रॉम लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब लोग का बच्चा लोग है। तो ऐसे लोग को अगर इस ढंग का इंसेंटिव दिया जाए तो हमारा स्टूडेंट लोग, अरुणाचल के युवा लोग जरूर परफॉर्म करेंगे। ये हमारा ऑनरेबल सीएम और हमारा डीसीएम जो ये स्टेप्स उठाया है, इसका तारीफ करना चाहिए। एंड मैं समझता हूँ दिस विल डेफिनेटली ब्रिंग ए गुड रिजल्ट आने वाला समय में, मैं ये उम्मीद करता हूँ। सर, ये गवर्नेंस एंड प्रूडेंट फाइनेंशियल अरेंजमेंट का ढांचा पे जो कहूँ तो स्पेशली गवर्नेंस रिफॉर्म्स में जो अभी जितना सदन में बैठे हुए सारा अरुणाचल के लोग, जो इस्टेब्लिशमेंट और स्टाफ सिलेक्शन, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन जो बोर्ड को हमारा ऑनरेबल सीएम साहब ने लाया है, तो उसी को तो सब तारीफ करते हैं। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट रिफॉर्मेशन इन अरुणाचल प्रदेश सो फार, एंड ये तारीफ का काबिलियत भी है और प्रशंसा भी करना चाहिए, एंड इट डिजर्व्स, देयर इज नो डाउट ऑन इट। लेकिन मेरा एक सोचना है, अभी जो हाल ही में जो अभी इस बजट में पंचायत को एम्पावरमेंट देके जो पावर डेवोल्यूशन दिया है 29 चैप्टर्स का, और थ्रू स्पाइस मॉडल की तरफ जो बजट में अनाउंस किया है, ये भी कोई कम रिफॉर्मेशन नहीं है। हाल ही में मैं सर कार्यकर्ता संपर्क अभियान में इस कमिंग में गया हूँ और 7 मीटिंग्स हुआ, जिसमें जिला परिषद मेंबर्स रहा, गांव बुरास रहा, पंचायत मेंबर का, ग्राम चेयरपर्सन, सभी लोग, सबका यही व्यू था कि ये गवर्नमेंट जो पेमा खांडू का गवर्नमेंट जो है, पंचायत को ये एम्पावरमेंट देना चाहिए। 29 चैप्टर्स को पावर डिवोल्यूशन करना है और जो 10% अपना स्टेट को ओन रिसोर्स को जो देने का कमिटमेंट दिया है, इसको देना है। ये सभी ने सर जिक्र किया। मैं उधर ही हर मीटिंग में मैंने ये बोला कि हमारा जो गवर्नमेंट हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू और डिप्टी सीएम चोना मैन, दोनों बहुत कमिटमेंट आदमी हैं और हमारा पंचायत मिनिस्टर भी बहुत कमिटमेंट के आदमी हैं। डेफिनेटली ये आने वाला बजट में इसको देखने को मिलेगा, ये मैं बोल के आया हूँ। आज इसको देख करके मुझे भी बहुत खुशी लगता है
और शायद आज सारा अरुणाचल में थाउजेंड्स के पंचायत मेंबर्स लोग उसको बहुत खुश होंगे और दे मस्ट बी अप्रिशिएटिंग। तो अदर रिफॉर्म्स जैसे ई प्रगति है, ई ऑफिस, ऑनलाइन पेंशन मैनेजमेंट सिस्टम, ई मॉनिटरिंग, ई जियो टैगिंग, ई कैबिनेट, ई असेंबली मॉड्यूल्स, ये सब टेक्नोलॉजिकल बैकअप रिफॉर्म्स जो है ये काबिलियत के तारीफ है एंड इट डिजर्व्स अप्रिशिएशन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। इसको चलते हुए जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में कभी सो कॉल्ड रेड टेपिज्म जो फाइल को होल्ड करके रखता है और समय लेता है, इसका समय का उपयोग को यहाँ जो भरपूर हो रहा है एंड वी आर रियली, पहले जो फर्स्ट असेंबली में बुक्स पूरा लेके आते थे, तो आज यहाँ मेल को यहाँ आपको बात करने के लिए भी यहीं से करना है एंड एवरीथिंग इज सीन फ्रॉम द, ये जो हमारा टेबल का ये में कंप्यूटर में दिखाई दे रहा है। दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट एंड स्पेशली इन अरुणाचल, प्लेस लाइक अरुणाचल, तो इस दिन का हम लोग ई प्रगति में जो जा रहा है तो सारा दुनिया स्पेशली इंटायर इंडिया में तो हम लोग को अप्रिशिएशन मिलेगा। दिस इज़ अ बिग इनोवेटिव एंड इनिशिएशन टुवर्ड्स डिजिटल इंडिया। So regarding financial prudent financial management, तो इसमें तो there is no iota of doubt on the capability of our honorable deputy CM and minister of finance and हमारा चीफ मिनिस्टर का कैपेबिलिटी तो कोई डाउट ही नहीं करता है। इसका आपका प्रूडेंशियल फाइनेंस मैनेजमेंट के चलते हुए तो हम कोविड-19 पेंडेमिक चलते हुए, जबकि सब सारा इकोनॉमी क्रिपल हो चुका था, जो इंडिया में रिच स्टेट्स कुड नॉट पे देयर सैलरीज ऑफ देयर स्टाफ्स, लेकिन हमारा अरुणाचल में डिस्पाइट ऑल हर्डल्स जो आप कमिटेड लाइबिलिटीज जैसे सैलरी, वोजेस, लोन कंपोनेंट्स को आप पेमेंट किया है, तो ये बताता है कि आप कितना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अच्छा है और अच्छा है, कॉम्पिटेंट है, और वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है तो हमें अच्छा दिशा में ले जाने का जाएगा बोल के मैं बिल्कुल उम्मीद रखता हूँ। अभी सर और एक यहाँ जो है बजट स्पीच में आपने हमारे DCM सर ने जो मेंशन किया है कि ₹1,800 करोड़ जो पैसा से जितना लाइबिलिटीज़ जो अंडर SIDF में एडिशनल RE, CCI, SPA एंड अदर प्रोजेक्ट में जितना लाइबिलिटीज़ रहा, इवन पेंडेमिक पीरियड में भी 1,800 करोड़ इन्वेस्ट करके जितना लाइबिलिटीज़ तक क्लियर हुआ, और लाइकवाइज जो 3,200 करोड़ लगा करके जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स का जितना लाइबिलिटीज वो भी क्लियर किया, और वो क्लियर करते हुए ये बजट में ये मैंने जो कन्वे किया कि ऑनरेबल मेंबर प्लीज सम अप कर दो आपका सर। तो ये सर मैं इसी को कंक्लूड करता हूँ सर। ये मैंने बोला है कि सर गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंटली अप्रोचिंग द न्यू फाइनेंशियल ईयर विथ सफिशिएंट फाइनेंशियल स्पेस ड्यू टू सिग्निफिकेंट रिड्यूस्ड लेवल्स ऑफ कैरी फॉरवर्ड लायबिलिटीज। I hope we will be getting sufficient fund in 2022 and 23 financial year to make। तो इसमें सर बहुत खुशी लगता है कि आप सफिशिएंट फाइनेंशियल स्पेस होगा, और जिसके चलते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला दिन में आप हमें अच्छा फंडिंग देंगे। लास्ट 3 इयर्स में तो सर फर्स्ट ईयर में तो 14 फाइनेंस कमीशन का टर्मिनल ईयर के चलते हुए, देन सेकेंड 2 ईयर में तो हमारा कोविड के चलते हुए वी हैव ऑल सफर्ड लास्ट 3 इयर्स।
सो ये फाइनेंस स्पेस को आप मिला है तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला आप हमें अच्छा फंडिंग देंगे और हम भी अपना जनता को अच्छा से मैंने कुछ डेवलपमेंट काम दिखाएंगे, ये उम्मीद करके। तो इसके साथ मैं स्पीकर सर आपको धन्यवाद देता हूँ और हमारे DCM और CM सर को भी धन्यवाद देता हूँ, सभी को धन्यवाद देता हूँ। यहाँ समाप्त करता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट श्री तपुक ताकू, थोड़ा शॉर्ट कीजिए, 10 मिनट्स, वी हैव लॉट ऑफ एजेंडास लेफ्ट। Sir, I also rise to take part in this budget discussion. First of all, I must congratulate to our Honorable Chief Minister and Honorable Deputy Chief Minister, really who prepared this budget after duly consultation with all stakeholders and NGOs, CBOs, so on. Really, I appreciate this budget. It is a realistic budget. It covers in all sectors like road, connectivity, IT, and education, health, all sectors and allied. So we must appreciate. सर, यहाँ मैं सिर्फ दो बात रखना चाहता हूँ इस बजट डिस्कशन में। आने वाला दिनों में ये जो हम आज बजट बनाया उसको हम बोर्ड पर इम्प्लीमेंट करने से बहुत सर अच्छा होगा, क्योंकि हमारा पब्लिक कॉन्फिडेंस और सब हमारे साथ अच्छा जाएंगे। और सर पूरा हमारा मेंबर्स ने जो दोस्त लोग ने कहा कि कोई नॉन BADP ब्लॉक का है, कोई BADP ब्लॉक का है, तो सब अपना अपना जो राय रखा है, जो डेवलपमेंट का चलते हैं, तो सभी 60 कॉन्स्टिट्यूंसी तो सब इक्वल है, कोई पीछे नहीं है, सब डेवलपमेंट के लिए सबको ज़रूरी है। पर थोड़ा से डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन एरिया में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में एक डिस्ट्रिक्ट का चेहरा होता है, एक फेस है, तो वहाँ पे हम सबसे पहले कुछ जहाँ से भी बाहर से आता है तो वहीं रोकता है। तो इसलिए उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा से जैसे कि रोड का बोलो, लाइट का बोलो, वाटर का बोलो, एकोमोडेशन, सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, मैंने सब मैंने हेडक्वार्टर में ये सबसे पहले डेवलपमेंट होने से हमारा सारा बाहर से जितना भी आएंगे वो सब फैसिलिटी मिलेगा। तो उसका बाद हम और ADC हेडक्वार्टर, CO हेडक्वार्टर कनेक्टेड होके इंटीरियर बॉर्डर तक हमको सबका ज़रूरी है डेवलपमेंट पॉइंट में। तो सर इसमें मैं एक ये बजट डिस्कशन में एक ये गाइडलाइन का जो स्कीम का गाइडलाइन के बारे में थोड़ा से मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जैसे MLA लेड का गाइडलाइन है, नॉन BADP का गाइडलाइन है, इसमें वाल का जो रिटर्निंग वाल है, प्रोटेक्शन वाल है, स्कीम देने से ये DC रिजेक्ट करता है कि ऐसा गाइडलाइन में नहीं है। सर आप देखिए हमारा अरुणाचल में कई 1-2 डिस्ट्रिक्ट होगा जो प्लेन एरिया होगा, रेस्ट तो पूरा हिली डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ सब बिना वाल, बिना प्रोटेक्शन वाल में कभी आप घर बना ही नहीं सकता है। एक कदम कदम में आपको सबसे पहले वाल, रिटर्निंग वाल ही बनाना पड़ता है। तो इसलिए उसको गाइडलाइन को थोड़ा से मॉडिफाइड कर देने से सर बहुत अच्छा है, स्पेशली ये MLA लेड का और नॉन BADP का जो भी
कुछ कुछ ये स्कीम को प्लानिंग में थोड़ा ऑब्जेक्शन करता है कि ये वाल नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, नो डाउट लास्ट टाइम में ये कैपिटल विधायक ने, कासवा साहब ने कंप्लेन किया था कि यहाँ कैपिटल में इतना दुनिया में कवाल बनाता है, डुप्लीकेट है। हो सकता है, मगर अपना अपना जगह में तो ऐसे तो नहीं है सर। जो रिटर्निंग वाल का प्रोविज़न तो होना चाहिए, क्योंकि नदी है और या तो हिली अप एंड डाउन है, तो उसमें हमको बिना वाल से कुछ काम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए इस पॉइंट को सर थोड़ा से रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। और सर ये बहुत मेंबर लोग ने कहा कि एमएलए को 5 करोड़ में इंक्रीज करने से अच्छा है और नॉन बीएडीपी में 3 करोड़ बढ़ाने का। ये बात सर मैं भी सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि सर ऐसा है, जो हम लोग एज एमएलए हम कई बस्ती में विजिट करने जाएगा तो वहाँ पे मीटिंग होता है, फिर पब्लिक जो है कुछ 20 लाख का 30 लाख का ग्रीवेंसेस मेमोरेंडम देता है। तो मेरा पास तो कुछ नहीं है अनाउंस करने का, सिर्फ एमएलए लेड ही हम अनाउंस कर सकता है। तो इसलिए जो 3 करोड़ अभी जो रखा है सर, बिल्कुल उसमें हम लोग का नहीं जोड़ता है। क्योंकि आपको हम एग्जांपल बताना चाहूँगा, जो स्पेशली इस साल का लास्ट 2 इयर्स का जो कोरोना में तो हम लोग कुछ 80-70 पर वापस दिया है गवर्नमेंट को कि चलो पब्लिक को मदद करना है। तो रेस जितना बचा है, अभी हमारा वहाँ में हम लोग 4 एमएलए हैं, तो हम लोग ने सर ये एमएलए लेड से बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया है। हमने सुपर मार्केट डीसी साहब जैसे रिक्वेस्ट किया, सुपर मार्केट जो लोकल फॉर वोकल अच्छा से बनाया एमएलए लेड से। और हमने ये एमआरएफ जो मेटेरियल रिकवर फैसिलिटी जो जहाँ में हम लोग वहाँ पे रोड अप्रोच रोड पूरा एमएलए लेड से दे के बनाया। और आपका वुमेन वेलफेयर सोसाइटी है और जो सीबीओ एनजीओ है उन लोग को भी मदद करता है। तो यही इसमें हम लोग का यूज़ करता है। और दूसरा बात है कि रैली कोई इंडिविजुअल में बहुत अनएम्प्लॉयड यूथ जो आता है, कुछ सीख करता है कि कुछ मदद करो, तो उसको हम देने के लिए नहीं रहता है। तो इसलिए ये बहुत हम लोग के लिए सर इम्पोर्टेंट है जो एमएलए बढ़ाना। और ये सब 60 एमएलए तो चाहता है, लेकिन कोई सिर्फ बोलता है कि बोलो बोलो, फिर अभी कोई बोला है। तो इसलिए सर उसको हम भी सपोर्ट करता है कि उसको जैसे ये थोड़ा उसको देखने से अच्छा है ये इंक्रीज का। और दूसरा सर ये जो नेक्स्ट बजट में हम लोग का जो स्पेशली अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ प्रोविज़न अभी भी प्रोविज़न रखा है, उसमें जो बैंक लोन का है, बाइकल क्या क्या लोन का है सर, लेकिन ये अच्छा से प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। बैंक वाला वो लोन को अच्छा से नहीं दे रहा। अभी तक हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का तो इंटरव्यू दे के बैठा है, साल हो रहा है, दे नहीं रहा है। तो इसलिए आने वाला दिनों में ये बजट स्पेशली जो अनएम्प्लॉयड का सर, क्योंकि आप देखता है साल में एवरी ईयर में जो 10 पास 12 पास सिविल इंजीनियर तक कितना लोग पास आउट होता है एवरी ईयर को, तो कम से कम 3,000-4,000 तो ग्रेजुएशन आता है। तो उन लोग के लिए अगर हम लोग ऐसे प्रोविज़न रखने से तो ज़रूर हमारा जो टाइट सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो हम जरूर कमी होगा। मैंने इसलिए उसके लिए भी हम बहुत जरूरी है। देन वंस अगेन आई thank you and congratulate our Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister and also the learned Chief Secretary and Planning Commissioner, Finance Commissioner, Secretary and all the teams who is really to prepare this budget for selflessly and day and night. Thank you so much. Sri Haing Mangfi, just limit your time to 10 minutes only.
Thank you, sir. I like to participate in the budget discussion. It will be a shortest participation because most of the speakers have covered everything. सर हमेशा की तरह इस बजट जिन्होंने बनाया है, जब लीडरशिप सही है तो बजट डॉक्यूमेंट तो सही होना ही है. The budget 22-23 is truly inclusive, foresighted, very pragmatic and futuristic. Besides that, this budget shows the real intent of our leadership of our Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister. And जहाँ तक 6 पिलर्स बेस करके जो बजट बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बजट अरुणाचल के उन्नति के लिए है और सभी वर्गों की इंटरेस्ट को यहाँ जोड़ा गया है. ये बजट डिफिसिट सही है, लेकिन जितने फिस्कल डिसिप्लिन के साथ प्रेजेंटेशन करना था उससे भी ज़रा बेटर किया है. तो मैं इसलिए सीएम सर को और हमारे सीएम सर का गाइडेंस को अप्रिशिएट करता हूं और इस तरीक़ा से आप दोनों का फिस्कल प्रूडेंस इस मैनेजमेंट इस तरीके से होगा. आई बिलीव अरुणाचल विल टच ए न्यूअर हाइट ऑफ डेवलपमेंट. और मैं बहुत गौरव हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आप दोनों का ऐसे लीडरशिप में आज मैं एमएलए हूँ और मैं वादा करता हूँ कि इस लीडरशिप को आगे बढ़ाने में हमेशा साथ रहूँगा. यहाँ जितने भी मेंबर्स ने कहा, सभी ने हम लोग के जो इस बजट का 6 गाइडिंग प्रिंसिपल्स को कहा, गवर्नेंस के ऊपर में कहा, फाइनेंशियल प्रूडेंस के ऊपर में कहा, सस्टेन डेवलपमेंट इन हेल्थ सेक्टर में पूरा आत्मनिर्भर बोला, सिनर्जी एंड कन्वर्जेंस पर गए, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर कहा. यहाँ मैं एक ही पॉइंट में थोड़ा सा ओपिनियन देना चाहूँगा. जब हम लोग क्लाइमेट चेंज के ऊपर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर इतना आगे बढ़ गया है, तो जो हमारे जो स्टेट के अभी सबसे बड़ा मुहिम जो चला के रखा है, हमारे जो एयरगन सरेंडर अभियान पर, मैं सरकार को ये आइडिया दूंगा कि इसको नॉन बजटेड इनिशिएटिव नहीं करके इसको बजटेड बनाने से ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत सही रहा अभी तक. और मुझे लगता है पैन अरुणाचल कॉन्सेप्ट के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने में इसको बजटेड इनिशिएटिव बनाने से ठीक है, गवर्नमेंट का पॉलिसी के तहत. तो इस मुहिम को चलाने वाले हमारे जो डिपार्टमेंट है, मैं करीब से जानता हूँ, पीसीसीएफ से लेके हमारे मंत्री को. जब भी ये मुहिम चला रहा होता, बजट प्रोविजन कमी के कारण कहीं कहीं थोड़ा कमज़ोर हो जाता है. हम लोगों को ऐसे काम करने वाला को रिकॉग्नाइज करना है, इन लोगों को हम लोग इनकरेज करना चाहिए. इसलिए इसको बजटेड इवेंट बनाने से ठीक है. ये मेरा रिक्वेस्ट है. दूसरा चीज़ मैं और कुछ कहूँगा नहीं क्योंकि समय नहीं है. इस बजट में 2 चीज़ मेरे जो क्षेत्र का है वहाँ में आपने बजट प्रोविज़न रखा है. एक है ओपनिंग ऑफ गुरुकुल स्कूल इन वादाबग इन चैंगताजो इन लाइन विद द न्यूबू निगम यरकम यरपा स्कूल, जो बहुत ही अच्छा कदम है. और मैं आप लोगों को आई एक्सटेंड माई होल हार्टेड थैंक्स कि मेरे चैंगताजो के अंडर वादाबगंग में ऐसे स्कूल खोलने का आप लोगों ने निर्णय लिया. और इसको ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ 9 चैंगताजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी आई एक्सटेंड माई warmest welcome and
थैंक्स टू यू। दूसरा चीज़ मैं हमेशा कहता रहता था, मेरे जो क्षेत्र में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पूर्वी कम्युनिटी है जो बिल्कुल ही बहुत वीक है, जो अभी तक खड़ा नहीं हो पाता इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली। तो इन लोगों के लिए सर्टेन प्रोविजन फॉर ओपनिंग ऑफ फंड प्रोविजन फॉर ओपनिंग ऑफ रेसिडेंशियल स्कूल अंडर प्रोजेक्ट डोमिनेटेड एरिया, ये भी बहुत ही बड़ा कदम है। और इस मुझे लगता है कि हमारे जो पूरी कम्युनिटी है ऐसे स्कूल से आगे स्ट्रेंथन होने का बहुत चांसेस है। और दूसरा बात ये सर, ये बजट समय है, थोड़ा सा अपना क्षेत्र का एक जो टारगेटेड वाला वो मेरा एक इनिशिएटिव को बोलना पड़ेगा सर, स्पेशली डीसीएम सर एंड सीएम सर, सेपा छेंग ताजो का रोड को थोड़ा और ध्यान दे। और सर सीएम सर का नाम तो मेरे से ज़्यादा लोगों के पूरा दिल में घुसा हुआ है कि सीएम सर है तो छेंग ताजो का रोड बनेगा। तो इस रोड को बनने के लिए मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं नहीं अच्छा से भी नहीं कह रहा हूँ कि कैसे रोड को इस साल ख़त्म करें, उसका चिंता हमें हमेशा मेरे में रहता है। इसको और आगे स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सा पॉलिसी अभी डिपार्टमेंट का थ्रू से सर आपने 12 करोड़ 92 फंड भी दे चुका है एसपीए के तहत, और भी जो रिमेनिंग जो स्टेट शेयर है और वहाँ काम करने में अगर नहीं जुड़ता है तो आप मदद कीजिए। और इस सेपा छेंग ताजो का नाम लेते हुए मैं स्पेशली प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिशियल्स जो यहाँ रहता है, आप लोगों का बदल ये अरुणाचल आज इससे अच्छा डॉक्यूमेंट भी है, साथ ही साथ आप लोगों का कोऑपरेशन से ऐसे छेंग ताजो जैसे रूरल एरिया जो है अपलिफ्ट हो जाएंगे और अच्छा सड़क मिल जाएंगे। आप लोग ज़्यादा रूल पर स्क्रूटिनी ना करें और साथ दे कि जो गुड इंटेंट का साथ हम जब काम करने शुरू कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग ज़्यादा फाइल ना रुका है। और जो छेंग ताजो का सेपा छेंग ताजो एनईसी रोड ऑलरेडी सिक प्रोजेक्ट है, इसको बचाने में मुझे लगता है आप लोग सहायता करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ बजट में एक थोड़ा सा वो नाम लेना था, इसलिए मैं इनको कराऊँ। लास्टली क्योंकि समय नहीं है, स्पीकर सर बोल रहा है, लास्टली आई कंसिडर द बजट ऑफ दिस ईयर हैज़ बीन प्रिपेयर्ड meticulously by assimilating the greater interest of every walks of life, and also highest level of poverty in public life has been shown both by the Honorable Chief Minister and Deputy Chief Minister. Thank you. Thank you. As the Arunachal Pradesh Appropriation Number 2 Bill 2022 is already been passed by the House, I would like to request our Minister of Finance to make a statement. अध्यक्ष जी, काफ़ी समय हो गया सुबह से लेके बार क्वेश्चन से लेके शॉर्ट ड्यूरेशन 0 आवर और अभी का बजट डिस्कशन, मैराथन डिस्कशन चल रहा है अभी तक, और सभी मेंबर ने अच्छा बोला, सही बोला, अच्छा सजेशन लाया। अपोजिशन वाले से भी अच्छा सजेशन मिला, अच्छा सपोर्ट मिला। अच्छी है हमारा। मैं टुकी साहब ने जैसे बोला, पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा कि हमारा 50 इयर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश यानी कि गोल्डन जुबली और अरुणाचल प्रदेश को इतना सुंदर से आपने ऑर्गेनाइज किया, इतना बेफिटिंग मैनर से आपने 1 मंथ लॉन्ग जो फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया, और इसका जो थीम है इतना सुंदर थीम आप किया, रिमेम्बरिंग द पास्ट, नर्चरिंग द फ्यूचर। हम पास्ट को भी भूला नहीं, पास्ट को भी याद किया। जो पायनियर था हमारा, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को नेफा ज़माना से लेके फ्रंटियर
ट्रैक का ज़माना से लेके जो अरुणाचल को डेवलपमेंट का शेप देने में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा, इस 50 इयर्स गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में उनको याद किया, उनको फैसिलिटेट भी किया, जो दुनिया में नहीं है उनको भी फैसिलिटेट किया, याद किया जो है अभी उनको भी फैसिलिटेट किया। तो ये वाकई काबिलियत तब मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। इस दौरान आपने हमारा जो यंग टैलेंट है, शायद हमारा यहाँ में जितना भी मेंबर है उनको भी मालूम नहीं था कि इतना ज़्यादा टैलेंट है। आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में बोलो, लिटरेरी कैटेगरी में बोलो, सॉन्ग्स एंड आर्ट्स एंड आपका ये आर्ट्स में बोलो, आपका सॉन्ग्स एंड ड्रामा में बोलो, एनी फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, इतना ज़्यादा टैलेंट है। और उनको अभी ये जो इस 50 इयर्स ऑफ गोल्डन जुबली में उनको आपने उनको मौका दिया। मैंने देखा एक थिएटर यंग आर्टिस्ट बहुत साल पहले उन्होंने एक दफ़ा मुझे बुलाया था, दिल्ली में एक थिएटर बनाया था। उन्होंने अपना से बोला कि मैंने निनोंग इरिंग के साथ चौनामीन साहब को भी बुलाया था, बहुत खुशी लगा चौनामीन आया। तो आज इतना साल का बाद उनका फिर एक थिएटर देखने मिला, एक अरुणाचल प्रदेश एक सफ़रनामा। जो हमारा जर्नी है, सोशल जर्नी है, पुराना ज़माना जो हमारा शिक्षा नहीं था, यातायात का सुविधा नहीं था, स्कूल नहीं था, उस ज़माना से लेके अभी तक जो ट्रांजिशन है हमारा सोशल ट्रांजिशन, उसको दिखाया। जबकि चाइल्ड मैरिज का सिस्टम था, ज़बरदस्त उठा के ले जाता था। फिर एक विल पावर लेके जो गर्ल चाइल्ड विल पावर लेके अपना ससुराल से भाग के आया, फिर पढ़ाई किया। फिर एक लड़का घर से माँ बाबा का आशीर्वाद लेके शिलोंग गया, पढ़ाई किया। तो पढ़ाई करने के बाद फिर वापस जाके गांव वालों को समझाया कि शिक्षा क्या है, पढ़ने से क्या होता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड क्या है उसका बारे में बताया। तो धीरे धीरे समाज को आगे बढ़ाया। तो ये जो सफ़रनामा है, हमारा पॉलिटिकल सफ़रनामा भी इसी प्रकार है। चाहे असेंबली का सफ़रनामा बोलो, जो हमारा शुरुआत जो है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप एजेंसी काउंसिल लोगों ने लिया है, एजेंसी काउंसिल से फिर एजेंसी का काउंसिल से फिर आपका ये जो प्रदेश काउंसिल है, हाँ, एजेंसी काउंसिल से प्रदेश काउंसिल आया। फिर प्रोविजनल असेंबली हाँ बना, 30 मेंबर्स था, उसमें से 3 नॉमिनेटेड मेंबर था। उसका बाद फिर 60 मेंबर हुआ, स्टेटहुड हुआ। उस ज़माना में आप सोचे, तो उस ज़माना में मुझे याद है कि एक एमएलए को अगर सेशन होता है बुलाने के लिए WT मारना होता है। WT जाएगा वहाँ, फिर उनको DC फिर उनको टाइप करके, टाइप मशीन में टाइप करके उनको घर में पहुँचा देगा। फिर उनको बोलेगा कि आपको जाना है ईटानगर, नाहरलगुन जाना है। उस समय नाहरलगुन था, नाहरलगुन जाना है असेंबली अटेंड करने के। गाड़ी नहीं है, कुछ कन्वेंस नहीं है, तो DC गाड़ी देता है, अपना DC गाड़ी देता रहा। DC के गाड़ी में वो विलेज जीप हुआ करता था उस ज़माना में, या एम्बेसडर हुआ करता था। उसी जीप में, फटारा जीप में आता रहा, यहाँ जैसे तैसे आके पहुँचता। कभी कभी पहुँचने में देर हो जाता है। और कोई MLA तो अगर कहीं दूर गांव में चला जाता है, उनको खबर भी नहीं मिलता है, आने में सक्षम नहीं होता है। एक ज़माना वो भी था, आके MLA छोटा सा एक MLA कॉटेज था, जैसे तैसे वो लोग रहता था। आना जाना के लिए यातायात का सुविधा नहीं था, गाड़ी घोड़ा नहीं था, खाने पीने के लिए सुविधा नहीं था। उनका ऑनरेरियम तो खाली नाम के वास्ते था। इस तरह का हमारा पॉलिटिकल जर्नी शुरू हुआ।
मैं जब एंट्री लिया, ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जब एंट्री लिया 95 में, मैं अपोजिशन का हिसाब से मैं एंट्री लिया असेंबली में। उस ज़माना में हमारा एमएलए कॉटेज ड्राइवर और कुक के लिए कोई रूम नहीं था। हम एक गाड़ी में ड्राइवर, जब असेंबली सेशन होता है, ड्राइवर और कुक एक साथ गाड़ी में बैठ के आता रहा यहाँ में। फिर एक ही घर में वो एक ही वहाँ जो भी रूम है वहीं में शेयर करता रहा, एक ही बाथरूम शेयर करता है सब मिल के। तो ऐसा भी एक ज़माना था। उस ज़माना में मेरा रेमशिप 4000 था, एम्बेसडर गाड़ी में आना जाना करता था। तो ज़माना से लेके वो जो आपका WT मैसेज से लेके अभी जो कंप्यूटर एज है, आप इतना ग्रुप हो गया, स्पीकर का ग्रुप हो गया, चीफ मिनिस्टर का ग्रुप हो गया, टीम अरुणाचल का ग्रुप का अपना अपना ग्रुप हो गया। एक सेकंड में मैसेज चला जाता है कि आज यहाँ मीटिंग होगा, कल यहाँ मीटिंग होगा। तो कितना परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन देखिए, एडवांसमेंट कितना आया आज सही मायने में। और हमारा जो ऑब्सोलेट है उसको भी हम रिपील कर दिया आज का दिन में। जो हमारा ऑब्सोलेट जो हमारा जो वो ये जो है रिडंडेंट एंड क्या है, ऑब्सोलेट एंड रिडंडेंट रेगुलेशन रिपील बिल पास भी किया हम। जो पुराना ज़माना का ऑब्सोलेट था, हम कभी सोचा नहीं, हमारे लिए एक हिस्टोरिक है ऑनरेबल स्पीकर सर। ये इस असेंबली में जो ऑब्सोलेट और रिडंडेंट बिल जो रिपील किया, एक हिस्ट्री है हमारे लिए। असम एक्सक्लूडेड एरियाज एपिडेमिक डिजीजेज रेगुलेशन 1941, the Assam Northeastern Abor Hills, Missimi Hills, Baripara, Tirap and Lakhim Trek Cooperative Societies Regulation 1949, and the Missimi Hills District Home Guard Regulation 1950 shall stand repealed. ये पुराना ऑब्सोलेट हो गया है। तो अभी भी हम नयापन स्टार्ट किया है, नया है, इतना अच्छा एक असेंबली मिला हमको और ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन होता है। जो भी मेंबर है आज का दिन में बिना होमवर्क से आता नहीं है, और एक पेन अरुणाचल को एक क्वेश्चन लेके आता है। कोई अपना इंडिविजुअल अपना कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में नहीं है, एक पेन अरुणाचल के सारे अरुणाचल इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन लेके या रेजोल्यूशन लेके आते हैं। तो एक कितना एडवांसमेंट, कितना आगे बढ़ गया सर। तो यह भी एक बहुत एक हमारा लिए सोचने के लायक है सर। और ये जो गोल्डन जुबली ईयर, अभी तो ई गवर्नेंस, हमारा पूरा ई गवर्नेंस, हमारा ई विधान भी हो गया सर। उस ज़माना से लेके अभी कितना फ़र्क हो गया है। और अभी गोल्डन जुबली ईयर में हमने कई ऐतिहासिक हम एक निर्णय भी लिया है। गोल्डन जुबली कैबिनेट डिसीजन ऑन 20 जनवरी, जीरो में हम गोल्डन जुबली मनाया। हालांकि पैंडेमिक के कारण से हम लोग खूब धूमधाम से मना नहीं सका। मैंने तो आपको सलाह भी दिया रहा कि थोड़ा पोस्टपोन करने से ठीक होगा, लेकिन जो भी हो मनाए, जैसे तैसे मनाया हम लोग धूमधाम से। उस समय हम लोग कुछ एक निर्णय भी लिया रहा, गोल्डन जुबली कैबिनेट डिसीजन टेकन ऑन 20 जनवरी 2022 at 0। इसमें से है लेफ्टिनेंट गवर्नर, हमारा जो फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश स्टेट KA was conferred with अरुणाचल रत्ना, द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन। KA राजा हमारा फर्स्ट चीफ कमिश्नर हुआ करता था उस ज़माना में। उन्हीं का बदौलत हमारा रामकृष्ण मिशन जो है, आपका जो देवमली में है रामकृष्ण मिशन, और जो आपका सरदा मिशन, आलो शायद आलो दिया, हाँ होग आलो, हाँ। तो ये सब वहाँ उनका प्रशंसा से ही ये हुआ है। तो इसीलिए उनको हम लोग हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है डिक्लेयर किया है उनको। फाइनेंशियल सपोर्ट of rupees 1 lakh is to 500 women self-help group, and rupees 2 lakh as capital support each to 300 primary level federation for procurement of goods transport vehicle। goods transport vehicle के लिए women support को हम लोग ये जो 300 प्राइमरी लेवल फेडरेशन को हम लोग ये सुविधा दे रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड्स गवर्नेंस इंडेक्स टू बी फॉर्मुलेटेड
for all-round development and for ease of living of our citizens. 50 government schools to be developed as Golden Jubilee Model School at an estimated cost of 500 crore. ये भी हमने निर्णय लिया है उस गोल्डन जुबली पे अवसर पे. To complete and inaugurate 365 physical infrastructure project within the Golden Jubilee year period. हमको 365 फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंप्लीट नहीं हुआ है उसको कंप्लीट करना है और उसको इनॉग्रेट भी करना है. गोल्डन जुबली मेरिट अवार्ड ₹2 lakh कैश प्राइज टू स्टूडेंट फ्रॉम अरुणाचल securing admission in IIT, NLUs and AIMS. Arunachal Pradesh Infrastructure Financing Authority to be created to meet development needs. ये भी हम क्रिएट कर चुका है. इससे काफ़ी हमको ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा. Under Golden Jubilee Border Village Illumination Program, 50 stand-alone mini and micro hydro projects to be developed under international border at the cost of ₹200 crore. An additional fixed deposit of ₹5,000 as top-up amount over existing ₹20,000 under Dulari Kanya scheme. हम 5,000 का अरुणाचल सरकार का तरफ से टॉपअप दे रहा है उनको. गोल्डन जुबली daughters born between 20th January 22 to 20th January 2023. हमारा इतना टैलेंट ज़्यादा है, इतना टैलेंट है हमारा अरुणाचल प्रदेश. मैंने सोचा कि इनको एक अचीवर्स अवार्ड के थ्रू से रिकॉग्नाइज करना है. ये हमने इस बजट में वो भी अनाउंस किया कि अचीवर्स अवार्ड होगा. ये जो अरुणाचल में जितना भी टैलेंट है हमारा, चाहे कोई भी कैटेगरी में, एंटरप्रेन्योरशिप में हो, स्पोर्ट्स में हो, आर्ट्स एंड कल्चर में हो, चाहे लिटरेरी में हो, चाहे थिएटर में हो, जो भी अचीवर्स होगा उसको अवार्ड दिया जाएगा. और उसके लिए ज़्यादा खर्चा नहीं है हमारा. और उसके अलावा जो हम और जो वुमेन के लिए जो अचीवर्स अवार्ड है जो साल भर में वो तो रहेगा. तो इसीलिए हमारा अभी उस ज़माना से लेके हमारा ट्रांजिशन देखा जाए तो कितना हुआ. आज हमारा पास कितना सुंदर रोड कम्युनिकेशन बना है. ट्रांस अरुणाचल हाईवे तवांग से लेके कानूबरी तक अभी बन रहा है. थोड़ा धीमी गति था शुरुआत में, लेकिन अभी पिकअप ले लिया है. अब तवांग से लेके फिर वो अंडर टनल भी हो गया है. टनल का अंडर से आके आप पूरा ईटानगर में आप पहुंचता है. ईटानगर से फिर आप जीरो होके दापोरिजो होके पूरा आलोंग होके पूरा पासीघाट पहुंच सकता है. आप कल परसों मैंने ये पलिन गया, इतना सुंदर रोड बन रहा है अभी वहाँ में. कोलोरियंग तक रोड पहुँचेगा. जैसे कोलोरियंग का MLA लकम तासर जी ने माइग्रेशन का बात बोला है, बहुत अच्छा बात बोला उन्होंने. DK ठाकुर जी ने बोला है माइग्रेशन रोकना है, गो बैक विलेज एक नारा लाया है उन्होंने. तो इसके लिए बहुत मदद होगा. हमारा जो हाईवे बन रहा है, सिर्फ हाईवे नहीं है, हमारा जो चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रहेंसिव स्टेट रोड डेवलपमेंट प्लान, इस पे भी हम काफ़ी पैसा दे रहा है. और उसका जरिए से हमारा जितना भी डिस्ट्रिक्ट जो कनेक्टिविटी नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी करेगा. जो ADC हेडक्वार्टर में रोड नहीं जा रहा है अरुणाचल और क्या जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे द्वारा, उसमें भी हम इस कॉम्प्रहेंसिव प्लान से हम रोड देंगे. फिर CO हेडक्वार्टर के लिए देंगे. और PMGSY रोड बन रहा है. तो इसी से जो माइग्रेशन रुकेगा. कल परसों पेपर में देखा कि DG PRO भी उनका जो जितना भी टीम है उनका टीम को जो बढ़ाई दिया है कि जो आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश में जो रोड कम्युनिकेशन का जो अभी काम कर रहा है उससे काफ़ी माइग्रेशन रोका है. इस तरह का न्यूज़ मिलने को मिला है. एयरवेज बन गया है अभी हमारा. जो मोदी जी ढोला में आया था, सदिया में आया था उस समय सैखवा ब्रिज इनॉग्रेशन करने के लिए. तो मैं भी गया था वहाँ. तो मोदी जी पहुँचने का पहले हम जितना भी मिनिस्टर वहाँ पहुँचा सबको भाषण देने वाला थोड़ा आप लोग भी भाषण, जब तक प्राइम मिनिस्टर नहीं पहुँचता है. तो मुझे हमारा लिटरेरी सोसाइटी ने बोला कि सैखवा ब्रिज को
डॉक्टर भूपेन हज़ारिका सेतु का नाम से आप उसको हम लोग डिमांड कर रहे हैं लिटरेरी सोसाइटी से, अरुणाचल प्रदेश से, आप बोल लीजिए आपका भाषण में। लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मैंने सोचा कि सोतिया का लोग अगर बिगड़ जाएगा मैं बोलने से, तो इसीलिए मैं बोला नहीं। लेकिन मोदी जी आके वही जो हमारा जो लिटरेरी सोसाइटी चाहता था कि जो डॉक्टर भूपेन हज़ारिका ब्रिज होना चाहिए, सेतु होना चाहिए, वो ऐलान कर दिया। वो कितना सुंदर बात है, कितना यातायात का सुविधा हुआ। उन्होंने उस समय बोला था कि एयर जो नॉर्थ ईस्ट का विकास के लिए हाईवे होना है, एयरवेज होना है, रेलवेज होना है, हाईवेज होना है और रिवरवेज होना है। अभी एयरवेज भी अभी हुलुंगी हमारा जो कंप्लीट होने वाला है अगस्त में, हुलुंगी एयरपोर्ट। कभी हम सोचा भी नहीं था हुलुंगी होगा। एक ज़माना हम हाथी का ऊपर चढ़ता, गांव पहुंचने के लिए हाथी का ऊपर पीठ पे चढ़ के जाता रहा, पैदल चल के जाता रहा, नौका में जाता रहा। जो एक एक दो दो दिन लगता है, आज का ज़माना में आधा घंटा में हम पहुंच जाता है। तो कितना एडवांसमेंट, कितना हम लोग उन्नति विकास किया है अभी। हुलुंगी एयरपोर्ट, फिर आनिनी दापोरिजो, जीरो और अंजाओ बोमडिला, उसमें एएलजी, नया एएलजी हम बनाने जा रहा है। आनिनी में जो पुराना एएलजी है उसको भी हम लोग अपग्रेड करने वाला है। तो इस तरह एयरवेज कनेक्टिविटी हो रहा है, पासीघाट चल रहा है, तेजू चल रहा है। अभी उड़ान स्कीम में जितना भी हमारा एएलजी है वहाँ में उड़ान स्कीम का दौरान स्कीम का द्वारा फ्लाइट सर्विस हो जाएगा। हमारा रेलवे ईटानगर आ गया, पासीघाट आने वाला है। अभी सर्वे चल रहा है हमारा बाकी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी पासीघाट, रोइंग, तेजू, परशुराम कुंड, नामसाई, रुपाई, उसका भी सर्वे चल रहा है। और रुपाई टू परशुराम कुंड उसका तो सर्वे हो चुका है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को मेरा रिक्वेस्ट होगा, ये जो सर्वे अगर हो जाता है, हो गया है, तो इसका काम भी शुरू हो जाए। तो ये जो पिलग्रिमेज है, पिलग्रिमेज टूरिज्म बहुत बढ़ावा मिलेगा उससे। तो हाईवेज का बात बोला जाए तो सीएम साहब ने बोला है, सीएम साहब ने जब तकसीम गया रहा उस समय जब रोड कम्युनिकेशन का बात बोलता है, इंटरनेट कम्युनिकेशन का बात बोलता है, जब इंटरनेट कम्युनिकेशन का बात बोलता है, जब 4G का बात बोलता है, छोटा छोटा बच्चा जो है, स्कूल का बच्चा है, और इतना ज़ोर से क्लैप देता है, इतना खुशी होता है उनका, कितना अच्छा लगता है। तो अभी हम गांव में भी, हम रिमोट एरियाज़ में भी, रिमोट गांव में भी मोबाइल टावर पहुंचने वाला है, 4G कनेक्टिविटी देने वाला है। ये मैं लीप टॉक नहीं कर रहा हूँ, हकीकत है ये। ऑनरेबल मिनिस्टर PHC ने अपना उसमें एक स्टार क्वेश्चन में वो जवाब दिया है उन्होंने। हमारा अभी कनेक्टिविटी होने वाला है भारत एयरटेल द्वारा। ये यूसोप का अंडर यूसोप स्कीम में 980 मोबाइल टावर अरुणाचल प्रदेश में अभी अवार्ड हो चुका है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अवार्डेड 980 मोबाइल टावर्स इन अरुणाचल प्रदेश अंडर यूसोप टू भारती एयरटेल। टू डेट 810 विलेजेस हैव सर्वेड। हाँ, ये जो सिलसिला है, जो इंटरनेट सिलसिला है, ये भी काम चल रहा है अभी। तो इंटरनेट सर्विस आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। टूरिज्म का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश में। फुटफॉल इतना ज़्यादा हो गया है, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हमारा होम स्टे हो रहा है, अच्छा होटल आ रहा है, अच्छा रिजॉर्ट आ रहा है। अब रिवर जो छोटा स्ट्रीम रिजॉर्ट है, रिवर रिजॉर्ट है, इतना सुंदर बन रहा है। तो लोग अभी तो भारत अभी कोविड के कारण से जो अपना देश का लोग अरुणाचल में आने लग गया है। तो हमारा पिलग्रिमेज टूरिज्म है, हिस्टोरिकल टूरिज्म है, पिलग्रिमेज टूरिज्म है, रिलीजियस टूरिज्म है। आप परशुराम का नाम बोलो, परशुराम में अभी भारत सरकार ने 37 करोड़ दिया है। That will become a day that will become one of the most attractive जो हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म एरिया होगा उसको। तो हमारा भीष्मक नगर है, पास ही पास भीष्मक नगर है, मालिनीथन है, शिवलिंग है, जीरो में शिवलिंग है, नक्शा पर्वत है। तो इसको अगर हम पिलग्रिमेज टूरिज्म को लिंक किया जाए तो कितना जो लोग हैं, हिंदू लोग आएगा, बुद्धिस्ट लोग आएगा। बुद्धिस्ट सर्किट अभी
होने वाला है। हम नामसाई लेके मेचुका, मेचुका से लेके टूटिंग, टूटिंग से लेके बमडिला टावांग तक जो बुद्धिस्ट सर्किट यह भी होने वाला है। स्टील वेल रोड जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो स्टील वेल रोड है, स्टील वेल रोड का भी बहुत महत्व है। The permission of the House, I extend the time till स्टील 8 वेल रोड p.m. बना है सर। ये जो है हिस्टोरिकल जो मीनिंग है, जो हम माइग्रेट किया रहा, जो खमटीज लोग, ताया हम लोग 13th सेंचुरी में टाया हम लोग आया, 18th सेंचुरीज में टाया खमटीज लोग आया। नीचे आके आप आके देखेगा कि जो पटकाई का मीनिंग है ये तो टाई लैंग्वेज है। ये पट मीन्स एट स्लेस, आप जो मुर्गी को काट देगा, जो आके जो नीचे आने के लिए वो पूजा करने के लिए, ऐसा जैसा आपका चिकन लिवर देखता है वैसा करके वो है एक ही स्लेस में जो चिकन का गर्दन काट के जो पूजा जो देखता है वही है पटकाई। और जो लेक ऑफ नो रिटर्न है उसका नाम है नोंग यांग। नोंग मीन्स लेक, यांग मीन्स स्टिकी, दैट मीन्स दैट इज ए स्टिकी लैंड, जो मार्शी लैंड है। आप चारों तरफ में है दलदल एरिया है। शायद सेकेंड वर्ल्ड वार में लोग जाता रहा पानी पीने के लिए या देखने के लिए जाता रहा, वापस नहीं आता रहा, तब से नाम मिला है लेक ऑफ नो रिटर्न। तो असली नाम जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है उसको समझना है। नीचे नाम के आके आप देखेगा नमटॉक, नमचिक, नमपोंग, ये सब टाई नाम है हम लोग का। और आप उसको थोड़ा अंदर जाएगा तो बुद्धिस्ट का मोनूमेंट मिलेगा वहाँ में। मैंने डीसी को भी फ़ोन किया है, ये जो है हिस्टोरिकल टूरिज्म प्लेस बनाओ, उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार का जो रिमेन्स है उसके लिए एक आप म्यूजियम बनाओ। हाँ, और हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वार का जो सिमेट्री है अच्छा से बनाओ, लोग जाएगा देखने के लिए, बुद्धिस्ट लोग जाएगा, असम से जो लोग जाएगा, एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट होगा, हिस्टोरिकल एक टूरिज्म होगा। वो भी जो आपका स्टील वेल रोड जो है, एडवेंचर टूरिज्म का हमारा बहुत पोटेंशियल है। अभी जो सियांग रिवर में जो रिवर राफ्टिंग हुआ है, हमारा वुमेन टीम को सिल्वर मेडल मिला, अरुणाचल का वुमेन टीम को सिल्वर मेडल मिला है। कितना अच्छा बात है। कौन सोचता रहा अरुणाचल का वुमेन टीम को जो रिवर राफ्टिंग में जो सिल्वर मेडल मिलेगा। तो ये भी है। ट्रैकिंग है जो 7 लेक है अनिनी में, जो 7 लेक है, अभी 7 लेक को भी जोड़ने के लिए हम लोग का इस बजट में प्रावधान रखा है। वी विल लिंक ऑल दिस लेक्स इन द रिमोटेस्ट एरिया। अनिनी में जो 7 लेक है, फेमस लेक है, उसको भी जोड़ेंगे। हमारा जो दफा बूम है, जो आपका जो मानाबूम आपका नमदफा एरिया में जो दफा बूम है, उसके लिए भी हम ट्रैकिंग के लिए वो करेगा। बटरफ्लाई पार्क भी अभी बनाया है 7-8 जगह में बटरफ्लाई पार्क। किसी ने पूछा रहा कि 1 करोड़ में 7-8 बटरफ्लाई पार्क क्या होगा, हम पैसा और देगा, पैसा का कमी नहीं है। इस आने वाला बजट में हमारा कोई एमएलए साहब ने बोला रहा कि आने वाले समय में हमारा बजट बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा जो आपका अभी जो रशिया का साथ जो वार चल रहा है, अगर उसका इफेक्ट नहीं हो तो हमारा आने वाले साल में हमारा बजट पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा होगा। तो मैं आपको ये वादा करता हूँ। तो नेचर टूरिज्म है, एग्रीकल्चर टूरिज्म है, टी टूरिज्म है, बटरफ्लाई पार्क करेगा, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म है, पाके हॉर्नबिल हैबिटेशन है, नमदफा टाइगर रिजर्व है हमारा, और टूरिज्म विलेज के लिए हम 15 करोड़ दे रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में इस तरह का फुटफॉल, तावांग हो, जीरो हो, नामसाई हो, पासीघाट हो, इस तरह का इतना ज़्यादा फुटफॉल हो रहा है। हम लोग होटल नहीं दे रहा है, रहने के लिए जगह नहीं दे रहा है। अगर सैटरडे संडे आप नामसाई आएगा तो उनके लिए होटल में खाना खाने के लिए जगह नहीं मिलता है, उन्होंने रोकने होता है वो। तो इस तरह का फुटफॉल देखने को मिला है। तो इसको हम लोग वी हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी। हमारा जो लड़का लोगों को इनकरेज, हमारा स्वावलंबन योजना हो, जो भी योजना से हम लोग उसको पैसा दे के इस तरह का जो होम स्टे हो, रिजॉर्ट हो, छोटा छोटा जो रेस्टोरेंट हो खोलने के लिए हम मौका दे रहा है। हाइड्रो पावर पोटेंशियल हमारा, मैंने सुबह में भी कहा है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल अभी 29 प्रोजेक्ट, हम 32,000 मेगावाट का 29 प्रोजेक्ट हम लोग पीएसयू को सौंप दिया है। पीएसयू को अगर सही मायने में हो जाएगा
तो कम से कम वो जो 32 मेगावाट का जो 4,000 करोड़ का 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। दिबांग वैली अभी जो शुरू में दिबांग वैली जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है बहुत स्लो चल रहा था, पब्लिक रेजिस्टेंस बहुत था, लेकिन हम जैसे तैसे हमारा जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है लोकल एमएलए लोगों का साथ मिल के पब्लिक को कन्विंस करने में सक्षम हुआ। अभी प्राय लैंड एक्विजिशन पूरा का पूरा ख़त्म हुआ है, अभी जस्ट 1-2% है। मैं दोनों एमएलए को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, दोनों एमएलए को धन्यवाद भी देना चाहूँगा। मोपी मिहू ने तो अपना पॉलिटिकल रिस्क लेके भी उन्होंने जो निर्णय लिया है, ये रियली मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब इलेक्शन हारेगा नहीं मोपी मिहू जी, अब इलेक्शन हारेगा नहीं, अभी हारेगा नहीं इलेक्शन, हाँ अब जीतेगा जरूर इलेक्शन। तो आप बहुत अच्छा काम किया है, जो अच्छा काम करेगा लोगों के लिए भला काम करेगा। ये 2880 मेगावाट का जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होगा कितना सुंदर होगा, कितना अपॉर्चुनिटीज आएगा, कितना लोकल एरिया डेवलपमेंट हो, अनइमेजिनेबल। अगर ये सब हो जाएगा हमारा पर कैपिटा इनकम कितना हमारा बढ़ जाएगा, अनइमेजिनेबल है। फ्री पावर है, लोकल एरिया डेवलपमेंट है, ये सब हो जाने से तो एग्री हॉर्टी सेक्टर, अगर एग्री हॉर्टी सेक्टर का बात बोला जाए तो वी कैन से दैट अरुणाचल इज द फ्रूट, अरुणाचल कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट बॉल ऑफ इंडिया। वैसे भी हमारा वाक्रो को ऑरेंज बॉल ऑफ अरुणाचल बोला जाता रहा, अभी डिक्लाइन हो गया। तो कल जो स्टार क्वेश्चन में हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर एग्रीकल्चर ने बोला था डिक्लाइनिंग का क्या कारण है, हम लोग एक साइंटिस्ट लेके बोला है कि मेंटेनेंस का कारण है, उसको लैक ऑफ मेंटेनेंस, लैक ऑफ वाटरिंग। तो ये जो थोड़ा R&D को भी हम लोग स्ट्रेंथन करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को विंग को हम लोग थोड़ा हम लोग का ये जो स्ट्रेंथन करना होगा, हमारा जो KVK को थोड़ा स्ट्रेंथन करना होगा। तो इसका आत्मनिर्भर कृषि और बागवानी योजना है, 120 करोड़ था उसको 200 करोड़ कर दिया अभी हमने। 300 करोड़ फ्रंट एंड सब्सिडी दे रहा है उसके लिए हम, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 610 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट होगा सब, अगर सब्सिडी को लेकर किया जाए। उसी का साथ ही साथ ये साल हम लोग आत्मनिर्भर प्लांटेशन क्रॉप ले रहा है 60 करोड़ का आत्मनिर्भर, ये पहले दफ़ा आत्मनिर्भर प्लांटेशन क्रॉप स्कीम ले रहा है। आत्मनिर्भर पशुपालन योजना 30 करोड़ का ले रहा है। आत्मनिर्भर मत्स्य पालन जो योजना है 20 करोड़ का ले रहा है, और इसमें से जितना 50% होगा वो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए जाएगा, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए। चीफ मिनिस्टर स्वावलंबन योजना ये बहुत पॉपुलर है, जो स्कीम है। अभी कोई एमएलए ने बोल रहा था, जो हमारा टपक टपू ने बोल रहा था बैंक लोन लेने में मुश्किल हो रहा है, ये जो है ये कंपलसरी है, बैंक लोन देना ही होगा हमारा। ये प्रावधान है हमारा जो LPC है, इट इज़ डीम्ड टू बी द लीगल डॉक्यूमेंट फॉर लीजिंग आपका मॉर्टगेज के लिए, तो इसीलिए बैंक को लोन देना ही होगा। अगर किसी का LPC है बैंक लोन देना, तो बैंक का इसीलिए बैंक को हम लोग बैंक डिनाई नहीं कर सकता है। स्वावलंबन योजना बहुत अच्छा है। CM उसका अलावा CM पर्यटन जो योजना है, CM कृषि योजना है। तो अभी तो हम we will not remain as a जो एम्प्लॉय, we will be employer। एक दिन हमारा जो लोग है वो एम्प्लॉयर हो जाएगा। कितना सरकारी नौकरी ढूंढे, कितना प्राइवेट नौकरी ढूंढे, अपने से आप इतना ज़्यादा स्कोप है अरुणाचल प्रदेश में कृषि में। अब इतना खेती हो रहा है, अभी जो रास्ता जो हो जाएगा, जो रास्ता हो जाएगा ये पॉपुलर ईटानगर से चला जाएगा, सब कुरुंकु में चला जाएगा, वहाँ में लाश काटम करेगा, ऑरेंज करेगा, पाइनएप्पल करेगा, ये सब खेती करेगा। आपका लोअर सुबनसिरी इज आपका लाश काटम बेल्ट है, तो इसलिए आवर पीपुल विल बिकम एम्प्लॉयर। बॉर्डर एरिया, जो बॉर्डर एरिया तो हमारा लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उस पर हम अटेंशन दे रहा है। हमारा इसमें
बजट में भी उसके लिए काफ़ी हमने जिक्र किया है। जो बॉर्डर एरिया से जो लोग आता है, वो जो लखमटा सर बोलता है, वहाँ से जो आपका कोलोरियांग से देखता है, पसीपालो से देखता है, तो ईटानगर में बिजली है, पानी है, कॉलेज है, स्कूल है, वहाँ नहीं है तो यहाँ आएगा। तो वहाँ भी इस तरह का सुविधा देने से वहाँ रहेगा, खेती बाड़ी का सुविधा देगा, यातायात का सुविधा देगा, वहाँ रहेगा। हम मॉडल विलेज एज ए पायलट प्रोजेक्ट, हम मॉडल विलेज भी ले रहा है, हम बॉर्डर एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में। हाँ, ये जो हम बॉर्डर एरिया बोलने से मॉडल विलेज इंटरनेशनल एरिया, माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट 17 लोकेशन में है, रिमोट विलेजेस इन इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया में होगा। इंटरनेशनल बॉर्डर हम 50 करोड़ नाबार्ड से लोन लेके कर रहा है, और ये काम शुरू होने का साथ साथ और हम 17 लोकेशन के लिए 15 करोड़ लेके उसको भी, उस पर भी हम इन्वेस्ट करेगा। तो हम बॉर्डर एरिया को भी हम उसका साथ ही साथ हम जो कॉम्प्रेहेंसिव डेवलपमेंट प्लान में हम बॉर्डर एरिया के लिए 4000 करोड़ का स्कीम जो हम प्रोजेक्ट दे के रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो भी हम चाहेगा कि वो जल्दी से जल्द हम प्राइम मिनिस्टर से बात करके, होम मिनिस्टर से बात करके उसका जल्द से जल्द हमको सैंक्शन दिया जाए। उसका बाद एजुकेशन सेक्टर में 50 मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल गोल्डन जुबली जो फर्स्ट फेज में 500 करोड़ का हम लोग प्रॉब्लम जो यहाँ जो इन्वेस्ट करने वाला है 2021-22 में इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमारा टारगेट था 1000 करोड़, उसमें हम 1300 करोड़ 1330 करोड़ हम इन्वेस्ट कर दिया है, उसमें ज़्यादा ही कर दिया हम इन्वेस्टमेंट। अनदर 500 करोड़ फॉर 12 एकलव्य। तो एकलव्य स्कूल के लिए हमारा ऑनरेबल MLA लुआंगडोंग जी ने भी बोला था, वो तो जो भी पैसा आएगा 500 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, और ये जो आपके लिए जो एलोकेशन देगा वो सहायता वाला ही करेगा। तो ये जो आपका जो पुराना जो अगर कोई आपका पेंडिंग पेमेंट है तो ये जो सहायता करेगा आपके लिए। यानी स्कूल के लिए भी परमानेंट जो हम सैनिक स्कूल जो पुराना है वो जो इंडस्ट्रियल एरिया में है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में होगा तो एक ना एक दिन प्रॉब्लम आएगा। 30 साल 50 साल का बाद में कोई आके RTI करेगा तो इंडस्ट्रियल एरिया में कैसा, स्कूल का एरिया में कैसा इंडस्ट्री आएगा, तो इंडस्ट्री को हटना होगा। इसलिए हमने कहा नहीं, सोनी स्कूल हम अलग जगह में, अच्छा जगह में देगा। तो वी आर ग्रेटफुल दैट द पीपल फ्रॉम पासीघाट एरिया दे हैव एलोकेटेड फ्री ऑफ कॉस्ट हमको जो सैनिक स्कूल के लिए, वहाँ के लिए हम 10 करोड़ रखा है परमानेंट। जो प्लेस है उसमें 10 करोड़ का हम इस दफ़ा हो जाए है। और जो कोविड के लिए जो बच्चों का जो लॉस हुआ है एजुकेशन, उसमें भी कैचअप क्लासेस के लिए 20 करोड़ कोर्स के लिए हम 5 करोड़ का प्रावधान रखा है। ग्रांट सी ने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के लिए हम ग्रांट सी ने 2 करोड़ का उनका हाई मास के लिए और बस खरीदने के लिए और फर्निशिंग ऑफ ऑडिटोरियम, इन सभी के लिए हम 2 करोड़ का ले दिया है। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिकरिंग एक्सपेंसेस फॉर फैसिलिटी फॉर और हमने और ग्रांसी ने दिया है उनके लिए कि हमारा जो बुद्धिस्ट स्टडीज़, अभी बुद्धिस्ट स्टडीज़ शुरू कर रहा है, उसके लिए भी हम उनको 5 करोड़ का हम धनराशि देगा। और 3 इयर्स के लिए जो 25 लाख का जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होगा फैकल्टीज़ के लिए, और 3 साल के लिए भी वो भी हम देगा। जो ग्रांसी नेट है पासीघाट स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसको लिए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अभी उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ है, क्लासरूम नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम 5 करोड़ दे रहा है। लाइब्रेरी को भी हम अपलिपमेंट करने के लिए लाइब्रेरी के लिए भी दिया है। हेल्थ सेक्टर में हम 450 करोड़ फॉर अपग्रेडिंग 18 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हम कोविड का पहले हमारा हेल्थ सेक्टर में बहुत पुअर था, अभी हम काफ़ी पैसा दे के, काफ़ी हम फंडिंग करके हम हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूवमेंट लाने के लिए ड्रीम्स अभी वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन एंटायर नॉर्थ ईस्ट बिसाइड रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल। और रामाकृष्ण मिशन हॉस्पिटल को फिर 200 बेडेड हॉस्पिटल हम बनाने जा रहा है।
फिर 100 करोड़ हम बाकिन पाटिन हॉस्पिटल जो पासीघाट में जो बाकिन पाटिन हॉस्पिटल है उसको 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाएगा। उसके लिए ये जो 100 करोड़ रखा है उसको अपग्रेड करने के लिए। बहुत पुराना है, प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है हमारा लिए ईस्टर्न सर्कल में, उसके लिए हम 100 करोड़ दे रहा है। हम गोल्डन जुबली अपग्रेडेशन ऑफ 60 CHCs and PHCs across 25 districts. Golden Jubilee upgradation of 60 CHCs and PHCs across 25 districts. उसके लिए 30 करोड़ दे रहा है। हम रिहेबिलिटेशन सेंटर और जो ड्रग्स के लिए हम रिहेबिलिटेशन सेंटर बना अभी वो है, उसके लिए हम नामसाई, ईटानगर एंड बॉम्बेला। तो ड्रग्स हमारा एक बहुत बड़ा समस्या है ड्रग्स। तो हमने ड्रग्स में अभी अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस 2021 ये भी हम पॉलिसी रहा है। इस पॉलिसी में सप्लाई रिडक्शन होगा, डिमांड रिडक्शन के लिए, हार्म रिडक्शन के लिए जो भी उसमें जो हमको कार्रवाई लेना है वो हम लेंगे। और हम वो भी कैबिनेट में ऐलान किया है कि हमारा अगर कोई इस पॉलिसी के जरिए अगर कोई कहीं भी पॉपी कल्टीवेशन करता है, कोई ड्रग्स कल्टीवेशन करता है, अगर ऐसा करेगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। तो इसीलिए मैं सभी मेंबर से अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि एक अवेयरनेस अपना एरिया में, क्योंकि हम अगर पॉपी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देगा, क्या कर देगा, उनका एक उल्टा एक भावना आएगा। तो इसीलिए उनको अभी से एक अवेयरनेस लाना है, अभी से उनको जो माइंडसेट है उसको बदली करने के लिए हम कोशिश करना है कि ड्रग्स हमारे लिए कितना खतरनाक है, उस पर हमको ये जो उनको बताना है। तो ये हम अभी अरुणाचल प्रदेश पॉलिसी ऑन साइको एक्टिव सब्सटेंस 2021 ये भी एडॉप्ट करने वाला है। एडॉप्ट हो गया है। और ड्रीम्स में हम ग्रांट्स ने तो 28 करोड़ था, अभी 40 करोड़ कर दिया है। न्यू इनिशिएटिव कॉल चीफ मिनिस्टर्स एनर्जी लाइफ प्रोटेक्शन सर्विस जो CM's हेल्प बोल के जाना जाता है, तो वो भी हम ला रहा है। गोल्डन जुबली दुलारी कन्या स्कीम जो मैंने ऑलरेडी कर दिया बोला है। साइनर्जी एंड कन्वर्सेशन फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें भी हम जो है 330 करोड़ जो हम जो प्रीमियम लेबर इंश्योरेंस के लिए जो 330 करोड़ 2 लाख लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हम दे रहा है। हमारा जितना भी प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा और प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना ये 2 पॉलिसी का आधार पे हमने द गवर्नमेंट सेल द प्रीमियम अंडर PM जीवन ज्योति बीमा एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। स्टेट गवर्नमेंट सेल कवर पेमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर ऑल एलिजिबल कंटीजेंसी वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स एंड ALC, उनको 2 लाख रुपया लाइफ इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। उसका साथ ही साथ CM's रूरल हाउसिंग स्कीम टॉपअप हम PMGSY में दे रहा है थ्रू DBT मोड 15 करोड़ दे रहा है। उसके डेवलपमेंट ऑफ 3 मॉडल विलेजेस नियर इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया 30 करोड़। वाटर फॉर ऑल 100 करोड़। ब्रांच इन एड फॉर ईटानगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एंड पासीघाट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 2 करोड़ पासीघाट के लिए, 6 करोड़ ईटानगर के लिए 8 करोड़ दे रहा है। और कवरिंग और कन्वर्टिंग MLA क्वार्टर्स टू स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये भी हम करने जा रहा है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, ये हमारा सबसे अगर रिचेस्ट फॉरेस्ट है तो अरुणाचल में हमारा ये उत्तराखंड में एक 15 ये जो हमारा जो एक कॉन्फ्रेंस हुआ रहा वहाँ में ये हिल स्टेट का, हिमालयन स्टेट का, उसमें हम लोगों ने सभी जो हिमालयन स्टेट है उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमारा 15 फाइनेंस कमीशन का जो ग्रांट होगा ये फॉरेस्ट कवर का आधार में होना है। तो इसीलिए 15 फाइनेंस कमीशन में 10% वेटेज देके, फॉरेस्ट कवरेज का वेटेज देके हमारा ग्रांट दिया है। इसीलिए उसमें एडिशनल जो 10% एडिशनल ग्रांट्स
possible under 15 Finance Commission for our own forest coverage. और हमने अपना फॉरेस्ट को बचाने के लिए और क्लाइमेट रेजिलिएंट के लिए पाके डिक्लेरेशन भी किया है हम। और ये अभी ये जो 2022 है ईयर ऑफ ई गवर्नेंस, हम 22 ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ले रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2022। इसके लिए 22 करोड़ हम ये जो रखा है यहाँ 22 करोड़ इसके लिए। कल्चर आवर प्राइड, सभी ने बोला है कल्चर, लॉस ऑफ कल्चर। हमारा लुआंगडोंग साहब ने भी बोला है कि लॉस ऑफ कल्चर इज़ लॉस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमारा जो कल्चर है, रीति रिवाज है, जो हेरिटेज है, लैंग्वेज है, उसका प्रोटेक्शन के लिए, उसका प्रिजर्वेशन के लिए, उसका प्रमोशन के लिए हमारा अपना हाथ है। और सरकार इसके लिए जो भी करना है कर रहा है। मैं अभी जो मैं पौडुमसा गया रहा और लोहित गया रहा, उसमें लोगों ने बोलता है कि वी आर ऑन दी बॉर्डर एरिया, हम असम बॉर्डर में सटा हुआ है, वी आर इन्वेडेड बाय अदर कल्चर, प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर कल्चर। मैंने बोला दिस इज़ द एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो अदर कल्चर आएगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू प्रोटेक्ट and preserve our own culture, and for that government of Arunachal Pradesh is doing all out efforts to protect our own culture and language. इसलिए इंडिजीनियस जो डिपार्टमेंट है, इंडिजीनियस डिपार्टमेंट खोल के दिया है। तो इसीलिए ये हमारा कर्तव्य है, हमारा सभी का है। इसलिए हम लोग नींबू निगम यारको गुरुकुल स्कूल इस कामेंग में 3 ठो देगा हम लोग, और एक इस कमिंग में अभी जो बोला है उसमें और एक उसको भी देगा। और इंडिजीनियस प्रेयर सेंटर देगा हम 21-22 4 करोड़ से, जो 4 करोड़ दिया रहा उससे हम 10 करोड़ दे देगा। अभी रोनीपोलो कुमको इन पासीघाट 2 करोड़। और उसका साथ ही साथ हमारा जो कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स है, हमारा जो प्रोडक्ट्स है जैसे खमती राइस है, खौते बोलता है, याक छुरपी है, आपातानी टेक्सटाइल है, जो टांगसा हैंडलूम है, उसको कमर्शियलाइजेशन के लिए जोग्राफिकल जीआई जीआई रजिस्ट्रेशन अभी कर रहा है, इसके लिए हम जीआई रजिस्ट्रेशन। उसका साथ ही साथ हमारा जो नेक्स्ट फेज में आदि जो आदि के किट जिंजार है, उसके लिए मोनपा हैंडलूम के लिए वांचो वुडक्राफ्ट एंड बीच क्राफ्ट, अनमैच वुडक्राफ्ट एंड बीच क्राफ्ट दे वांचोज है। उसको प्रमोट करने के लिए, उसको और कमर्शलाइज करने के लिए, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग जीआई रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। निशी हैंडलूम एंड टेक्सटाइल, वन ऑफ द मोस्ट कलरफुल एंड ब्यूटीफुल निशी हैंडलूम है, उसका भी हम लोग उसका भी जीआई रजिस्ट्रेशन करने वाला है। इंडिजिनियस अफेयर्स हमने 1 साल का अंडर 42 करोड़ उनका जो बढ़ा दिया, उसको 1 ईयर 42 करोड़ उनका जो अलॉटमेंट कर दिया है। पंचायत राज का बारे में मैं बोलना चाहूँगा। पंचायत राज में जो डिवोल्यूशन है 10% डिवोल्यूशन है स्टेट ओन रिसोर्स। स्टेट ओन रिसोर्स का मतलब है कि ये जो टैक्स रिसोर्स है हमारा, तो हमारा जो it needs to be emphasized here that devolution of funds as grants paid by either center or state government are made only from the tax revenue levied and collected by the respective government. तो जो भी है डिवोल्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जो हमारा डिवोल्यूशन आता है वो टैक्स रेवेन्यू से आता है। तो हमारा अरुणाचल में भी हम जो अभी टैक्स रेवेन्यू जो पंचायत को देगा 130 करोड़, वो बेस्ड ऑन आवर टैक्स जो रेवेन्यू है। और वो आपका जो एजी ने उसको जो ऑलरेडी इसको ये जो
एजी में जो सर्टिफाई हुआ है ऑलरेडी, जो एजी में जो सर्टिफाई हुआ है वही होगा, इसीलिए 2019 अभी हुआ नहीं, एजी में सर्टिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए जो एजी में सर्टिफाई है 2019 का, उसका बेसिस पे 129 करोड़ डिवोल्यूशन मिलेगा पंचायत राज को। इसमें जो ये जानकारी होना है। और पीस एंड सोसाइटी जो है हमारा, जो पुलिस के लिए जो 100 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडर स्पेशल पैकेज है, अपग्रेडेशन जो सीएम साहब ने बोला है, हम वन ऑफ द बेस्ट जो पुलिस जो ट्रेनिंग सेंटर रहेगा उसके लिए 10 करोड़ दिया है। दरकार होगा तो हम अगर 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट करके बाद में दरकार होगा हम उसका धनराशि बढ़ा देगा उसके लिए। और पहले तो पुलिस के लिए तो गाड़ियाँ नहीं था, सब खराब गाड़ी था, अभी तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट व्हीकल्स आर बीइंग प्रोवाइडेड। हम 300 व्हीकल दिया है, 155 करोड़ ड्यूरिंग लास्ट 3 years फॉर TLC, फॉर इम्प्रूविंग ऑफ जो वहाँ में जो पोस्ट के लिए, तो ये तो हम लोग दे रहा है। उसमें और एक बात है, मैं थोड़ा फॉरेस्ट का बारे में भी मैं बोलना चाहूँगा। बहुत लोगों ने फॉरेस्ट का बारे में जिक्र किया है, तो फॉरेस्ट ऐसा जो बात है, मेरा सजेशन है फॉरेस्ट के लिए, एक मेरा सजेशन है। हमारा बहुत सा एरिया है, जैसा नामसाई है, जैसा ईटानगर है, जैसा आपका देवमाली है, लोहित है, आपका वाकरो है, वो सब फॉरेस्ट रिजर्व में है। और फॉरेस्ट वाला कहता है कि ये एनक्रोचमेंट है, और फॉरेस्ट मिनिस्टर भी बोल रहा है जहाँ एनक्रोचमेंट है वो डी रिजर्व हो नहीं सकता है। और डी रिजर्व इज ए सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, नॉट दी सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि एनक्रोचमेंट तो कहीं कहीं तो एनक्रोचमेंट, अभी जो हमारे देवपानी किस लिए डी रिजर्व हुआ? देवपानी इसलिए डी रिजर्व हुआ कि ड्यूरिंग 1950 जो भूकंप आया रहा, अर्थक्वेक आया रहा, जो लोग वहाँ में गांव का लोग डिस्प्लेस हुआ है, उसको रहने के लिए वो जगह दिया है, उसको डी रिजर्व किया है। तो हम तो कहता है कि हमने तो एनक्रोचमेंट नहीं किया, फॉरेस्ट वाला एनक्रोचमेंट किया है, इसका प्रूफ हमारा पास है। अब देखिए कैप्टन सेंट जॉन एफ माइकल 1883, उनका इन हिज रिपोर्ट इन topographical, political and military report published by Intelligence Branch Quarter Master General Department in India in 1883 depicts all about the settlement of the Khamtis and Singphos in the areas of Tengapani, Noa Dihing and Buri Dihing. The report states the Tenga River forms the northeast of the square, and on this river are 7 Singphos and 6 Khamti villages, say 200 inhabitants. To pass from Tengapani settlement of the Singphos to Buri Dihing villages of Manabum ranges has to be crossed. A well-cultivated rice country is then reached, inhabited by Khamtis, Duanias and Singphos, and distributed in 6 villages of Singphos, 4 villages of Khamtis, and 2 of Duanias, say 1,000 inhabitants. The Noa Dihing forms the west side of this rough square, and on this river and its affluents are 18 Singpho villages, 9 Khamti villages, and 1 Duanias. Few of these villages exceed 30 houses, say a total 2,700. Some of the villages of Tengapani reported in 1839 were Jonarghat, Khamti village, Latao, Singpho village, नायरगांव खमती विलेज, सोंगकम लिखा है, चोखम अभी का जो चोखम है, सोंगकम लिखा है, खमती विलेज, पलमपन खमती विलेज, कानुंगांव खमती विलेज, मुफिंग सिंगफो खमती विलेज, लटला गांव सिंगफो विलेज, नेपान पानी सिंगफो विलेज, निबुलांग सिंगफो विलेज, निडोंगम सिंगफो विलेज, न्यूसंग सिंगफो विलेज। ये जो सिंगफो विलेज है, ये कैप्टन सेंट जॉन एफ माइकल द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इंडिया ए टोपोग्राफिकल पॉलिटिकल एंड मिलिट्री रिपोर्ट विवेक पब्लिश हाउ न्यू दिल्ली 1973। ये जो है फिर कर्नल एडम वाइट
political agent Sadia dated 10th March 1838. Wrote to Captain F. Jenkins. ये कर्नल एडम वाइट को हमटी रेबल में मारा गया है 1839 में. उन्होंने 1838 में he wrote to Captain F. Jenkins, agent to the Governor General Assam. He mentioned about the settlement of Thai Khamtis and Singhos in Tengapani area and also about the census of the people living there. The population has been estimated as follows on the Tengapani: 498 houses containing 1,440 males capable of bearing arms alone, 3 old men, women and children for each. This will give a population of 5,822 souls. Humpty's houses 40, males 2,000 other. ये जो है etc. Sources, ये source है Foreign Department Political Branch 18th April 1838. और sources भी है Archival Material National Archives of India. ये सब authentic documents है हम लोग का settlement. आप बोलेगा कि नमसाई में 1937 में रिजर्व डिक्लेयर किया है, लेकिन 1937 से कई 100 साल आगे हम लोग वहाँ में फंसा है. इसी तरह हमारा इसको भी अभी ईटानगर का भी प्रॉब्लम है, इसका भी वाकरो बिफोर कंजप्शन एक केम इनटू बीइंग. वाकरो तो वहाँ में एग्जिस्टेंट था, लेकिन वाकरो को भी अभी रिजर्व एरिया में ले लिया है, नामसाई को भी रिजर्व एरिया में ले लिया. हम नहीं चाहता है कि पूरा का पूरा हमको डी रिजर्व करने के लिए उसको रेगुलराइज करना. जहाँ जहाँ हैबिटेशन है सिर्फ उसको रेगुलराइज करना है, कन्वर्सन करना है, डी रिजर्व नहीं करना है उसको. तो ये हो सकता है ये ईटानगर के लिए जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम है. अभी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट 1970s एंड 80s में प्रपोज रिजर्व हुआ, कोई हियरिंग हुआ नहीं. अभी उस पर भी हियरिंग होना है. अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिया प्रपोज रिजर्व के लिए, उसके लिए भी होना है. ये भी हमारे लिए बहुत बड़ा समस्या है. अभी प्रपोज रिजर्व फॉरेस्ट से अभी टावर आ रहा है 132 टावर जो TCL का, वहाँ में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टॉप कर दिया क्योंकि फॉरेस्ट है. फिर वहाँ का आदि लोग ने बोला कब प्रपोज रिजर्व बनाए, तो हमारा गांव 40-50 साल से गांव है, यहाँ का गांव है, जंगल तो है नहीं है. इस तरह का कोई कंफ्यूजन है. हमारा जो समस्या है इसको हम अच्छा से समझना है. मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और कहीं कहीं अगर रिक्वायर्ड भी हमारा जो लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दोनों मिल के एक इस जो समस्या है समस्या को दूर करने के लिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, पर्सनल एक रिक्वेस्ट भी है, एक सजेशन भी है. ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो समस्या है. तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हो गया अध्यक्ष जी, मैं समाप्त कर देता हूँ अभी. तो अभी मैं समाप्त कर देता हूँ. अभी बोलना तो बहुत मैं चाहता था. हमारा जो फाइनेंशियल रिफॉर्म है क्या है सब ने बोल दिया है. अभी हमारा मैं आ जाऊँगा वहाँ में फिर. तो ये जो है जो हमारा जो 6 पिलर पे जो हमारा जो फिलोसफी है, नो सिटीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. जो हमारा जो फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट है, हम चाहता है कि नो सिटीजन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड ऑफ द फ्रूट ऑफ डेवलपमेंट इन अरुणाचल प्रदेश. और ये जो फिलोसफी है, ये जो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स है, गुड गवर्नेंस है, प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ है सेक्टर है, कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भर अरुणाचल प्रदेश, साइनर्जी एंड कन्वर्जन, एनवायरमेंट जो है, तो इसको लेके किया है. और ये हमारा हिस्ट्री है. हमारा कभी की 25,000 करोड़ से आगे नहीं बढ़ा है. 25,000 करोड़ हमारा जो है 25 करोड़ से आज जो बढ़ गया है. ये हमारे लिए एक हिस्ट्री है अरुणाचल प्रदेश. In the history of Arunachal budget this year, the first time budget amount has crossed rupees 25,000 crore. ये भी हमारे लिए बहुत एक ये जो है. और हमारा लोग बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. मैं कहूँगा कि इंडिया में ही वी आर वन ऑफ द बेस्ट कैपिटल जो एक्सपेंडिचर स्टेट है. हम कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा है भारतवर्ष में अगर है. वी आर ऑल्सो वन ऑफ दैट. एंड नॉर्थ ईस्ट में तो हम सबसे ज़्यादा है. अगर लोन को तो लोन रिटर्न लोन लेता है तो लोन
रिटर्न भी करना है, तो रिटर्न तो हमारा कहाँ से, प्लान साइज से ही जाएगा। अगर वो प्लान साइज का पैसा हम ले तो साइड इक्वल होगा हमारा, जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये जो इक्वल होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और फॉर हमारा जो रिफॉर्म था ये जो है ये नहीं बोलूँगा। हमारा एक समस्या है और एक जो हम ऐलान किया रहा बजट में कि हमारा चोखाम और जिया में जो वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज़ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, उसी तरह हम 5 जगह में लेगा। 5 जगह के लिए हम अनाउंस किया रहा। वो 5 जगह का नाम है ये जो हम अनाउंस किया है कि लोंगडिंग, लेपाराडा, मेचुका, ईस्ट कामेंग एंड तवांग। लेकिन लोंगडिंग का जगह तिराप होने चाहिए था, शायद टाइपिकल एरर हुआ है। ऑनरेबल मिनिस्टर PHC ने लिख के दिया है मुझे, उनका सिग्नेचर भी है, उनको लिख के दिया है। इसलिए इसको हम लोग को करेक्ट करना है, इसको गलती नहीं होना है, वो करेक्ट करके हम लोग देगा। उसका बाद जो भी MLA लोगों ने सजेशन दिया है वो बोला है, कुछ बोला भी है, मैं नोट करके रखा हूँ। और आई हैव एक्सेप्टेड ऑल योर सजेशन। तुकी साहब ने बहुत अच्छा बात जो बोला है, तो उसमें से एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपने बोला है जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो है, तो हमारा सरकार, पेमा खांडू सरकार का विज़न है कि आने वाले समय में हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स, अभी हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत अच्छा है। आप कितना जीवन सुंदर हो गया हमारा जीवन। आप ईस्टर्न सर्कल में जाइए, आप नामसाई से रोइंग जाओ, नामसाई से पासीघाट जाओ, नामसाई से आप इसमें मियाओ जाओ, तेजू जाओ, कितना सुंदर यातायात, कितना सुंदर हमारा जीवन हो गया है। हैप्पीनेस इंडेक्स भी कितना बढ़ गया है। और हमारा विजन रहेगा, पेमा खांडू सरकार का विजन यही रहेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स को हम और बढ़ाएगा। और हमारा बजट में यही हम प्रकाश डाला है कि हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाने के लिए ही हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, कम्युनिकेशन सेक्टर है, उसमें हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है। और जो बॉर्डर एरिया है उस पर जब माइग्रेशन ना हो उसमें भी ध्यान दिया। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का बारे में बोला है, मैं भी मानता हूँ। अरुणाचल प्रदेश में वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बहुत है। मैं PSC चेयरमैन था, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन था। उसमें ऑडिट ऑब्जेक्शन, ऑडिट पारा में कितना ऑडिट पारा अट्रैक्ट करता है वेस्टफुल एक्सपेंडिचर का बारे वहाँ में। एक इरिगेशन चैनल आने वाला था, तो इरिगेशन चैनल नहीं आया, 10 साल का बाद भी वो ऑडिट पारा में आ गया। तो मैं जाके देखा जिला में ये किस लिए नहीं आया, तो वो चैनल एक छोटा सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से चैनल लेना था, लेकिन आखिर में हाइड्रो प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं। तो हाइड्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ ही नहीं, तो पानी का चैनल कैसे आएगा? तो ये तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो गया। तो हमारा ये कॉलेज जो लेता है, पॉलिटेक्निक, अभी कितना हम जगह में पलटे, सब डिफांग पड़ा हुआ है। बहुत सा कॉलेज इंटीरियर में हम लिया है, डिस्ट्रिक्ट में लिया है, वो सब भी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है। तो इस तरह का और टूरिज्म में बहुत सा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है, वेस्टफुल है। मैं तो कहूँगा कि प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट को और टूरिज्म डिपार्टमेंट को इसको अच्छा से स्टडी करके तो एक अच्छा एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी इंस्टीट्यूट को दे दिया जाए। और अगर कहीं टूरिज्म का ऐसा कोई है तो कोई हमारा अनएम्प्लॉयड अगर लड़का बच्चा जो आ जाता है, पैसा क्यों चाहिए? आप इसको साथ एग्रीमेंट करके नॉमिनल कुछ लेके उनको चलाने दो, कुछ बिना पैसा का भी आप चलाने, सिर्फ एग्रीमेंट करो। ऐसा करके वो जो 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 आपका डिफांग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए हमको अभी कोशिश करना है। तो इसीलिए मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। टुक्की जी, आपका जितना भी आपका सजेशन है, नोटेड डाउन ऑल योर सजेशन, जितना भी एमएलए लोगों का है, मैं ये लिया हूँ। लोंगडोंग जी, आपका भी मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप 2 करोड़ का बोला है, मैं 6 करोड़ और दे दिया हूँ आपका नरोत्तम हेरिटेज साइट के लिए। ये साल बजट में 6 करोड़ और है, टोटल 6 + 2 8 करोड़ है। लेकिन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको सुंदर से आपको बनाना होगा। ऐसे आप पैसा लेके वो नहीं करेगा तो नहीं होगा, हमको पूरा दिखाना होगा एंड एक मेमोरी होगा। वो आपका नरोत्तम के लिए, नरोत्तम राजा के लिए एक पूरा मेमोरी होगा। वो जाके हम लोग उद्घाटन करेगा एक साथ का। आपको बुलाएंगे।
उसका नाम घर भी बनाएगा वहाँ में हम लोग। इंजीनियरिंग तो कॉलेज ये- का बता दीजिए। ये होना है, हम लोग एक साथ जाएगा, लेकिन ये होना है। आपको आश्वासन देता हूँ, हमारा सरकार का तरफ से अपना हेरिटेज को जीवित रखने के लिए, अपना कल्चर को जीवित रखने के लिए जो भी होगा सरकार से हम जरूर मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू। Honorable Chief Minister. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस डिस्कशन को वाइंड अप करने का जो आपने मौका दिया है। हम सबको पता है कि इस साल 2022 हम सब के लिए बहुत ही खास है, केवल सिर्फ अरुणाचल के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि पूरा देश अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहा है और अपना स्टेट में अरुणाचल प्रदेश का नामकरण का जो 50th ईयर गोल्डन जुबली का ये साल है। तो ये भी आज का जो बजट सेशन भी एक हिस्टोरिक रहा। इट विल बी टर्म्ड एज द गोल्डन जुबली बजट ईयर, गोल्डन जुबली बजट सेशन। फर्स्ट टाइम इन द history of this assembly without discussion बजट को पूरा हाउस ने पास कर दिया। सो ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका माध्यम से इस सदन में जितनी भी जो मेंबर्स है उसको बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि गवर्नमेंट को इतना अप्रिशिएट करता है कि एक चीज तक भी डिस्कशन नहीं करके पास कर दिया। वो तो बड़ापन आपका है कि आपने फिर दोबारा फिर मौका दिया कि आप लोग नहीं पार्टिसिपेट कीजिए बोल के। तो एनीवे आप सभी को धन्यवाद और स्पीकर साहब आपको भी खास करके बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्कशन और सुझाव में बहुत सारा ऑनरेबल एमएलएस लोग ने पार्टिसिपेट किया और जैसे ऑनरेबल डीसीएम साहब जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने भी कहा कि जो अच्छा जो सुझाव है ऑलरेडी उन्होंने भी नोट कर लिया है और अदरवाइज अपना प्लानिंग एंड फाइनेंस के जो डिवीज़न के ऑफिसर्स हैं वो लोग भी पूरा नोट डाउन कर लिया है। तो क्योंकि मैं अभी टर्म कर रहा था, क्योंकि इस साल का बजट सेशन जो है गोल्डन जुबली बजट सेशन है और आप सब लोग ने भी बजट को देखा और आप सब लोग ने रियलाइज़ किया होगा। थोड़ा देर पहले हमारा ऑनरेबल डीसीएम साहब ने भी जिक्र किया इसमें। फर्स्ट टाइम हम लोगों का राज्य में we have crossed the budget allocation of 25,000 crore, 26,111 का इस बार बजट हम लोग ने बनाया है। और इसमें खास करके शुरुआत करने से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देगा। इस बार का हम लोगों का जो 36th स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन में उन्होंने अपना वीडियो मैसेज के तहत अरुणाचल में जो विकास चल रहा है और ख़ास करके हमारा अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जो जनता है वो लोग हार्ड वर्किंग है और उन्होंने एक अपेक्षा जगाया कि आने वाला दिनों में इसी प्रकार से अगर अरुणाचल प्रदेश का ट्रांसफॉर्म होते जाएंगे तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल जो है वो एक मेजर गेटवे टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के लिए ये हो सकता है। तो उसी प्रकार से अभी लास्ट 50 ईयर्स का जो जर्नी और डीसीएम साहब तो बहुत ही सीनियर है, उनका हमेशा स्पीच में पुराना ज़माने का जो ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ हमेशा उस स्पीच में टच करते हैं। तो इसी प्रकार से जो अभी डेवलपमेंट हुआ उसी रिदम को ही हम लोगों को आगे बढ़ाते हुए अपना सुंदर प्रदेश को हम लोग मिलकर डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और जिसमें से जो इस बार का जो बजट ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जो हम लोग का 14 को यहाँ पे जो रखा है वो एक बहुत ही अच्छा एक सोच विचार के साथ में इस सदन में रखा है। कुल इसमें जो आप सब ने भी पार्टिसिपेट करते हुए भी जिक्र किया कि 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर में 6 पिलर्स के ऊपर में इस बार का बजट हम लोग ने फोकस करने का पूरा कोशिश किया है। इसमें नंबर 1 में जो ऑनरेबल डीसीएम साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो स्पीच में रिफॉर्म्स के बारे में और प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बारे में शुरुआत करते हुए और लास्ट में जाके एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिडेंस के बारे में हम लोग ने बात किया है। अरुणाचल प्रदेश हम लोगों का बहुत ही एक सक्षम एक स्टेट है, बहुत ही रिसोर्सफुल एक स्टेट है। तो प्रॉब्लम तो हम लोगों का पहले कनेक्टिविटी नहीं होने का कारण से
और एजुकेशन में थोड़ा बैकवर्ड होने का कारण से इन सारा चीज़ों को हम लोग हार्नेस कर नहीं पाया। मगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के सपोर्ट में पिछले लास्ट 7 ईयर्स में जिस प्रकार से अरुणाचल को ट्रांसफॉर्म हुआ है, खास करके कनेक्टिविटी के क्षेत्र में हम सब लोग विटनेस रह चुका है। हम लोगों के आंखों के सामने हाईवेज का सैंक्शन हुआ, हाईवेज का पूरा बनते गया, काफ़ी हाईवेज अभी बन गया है और भी मेजर हाईवेज का काम अभी भी चल रहा है। तो कनेक्टिविटी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, अपना चाहे राज्य बोलिए, डिस्ट्रिक्ट बोलिए या अपना कॉन्स्टिट्यूंसी या अपना गांव बोलिए, सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्टिविटी है। मगर अरुणाचल में सेइंग सो अभी भी कनेक्टिविटी को हम लोगों को एड्रेस करना बहुत ही अभी बाकी है। क्वेश्चन आवर्स में भी कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन होता है, कभी कभी 0 आवर डिस्कशन में भी इसका कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कशन होता है, और डेफिनेटली मोशन टू थैंक्स टू गवर्नर्स स्पीच उसमें जिक्र होता है, और बजट डिस्कशन में भी कनेक्टिविटी का जिक्र होता है। अभी जो रिकॉर्ड का मुताबिक, जो रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट का मुताबिक, अभी भी हम लोगों का करीबन बड़ा गांव छोटा गांव सब मिला के एंटायर स्टेट का करीबन 980 विलेजेस अभी भी अनकनेक्टेड है बोल के शो कर रहा है। तो उसी को ही अभी हम लोग चिंता करते हुए अभी भारत सरकार के साथ में काफ़ी बार हम लोग ने बातचीत किया, क्योंकि भारत सरकार का भी बहुत सारा फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, खास करके प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। और ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अरुणाचल के लिए बहुत ही लाभदायक एक स्कीम रहा। उसके तहत से हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश का उस PMGSY गाइडलाइंस के मुताबिक जो जो क्वालिफाई होता है गांव, आज वो सारा गांव कनेक्टेड हो चुका है। अभी बहुत जल्दी PMGSY 3 जो एक्सिस्टिंग रोड, जो 10 साल पुराना जो रोड है, उसको ऊपर में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी स्कीम फाइनलाइज करके उसको भी स्ट्रेंथनिंग करेंगे। तो लेकिन इस बीच में जो उस गाइडलाइंस में जो नहीं आता है उसको अभी कैसे कनेक्शन किया जाए, ये एक बड़ा सा एक प्रश्न है सरकार के लिए भी, सभी के लिए, आप सभी के लिए भी, और खास करके उन गांव वाला का जो जिसका पास अभी तक रोड नहीं है। तो उसको एड्रेस करने के लिए अभी हम लोगों का जो फंडिंग जो पैटर्न है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अलग अलग एजेंसी से, हम लोगों का डोनर मिनिस्ट्री से हो गया, और उसके बाद अपना लोन से RIDF मॉडल से हो गया, कुछ स्कीम्स हम लोग वहाँ से भी हम लोग ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आज की सदन से माननीय प्रधानमंत्री जी और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी को बहुत धन्यवाद देगा। इस बार का यूनियन बजट में खास करके नॉर्थ ईस्ट को फोकस करते हुए, क्योंकि ऑनरेबल PM साहब 2014 से लेके ही नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही वोकल रहा है। सिर्फ वोकल ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरा नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म भी किया है। अभी भी उनका बजट जो है, यूनियन बजट, नॉर्थ ईस्ट को टच किया बिना कभी वहाँ पे पेश नहीं होता है। इस बार का बजट में भी, यूनियन बजट में, नॉर्थ ईस्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने PM's डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स फॉर नॉर्थ ईस्ट, ये एक नया स्कीम PM साहब ने शुरुआत किया है। पहले सरकार में देखिए, आज हम लोग यहाँ पे मिलके अपना सरकार चला रहा है, और सभी लोगों का अपना अपना तजुर्बा रहा है कि सरकार में किसी न किसी पोस्ट में आप लोग भी बैठा है। सरकार मदद करने चाहने से भी उसको एक विंडो चाहिए मदद करने के लिए, एक रास्ता चाहिए होता। तो ऑनरेबल PM साहब ने देखा कि नॉर्थ ईस्ट को और भी ट्रांसफॉर्म करना है, एंड दिस विंडो दैट ऑनरेबल PM साहब हैज क्रिएटेड, इट विल डेफिनेटली बेनिफिट द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और खास करके अरुणाचल प्रदेश। मैं थोड़ा देर पहले अनकनेक्टेड विलेज के बारे में जो बात कर रहा था, तो अभी हम लोगों को प्रॉपर विंडो एक मिल गया। अभी हम लोगों को प्रॉपर से ही विंडो मिल गया। अभी हम लोग हमेशा बात करते आए हैं कि अरुणाचल प्रदेश हैज़ बीन डिप्राइव्ड फ्रॉम द एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स। अभी इतना साल से बोलते आया, लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ जरिया नहीं था, रास्ता नहीं था। खास करके अरुणाचल प्रदेश के लिए तो ये इनिशिएटिव जो ऑनरेबल PM साहब ने लिया है इस बार का बजट में, उसका माध्यम से अभी हम लोगों का बहुत बड़ा चीज़ हम लोगों को एड्रेस होने वाला है, जिसमें से अनकनेक्टेड जो आज का जो विलेजेस है उसको हम लोग ऑन प्रायोरिटी बेसिस पीस मिल करके, मतलब फेजेस करके, हम लोग इस जो अनकनेक्टेड गांव है इसको भी हम लोग इस प्रोजेक्ट के अंदर में हम लोग लेके जाएंगे। और आई एम फुल कॉन्फिडेंट कि इस स्कीम के अंदर में
हमारा अरुणाचल का भी बहुत सारा प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा। और साथ ही साथ क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है काफ़ी लंबा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, इस बार का यूनियन बजट में भी स्पेसिफिकली हमको तो लगता है कि अरुणाचल का सोच चिंता करते हुए ये अनाउंसमेंट हुआ। अभी इस डिस्कशन में कुछ मेंबर्स लोग ने भी जिक्र किया कि और ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप भी क्योंकि बॉर्डर एरिया कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो बॉर्डर में रहने वाला लोगों का चैलेंज काफ़ी बहुत पिक्यूलियर, काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि पॉपुलेशन माइग्रेशन आ जाता है। फिर हम लोग चाहते हैं कि पॉपुलेशन को फिर वापस फिर बॉर्डर में लेके जाए, लेकिन वहाँ में सिर्फ लेके जाओ, सिर्फ मुंह से बोलने से तो होगा नहीं। उन लोगों का लाइवलीहुड चाहिए, उनको कनेक्टिविटी चाहिए, उनको सारा फैसिलिटीज़ भी चाहिए वहाँ पे। तो अभी इसको चिंता करते हुए आप लोगों के साथ भी जितने भी जो बॉर्डर एमएलएस है अरुणाचल का, जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है, उसके साथ में भी हमारा काफ़ी बार मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद मैं बजट सेशन से पहले यहाँ से एक डेलीगेशन में लेके गया, जिसमें अपना यूनियन मिनिस्टर किरण जी, अपना तापिर गाँव जी, अपना MP रिविया साहब था। तो हम लोग वहाँ में जाके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को साथ में बैठ के बहुत डिटेलली डिस्कशन हुआ अरुणाचल का, खास करके इस प्रॉब्लम्स को लेते हुए। तो मैडम ने कहा कि डेफिनेटली इस बार का बजट में हम कुछ ना कुछ तरीका निकालेंगे आपका बॉर्डर जो चैलेंजेस है उसको एड्रेस करने के लिए। तो इस बार का अनाउंसमेंट, यूनियन बजट का अनाउंसमेंट में, इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल दी नॉर्दर्न बॉर्डर्स को डेवलपमेंट करने के लिए वाइब्रेंट विलेज स्कीम्स का भी अनाउंसमेंट हुआ है। और पूरा कंट्री में अगर नॉर्दर्न बॉर्डर्स को देखा जाएगा, स्टेट्स वाइज देखा जाएगा, अरुणाचल इज हैविंग दी वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉर्दर्न बॉर्डर्स। क्योंकि हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर में देखिएगा तो भूटान, इसके बाद तिब्बत, चाइना, दोनों को अगर मिला देगा इन किलोमीटर्स वाइज, आई थिंक इट विल बी अराउंड 1350 किलोमीटर्स ऑफ लेंथ। उसमें हमारा कितना कॉन्स्टिट्यूंसी और कितना डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाएगा। तो आने वाला दिनों में अभी इस स्कीम का ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी लेवल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल में इसका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से, प्लानिंग किस प्रकार से करना है, दैट प्रोसेस हैज़ बीन ऑल्सो बीन इनिशिएटेड। तो मैं आज अपना सरकार की ओर से और अरुणाचल प्रदेश के पूरा जनता की ओर से ऑनरेबल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण जी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को इस वाइब्रेंट विलेज स्कीम के लिए भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। अब इस बार का जो बजट में हम लोग ने अभी बहुत फोकस करने का यहाँ पे क्या बहुत सारा सेक्टर्स में, अभी ऑनरेबल DCM साहब ने भी थोड़ा देर पहले जो कहा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर नेशनल एवरेज देखा जाए तो हम लोग नेशनल लेवल से भी अहेड है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग नंबर 1 में है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में। ये स्टेट के लिए बहुत अच्छा बात है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अभी फोकस हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा हम लोगों का ये जो प्लानिंग का जो प्रक्रिया जो चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। हमारा स्टेट में बहुत सारा टैलेंट है, बहुत यहाँ पे हमारा खास करके पोटेंशियल्स भी काफ़ी है। तो खास करके जो हमारा इकोनॉमी को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। इकोनॉमी केवल जितने भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का इकोनॉमी बोलो या कैपिटल का बोलो या मेजर टाउन्स का, उसमें हम लोग सीमित होने से नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो है हम लोगों का रूरल पॉपुलेशन है। जितने भी जो हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो गांव में बसे हुए हैं। तो अभी लास्ट 2-3 साल से हमने पूरा ट्राई किया कि अपना इकोनॉमी जो है, विलेज इकोनॉमी को कैसे हम लोग रिफॉर्म कर पाएगा। अगर विलेज इकोनॉमी हेल्दी होगा, इसका मतलब अपना स्टेट का भी इकोनॉमी हेल्दी है। तो विलेज इकोनॉमी भी अभी कैसा हेल्दी होगा, तो वहाँ में हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का अरुणाचल का सभी ट्राइब्स का वुमेन्स, महिलाओं लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी को आगे लेके जाने के लिए। तो इसलिए पिछले 1 साल में हम लोग ने काफ़ी फोकस किया कि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो, तो हमारा जो फार्मर्स है उन लोगों के माध्यम से हो, रूरल इकोनॉमी को एड्रेस करने के लिए। लास्ट ईयर इस सदन में 2 इम्पोर्टेंट स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना। तो इसके तहत जो सक्सेस जो रेट है वो ऑलरेडी ऑनरेबल गवर्नर का स्पीच में भी मेंशन था कि इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है। लास्ट ईयर वी हैव ओनली एलोकेटेड 120 crores
मगर इस बार हम लोग ने उसको 200 करोड़ कर दिया है, 200 करोड़। इन एडिशन टू दैट एग्रीकल्चर और एलाइड को और भी गति देने के लिए अभी 3 नया स्कीम्स भी हम लोग ने लॉन्च किया है। एक तो हो गया आत्मनिर्भर प्लांटेशन स्कीम, और आत्मनिर्भर पशुपालन योजना, और आत्मनिर्भर मत्स्य पालन योजना। तो ये 3 स्कीम्स भी लोगों तक लेके जाएंगे, और हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले हम लोग प्रायोरिटी, क्योंकि हम लोगों को अभी बिजनेस मॉडल में जाना है। अभी गांव में भी आप पढ़े लिखे नहीं हो सकते, बट यू कैन बी एन एंटरप्रेन्योर। बिजनेस के लिए आपको पढ़ा लिखा का होना जरूरी नहीं है। इवन ये सदन में आने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन या कभी भी संविधान में नहीं लिखा है कि पढ़ा लिखा होना है। तो पढ़ा लिखा नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकता है। वी शुड एम्पावर इवन दोस ऑल्सो। तो गाँव से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोगों का सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और सेल्फ हेल्प ग्रुप अभी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है, और पूरे अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा ओकेजन्स में, बहुत सारा इवेंट्स को हम जाके एड्रेस करते हैं। जो बेनिफिट है वो लोगों तक देते हैं। जो हम लोग का फर्स्ट टाइम अरुणाचल में हम लोग का CD रेशियो बढ़ा है। अदरवाइज अपना जो CD रेशियो मतलब जो बैंक लोग जो लोन देते हैं, अरुणाचल का परफॉर्मेंस वाज वेरी पुअर। मगर कुछ गवर्नमेंट ने इससे फ्रंट एंडेड स्कीम्स हम लोग ने जब से शुरुआत किया, दैट इज़ वेरी यूनिक इन द एंटायर कंट्री। बहुत सारा स्टेट्स में तो वो लोग अभी रिसर्च चल रहा है कि ये आत्मनिर्भर कृषि योजना और बागवानी योजना अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये 2 स्कीम्स के कारण से हमारा CD रेशियो भी अभी काफ़ी बढ़ गया है। अभी धीरे धीरे जो हम लोगों का जो वेस्ट एक प्रॉब्लम था, और यहाँ पे ऑनरेबल मेंबर्स लोग ने भी हमेशा जिक्र करते रहता है कि बैंकिंग जो सेक्टर है वो लोग क्यों आगे नहीं आ रहा है। मगर अभी धीरे धीरे बैंकिंग सेक्टर लोग भी अभी अरुणाचल में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हमारा चीफ सेक्रेटरी काफ़ी मेहनत कर रहा है इस विषय के ऊपर में। हमेशा वो बैंकिंग सेक्टर को बुला के बातचीत करके जो भी डाउट्स होते हैं वो अपना लेवल में सोल्व करते हैं। तो आने वाला दिनों में अभी जो भी स्कीम्स आज हमारा जो बजट स्पीच ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जो बजट स्पीच में जो रिफ्लेक्ट हुआ है, उसको हम लोग पूरा अच्छा से लेके बैंकिंग सेक्टर के साथ में भी करके हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड बागवानी योजना में 2 महीना पहले जब रिव्यू लिया तो सिर्फ 50% ही सक्सेस था। फिर दोबारा मैं एक बार फिर रिव्यू लिया, आई थिंक 1 महीना हो गया, तो उसमें अचीवमेंट देखा कि पूरा 90% पहुंच गया था। दैट मीन्स बैंकिंग सेक्टर आर रिस्पॉन्डिंग। एंड थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं जितने भी जो अरुणाचल में जो बैंकिंग नेटवर्क जो गवर्नमेंट के साथ में जो बिजनेस कर रहा है और गवर्नमेंट का पॉलिसीज़ के साथ में जो काम कर रहा है, उन सारा बैंकों को भी मैं धन्यवाद दूंगा। और साथ साथ और भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर्स इन अरुणाचल प्रदेश वो लोग और भी आगे आके हम लोगों का एंटरप्रेन्योर्स लोगों को मदद करना चाहिए। अभी आज जो यहाँ पे बजट अनाउंसमेंट में बहुत सारा स्कीम्स है, और ऑनरेबल DCM साहब ने लगभग सारा सेक्टर्स को तो टच कर ही दिया। मैं उतना रिपीट नहीं करूँगा उन सारा सेक्टर्स को। अभी जो मेन हम लोगों का जो चैलेंज जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन, बहुत सारा MLAs लोग ने भी कहा कि बजट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। लास्ट 2 साल में जो कोविड के कारण से शायद कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जैसे हमको जो पता है कि लास्ट ईयर हम लोग ने वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का अनाउंसमेंट किया लास्ट ईयर बजट में, जिसमें डबरूजू टाउनशिप के बारे में मेंशन किया, ईटानगर के बारे में मेंशन किया, वेस्ट कामेंग में मेंशन किया। तो ये सब चीज़ बजट अनाउंसमेंट होने का बावजूद भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया। तो इसका भी कारण है, वो कारण भी मैं आप लोगों को बाद में बताएंगे। मगर आवर दिस ईयर्स बजट शुड बी वेरी फोकस्ड। हम लोग पूरा फोकस वे में जितने भी जो हमारा कलीग मिनिस्टर्स है और हमारा जितने भी जो ऑफिसर्स है, आप लोगों का बजट एक्सरसाइज जो है वो तुरंत अप्रैल से ही शुरुआत हो जाना चाहिए। पूरा जितने भी जो मैं तो प्रपोज करूंगा कि आज जो बजट अनाउंसमेंट जो भी हुआ है उसमें हम लोग एक सेक्टरल एम्पावर्ड एक कमेटी भी हम बना देंगे, ताकि स्कीम्स का लगभग सभी स्कीम्स का तो जो गाइडलाइंस हो पहले से उपलब्ध है। जो नया जो घोषणा हुआ है उसका गाइडलाइंस जल्द से जल्द बन जाए, और मॉनिटर जो है वो टाइमली मॉनिटर हो जाए। और हम सबका टारगेट ये होना चाहिए कि बजट जो भी अनाउंसमेंट हुआ है 100% सेचुरेशन हो जाए। अभी नेक्स्ट जो 2023 का जो बजट आएगा उसमें इस साल का जो बजट को पूरा 100% सेचुरेशन में हम लोगों को
ये करना बहुत ज़रूरी है। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी हमेशा वो सेचुरेशन को लेके ही बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, प्राइम मिनिस्टर का जितने भी जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उसको सेचुरेशन मोड में किस प्रकार से लेके आना है, काफ़ी रिव्यू वहाँ से पीएमओ से भी डायरेक्टली मॉनिटर होता है। अभी रिसेंटली ऑनरेबल पीएम का वहाँ से भी मैसेज आया कि अभी स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम में सेचुरेशन के लिए अभी कहाँ तक आप लोग का अचीवमेंट हुआ है और इतना दिनों में आप लोग कितना और सेचुरेशन कर पाएगा। तो इस तरह का हैंड होल्डिंग और मॉनिटरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल और खास करके पीएमओ से बहुत अच्छे प्रकार से हो रहा है। अभी उसी का ही तो देन है। I extend the time till 9 p.m. 9 PM तो उतना तो नहीं बोलूँगा, आप लोग परेशान ना होना। अच्छा, ओके। तो जो लीडरशिप में ऑनरेबल पीएम साहब ने जो पूरे देश भर में जो बदलाव लेके आया है, इसलिए आज देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों का 5 स्टेट में इलेक्शन खत्म हुआ, जिसमें से आउट ऑफ 5 4 स्टेट में तो सॉलिड भारतीय जनता पार्टी को पूरा दोबारा फिर बहुमत मिलके अभी सरकार अब हम लोग बनाने जा रहा है। सबका विकास और सबका विश्वास ये प्राप्त हुआ है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। अभी अरुणाचल कॉन्टेक्स्ट में जो हम हमेशा टीम अरुणाचल जो पुश कर रहा है, इसका ऑनरेबल पीएम साहब ने एक बहुत अच्छा दिशा दिखाया पूरा देश को। और खास करके ऑनरेबल पीएम साहब ने जो नारा जोड़ दिया यहाँ पे, सबका प्रयास। अभी सबका प्रयास जो है अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को अच्छा से हम लोगों को करना चाहिए। तो वही तो टीम अरुणाचल जो मैं पिछले 5-6 साल से जो चिल्ला के बोल के आया हूँ, अभी हम सबका प्रयास करते हुए इस प्रदेश को हम लोगों को और भी आगे लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए मैं ये बताना चाहेगा, आप लोग ने पता नहीं अभी कितना लोग ने गौर से बजट को देखा है, बजट डॉक्यूमेंट्स को देखा है। इस बार का बजट अनाउंसमेंट जो है 1800 करोड़ का है, बजट अनाउंसमेंट। इसके अलावा फाइनेंस प्लानिंग डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी डिपार्टमेंट को भी फंड्स एलोकेट करके रखा हुआ है। अभी उस फंड्स को लेके कंसर्न मिनिस्टर डिपार्टमेंट लोग अपना जो एनुअल ऑपरेटिंग प्लान उसको भी अभी बहुत जल्दी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरा जो मैं आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहेगा, हम सबका कोशिश जो है ये होना चाहिए कि अपना स्टेट ओन रिसोर्सेस को किस प्रकार से हम लोग बढ़ाना चाहिए। हर एक साल में नो डाउट SOR जो है हमेशा बढ़ते ही जा रहा है। तो हम लोगों का ये टारगेट होना चाहिए कि आने वाला कुछ साल में जो आज 10% में जाके अटक गया, उसका हम लोग 20% SOR कैसे लेके पहुंचाना है। तो इसमें अभी DCM साहब ने भी जो कहा कि हम लोगों का यहाँ पे जो बहुत सारा स्कीम्स जो है कभी मतलब ज़रूरत नहीं वाला स्कीम्स भी इस तरह से हो जाता है, या वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट ये मनी जो हो जाता है। तो इसको हम लोगों को कंट्रोल करने के लिए वी ऑल शुड नीड एन पॉलिटिकल विल। जब तक पॉलिटिकल विल नहीं होगा, पब्लिक प्रेशर में चला जाते रहेगा तो फिर एपीसमेंट पॉलिटिक्स आ जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी 5 डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत कर दिया, हम लोग आज 25 डिस्ट्रिक्ट में आ गया, 25 डिस्ट्रिक्ट्स। और भी मैं जहाँ टूर में जाता हूँ वहाँ में फिर डिस्ट्रिक्ट का डिमांड आ जाता है। तो फर्दर क्रिएटिंग डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट इन सोल्यूशन, वो जवाब नहीं होता है। इट इज़ वो उल्टा वो हम लोगों का फिर एक बोझ बन जाता है। तो इस प्रकार से अभी मैं सोचा कि अभी हम सब में जो इतना अच्छा बहुमत है और सब लोग गवर्नमेंट को साथ देता है, तो वी शुड नाउ शो आवर पॉलिटिकल विल ऑल्सो। अभी आज देखिए कि हम लोगों का जो हमारा जो सैलरीज में इस बार का जो BE में 9,600 करोड़ तनख्वाह में जाता है, यानी कि उसका मंथली देखा जाए तो 800 करोड़ पर मंथ सैलरीज में जाता है, सैलरीज और वेजेस में 800 करोड़ एक महीना में सरकारी तनख्वाह और वेजेस वगैरह में जाता है। देखा जाए तो इट्स वेरी ह्यूज।
हमारा पास में गवर्नमेंट का अगर वर्क फोर्स को देखे, रेगुलर जो एम्प्लॉयज़ है, वी हैव अराउंड 68,000 रेगुलर एम्प्लॉयज़। कंटीजेंसी का अगर आंकड़ा देखे तो इट इज़ अराउंड 41,400 एम्प्लॉयज़ कंटीजेंसी का। दोनों को अगर मिला दे तो वी हैव अराउंड 1,09,400 एम्प्लॉयज़। इतना एम्प्लॉयज़ होने का बावजूद भी हम लोग काम जो है ठीक से कर नहीं पा रहा है। तो अभी इस बार का बजट में भी प्रोविजन रखा हुआ है कि ट्रेनिंग में भी अपना जो गवर्नमेंट स्टाफ्स है उसको हम लोग ट्रेनिंग से भी सक्षम करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड दे शुड बी अकाउंटेबल, इंक्लूडिंग वी ऑल, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर। हम लोग तनख्वाह थापा मतलब वी आर सर्वेंट ऑफ द पब्लिक। जो भी तनख्वाह थापता है, चीफ मिनिस्टर से लेके एक कंटीजेंसी तक, मंथली जो तनख्वाह थापता है, हम लोग पब्लिक का सेवक है। वी आर अकाउंटेबल टू आवर ओन पब्लिक। तो हम लोगों का तनख्वाह इसलिए थापता है ताकि आप पब्लिक को सेवा देने के लिए, अपना खुद आराम करके मौज मस्ती करने के लिए सरकार तनख्वाह नहीं देता है। सो नाउ वी शुड इंश्योर कि हमारा जितने भी जो 1,09,400 एम्प्लॉयज़ है, दे एक्चुअली वर्क ऑन ग्राउंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। इसको चलते हुए मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे जितने भी ऑनरेबल एमएलएस हैं कि अपना अपना डिस्ट्रिक्ट में, मैं हमेशा कहते आया हूँ, जब भी आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूंसी विजिट करता है, वहाँ का एचओडीज का साथ में आप लोग रिव्यू मीटिंग लीजिए, स्कीम्स का आप लोग मॉनिटर कीजिए, वहाँ पे लोगों का परेशानी क्या है, प्राइम मिनिस्टर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स वहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपना यहाँ स्टेट का फ्लैगशिप प्रोग्राम्स अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या है। ऑफिसर को अपना डिपार्टमेंट के बारे में पूछिए कि आपका डिपार्टमेंट में क्या क्या एक्टिविटीज चल रहा है वहाँ पे। हमें बिल्कुल विश्वास है, बहुत सारा ऐसा ऑफिसर्स भी है या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी है कि अपना डिपार्टमेंट में क्या क्या फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है उसको भी पता नहीं होता है उन लोगों को। सो अभी ज़माना बदल गया है। अभी देखिए, अभी हम लोग अभी एक मॉडर्न एज की तरफ में जा रहा है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल का ज़माना है, आजकल एजुकेशन का ज़माना है। तो अभी हम लोग का जो अप्रोच भी है वो भी चेंज होना है। जब तक वर्क कल्चर जो अरुणाचल प्रदेश में इम्प्रूव नहीं होगा, हम लोग का स्टेट कैसे आगे बढ़ेगा। अपना जो SOR जो है, स्टेट ओन रिसोर्सेज, वो हम लोग कैसे आगे बढ़ेगा। इतना जो यहाँ पे रिसोर्सेज जो हम लोगों को भगवान ने दे के रखा है, उस रिसोर्सेज को हम लोग रेवेन्यू में कैसे हम लोग जनरेट कर पाएगा। क्योंकि उसको जनरेट करने के लिए तो अभी चीफ मिनिस्टर से लेके पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑल MLAs, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी से लेके पूरा नीचे कंटीजेंसी तक, हम ही लोगों को ऊपर तो बर्डन है कि हम लोग करेगा बोल के तो आगे निकला। तो हम लोगों को करना चाहिए ये काम जो है। हम लोगों को अभी एक पॉलिटिकल विल लेते हुए हम लोगों को अच्छे तरह से अपना ड्यूटीज़ को है ये निभाना बहुत ही ज़रूरी है। ये बात जो मैंने ऑनरेबल स्पीकर साहब इसलिए रखा क्योंकि सैलरीज और वेजेस में इतना पैसा जाना, उसका आउटकम जो है एकदम बहुत ही मिनिमल है, बहुत ही कम है। अगर पूरा बजट साइज का तुलना करें तो वी आर इन्वेस्टिंग अराउंड लगभग 40% ऑफ द बजट टू मेंटेन आवर सेल्फ। चीफ मिनिस्टर से लेके एक कंटीजेंसी को तनख्वाह देने में अराउंड 40% जैसे चला जाता है। और बाकी रह गया जो प्लान और नॉन प्लान का जो भी है, मैक्सिमम जो एग्जीक्यूशन करता है वो है जितने भी जो वर्क्स डिपार्टमेंट है, PWD बोलिए, RWD बोलो, PHE बोलो, WRD बोलो, UD बोलिए, तो ये मेजर चंक ऑफ फंड्स आर बीइंग डेल्ट बाय दोज डिपार्टमेंट। आज यहाँ पे जितने भी जो हर एक डिपार्टमेंट में जो प्लान एलोकेशन हुआ है, बाद में जाकर तो क्योंकि हम लोग अभी कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहा है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली इट शुड गो टू एन वर्क एजेंसी। तो मैक्सिमम पैसा को है ये वर्क एजेंसी लोग हैंडल कर रहा है। तो हमारा जितने भी जो इंजीनियर्स है वो लोग सक्षम होना पड़ेगा, दे शुड रीडेडिकेट देयर सेल्फ। तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, आप लोगों का इन्फॉर्मेशन के लिए आपके माध्यम से इस हाउस को बोलना चाहेगा, मैं बहुत जल्दी अभी अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो वर्क्स डिपार्टमेंट है वहाँ का एग्जीक्यूटिव लेवल का भी एक कॉन्फ्रेंस मैं लेने वाला हूँ। उन लोगों का भी एक ओरिएंटेशन और एक ट्रेनिंग में अभी बहुत जल्दी करने वाला हूँ। और ओवर द ईयर्स मैंने क्लोजली देखा है डिपार्टमेंट को, मैं जब टूर करता हूँ तो वो तो जाहिर से बात है, जब चीफ मिनिस्टर टूर करेंगे तो लोगों का एक चाहत होता है कि उनका जगह डेवलपमेंट हो, और बहुत सारा मेमोरेंडम्स हमको देता है
उस मेमोरेंडम को लेके मैं जब डिपार्टमेंट को बोलता हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पेपर बना के और एक डीपीआर एक बनाने के लिए, जब डीपीआर आता है मैं तो हिल जाता हूँ। इतना हाई एस्टिमेटेड कॉस्ट होता है, इतना हाई होता है। तो मैं पूछता हूँ इंजीनियर को, यार इतना हाई आप लोग बना के, गवर्नमेंट का पास इतना धनराशि कहाँ है जो आप लोग इतना जो बना कर रखा है? तो कुछ तो बोलता नहीं, कोई लोग तो कुछ बोलता नहीं, मुस्कुरा के फिर चला जाता है। फिर कोई बोलता है कि सर अभी हम लोग क्या करें कि अपना जो शेड्यूल ऑफ रेट्स ही ऐसे है अभी। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं आप सबको बताना चाहेगा, अरुणाचल प्रदेश में जो शेड्यूल ऑफ रेट्स, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ऑफ रेट्स APSOR, वो केवल PWD के पास में है। मैंने पिछले 5 साल से उसको मैंने एनहेंस करने में मैंने पूरा बंद करके रखा। नहीं तो पहले आप सब लोग जितने भी यहाँ पे सीनियर्स जो मेंबर्स हैं उन लोगों को पता होगा, हर एक साल जो SOR में 7 या 7.5% ऑटोमेटिक एनहेंस होके पहले जाता था। तो मैंने लास्ट 5 इयर्स को उसको बिल्कुल मना कर दिया कि देयर विल बी नो एनहेंसमेंट। तो भी इतना हाई है। अभी उस जमाने का जो CPWD का जो SOR से PWD लेके बढ़ाते गया। उस जमाने में तो ठीक है, हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं था, डेवलपमेंट काफ़ी मुश्किल था, पूरा हेडलोड सिस्टम था। उस एस्टिमेट उस जमाने में सही था, मगर आज के दिन में जो कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गया, कनेक्टिविटी मेजर कॉस्ट तो कनेक्टिविटी में जाता था, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गया, इंस्टेड ऑफ कॉस्ट गोइंग डाउन एस्टिमेट और भी हाई होके जा रहा है। तो एनीवे मेरा ओर से हम एक कोशिश ज़रूर करेंगे कि अरुणाचल प्रदेश जो शेड्यूल ऑफ रेट SOR, उसको हम लोग फिर दोबारा रिविजिट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश इज़ ए वेरी बिग स्टेट। और यहाँ पे बहुत सारा मेंबर्स लोग ने भी जो कहा कि फुटिल एरिया एक है, एक मिडिल बेल्ट है और एक हाई एल्टीट्यूड एरिया है। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग वन SOR वी शुड हैव 3 काइंड्स ऑफ SOR। लोअर लेवल के लिए अलग SOR, मिडिल लेवल के लिए अलग SOR और हायर लेवल के लिए अलग SOR। तो जाके हम लोगों का बजट में भी सेविंग आएगा, तो जाके एस्टिमेट भी इतना हाई वो सब शूट भी नहीं करेगा। तो इसको हम और भी इंजीनियर्स लोगों का साथ में बात करके इसमें भी एक रिफॉर्म लेके आने का हम पूरा कोशिश हम करेंगे। जो सरकार आपके द्वार कैंप जो शुरुआत जो किया है वो बहुत ही अच्छा एक सक्सेसफुल एक फ्लैगशिप ये प्रोग्राम रहा है। हम लोगों का गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में काफ़ी दूरियां होते जा रहा था, तो मैं सोचा कि सरकार तो पब्लिक के लिए होता है, पब्लिक का सामने होना चाहिए, पब्लिक से बहुत क्लोज होना चाहिए। उसको देखते हुए लास्ट 5 ईयर्स से जो कार्यक्रम जो शुरुआत किया सरकार आपके द्वार, ये बहुत ही सक्सेसफुल एक कैंपेन है। इसके लिए अभी इस बार का बजट एलोकेशन में भी उसको बढ़ा के दिया हुआ है। जितना भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑफिसर्स है वो लोग अपना अपना जुरिडिक्शन में, विलेज में पूरा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का बोलो या डिस्ट्रिक्ट के HODs को लेके वहाँ पे कैंप करके स्कीम्स के बारे में लोगों को जानकारी देता है, उसको बेनिफिट पहुँचाता है। ऑफिस का छोटा मोटा काम भी हो वो लोग गाँव में जाके उन लोगों को डिलीवरी कर देता है। तो इसको हम लोग इनकरेज करते हुए और भी हम लोग आगे लेके हम लोग जाएंगे। और ऑनरेबल स्पीकर साहब आपके माध्यम से भी मैं ऑनरेबल मेंबर्स सभी को रिक्वेस्ट करेंगे कि इस जहाँ जहाँ ये कैंप होता है आप लोग भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के साथ में इस कैंप को ज़रूर भाग लेने के लिए। मैं खास करके ऑनरेबल मेंबर्स को मैं दोबारा फिर धन्यवाद दूंगा। वैसे तो हमने लास्ट ईयर भी धन्यवाद दिया था आप लोग ने, लेकिन आप लोग ने जो बड़कपन दिखाया, जो बड़ा दिल दिखाया, पूरे इस देश में कोई भी स्टेट में आप लोग ने जो बड़कपन दिखाया वो बाकी जगह में हो नहीं पाया। कोविड का दौरान नंबर 1 तो ये हो गया कि हम लोगों का जो कोविड का जो ये हॉस्पिटल है अभी जो एक्चुअली तो अपना MLA अपार्टमेंट था, एकदम नया ब्रांड न्यू बन के रेडी था, मगर कोविड के चलते सब लोग ने ये निर्णय ले लिया। सरकार ने जो सोचा है आप लोग ने पूरा साथ देते हुए उस MLA को अपार्टमेंट को हम लोग ने डेडिकेटेड हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें से 1500 पेशेंट्स ट्रीटमेंट ठीक होके वहाँ से निकल गया। और फिर हम लोग सरकार ने फिर एक प्रस्ताव रखा था कि उस MLA अपार्टमेंट जो अभी टेम्पोररी डेडिकेटेड हॉस्पिटल जो चल रहा है उसको हम लोग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कन्वर्ट ही कर देते हैं। तो उसको भी आप लोग ने इतना अच्छे से ऑनर किया, तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे।
अभी उस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 4 सेपरेट सेंटर्स होगा, जिसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ऑप्थेमोलॉजी, टर्शरी हेल्थ केयर, टर्शरी कैंसर केयर एंड स्पोर्ट्स एंड मेडिसिन एंड फिजिकल रिहेबिलिटेशन। तो ये 4 सेपरेट सेंटर्स में उस एरिया को हम लोग फर्दर फिर हम लोग अभी डेवलपमेंट करने जा रहा है। नहीं तो बाकी आज के इस बजट सेशन डिस्कशन में नहीं तो कोई ना कोई एमएलए ज़रूर ये बोलता कि अभी उस एमएलए नया अपार्टमेंट को तो हम लोग ने हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया। सरकार का क्या अभी अप्रोच है कि हम लोगों को एमएलए को बैठाने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एमएलए लोग अभी भी रेंटेड में बैठ रहा है, लेकिन आज तक नहीं कोई एमएलए हमको आके प्रश्न किया कि आप एमएलए का ये रेजिडेंस के लिए आप क्या कर रहा है। ये प्रश्न आज तक नॉट एट माई पर्सनल लेवल ऑल्सो, और इस अगस्त हाउस में भी कोई भी इस एमएलए कोई भी मेंबर्स यहाँ पे नहीं उठाया। दैट शोर्स कि आपका बड़कपन, आपका अपना इंडिविजुअल कंफर्ट से ज़्यादा स्टेट का इंटरेस्ट। ऑनरेबल स्पीकर साहब, आई वंस अगेन थैंक्स ऑल द मेंबर्स फॉर देयर बिग हार्टेडनेस। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम लोग अभी और भी बहुत ही एक फोकस वे में अभी हम लोगों को काम करना बहुत ज़रूरी है। ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स 2016 से जो अचीवमेंट, चाहे वो गोल्ड मेडल हो या सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल, ऑलरेडी ऑनरेबल गवर्नर साहब का स्पीच में भी वहाँ पे नंबर्स भी मेंशन था। नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इवेंट्स में काफ़ी अभी अचीवमेंट्स हम लोगों को हो रहा है। तो इस बार का बजट में भी अभी जो भी स्टेडियम्स में हो गया, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी अपलिफ्ट करने के लिए, फैसिलिटी और बढ़ाने के लिए हम लोग ने यहाँ पे हम लोग ने पूरा कोशिश यहाँ पे किया है। और अपना खास करके जितने भी जो कंटिजेंट जो लेबर है उनका 2 स्कीम्स जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो स्कीम चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर्स जीवन ज्योति बीमा और प्राइम मिनिस्टर्स सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों को भी अभी गवर्नमेंट जो है उनका जो प्रीमियम जो है वो गवर्नमेंट हम लोग भरपाई करेंगे, जिससे हम लोगों का 41,400 कंटिजेंसी लेवल को पूरा बेनिफिट मिलेगा। और अपना इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट को और भी बढ़ाने के लिए वी हैव अप्रूव्ड वन अथॉरिटी, अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी, जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग में उसका अंतर्गत होगा। तो ये अथॉरिटी का अंतर्गत में हम लोग और भी ऑफ बजट बोरोइंग भी लेके अरुणाचल में सरकार की ओर से और भी हम लोग इन्वेस्टमेंट हम करना चाहिए। इस प्रकार का मॉडल बहुत सारा स्टेट ने भी एडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों का बजट जो है वो लिमिटेड होता है और हम लोगों का डिमांड इतना हाई होता है कि हम लोग भी परेशान हो जाता है कि हम भी चाहते हैं कि सारा कॉन्स्टिट्यूंसी को मदद करे, सभी एमएलएस का जो प्रॉब्लम्स है उसको भी एड्रेस करे, मगर अपना जो फंडिंग जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड होने का कारण से हम लोग ज़्यादा मदद नहीं कर पाता है। तो इस साल से हम लोग ये जो अथॉरिटी जो बनाया, अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस अथॉरिटी, उसका माध्यम से भी हम लोग इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इसका माध्यम से भी हम लोग अभी करना अभी हम लोग जा रहा है। कनेक्टिविटी को मैंने बताया, विलेज कनेक्टिविटी के बारे में। अभी मेजर कनेक्टिविटी में ऑलरेडी साहब ने भी अभी टेस्ट किया है। खास करके हमारा जो सेला टनल में 2 टनल बन रहा है, निचपू में 1 टनल, कुल मिला के 3 टनल इसी साल कंप्लीट होगा। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के आशीर्वाद के कारण से अरुणाचल प्रदेश में जितने भी जो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वो आप सबको पता है पूरा बन के तैयार है। और 2 लोकेशंस में फ्लाइट सर्विस भी ऑलरेडी शुरू हो गया है, तेजू और पासीघाट में। अभी इस साल क्योंकि गोल्डन जुबली ईयर है, इट विल बी हिस्टोरिक। हमने इनिशियली रिमार्क्स में कहा था द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, द फुल फ्लेजेड एयरपोर्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश विल स्टार्ट ऑपरेशन इन दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही एक गर्व का बात है। और सरकार के ओर से इस गोल्डन जुबली पूरे साल में हम लोग ने ये तय किया कि 365 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को, क्योंकि साल में 365 डेज होता है, दिस इज एन गोल्डन जुबली ईयर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसीलिए 365 प्रोजेक्ट्स को भी हम लोग इसी साल हम लोग उद्घाटन करके पब्लिक को डेडिकेट करना हम लोग ने शुरुआत ऑलरेडी कर दिया है। हमारा ईटानगर जो है हम सबका राजधानी है। ईटानगर जो है हम लोगों का बहुत डेवलप होना है, यहाँ पे फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। इसलिए सरकार अभी काफ़ी फोकस वे में हम लोग यहाँ पे कनेक्टिविटी सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है।
सिंकी जो रिवर में वहाँ पे ब्रिज का ऑलरेडी हम लोग ने अप्रूव कर दिया है, जो फ्रॉम बोरुम ब्रिज पॉइंट टू नाहरलगन हेलीपैड। इसका साथ साथ रोड फ्रॉम NH 415 नियर रेलवे ब्रिज लेखी टू बोरम ब्रिज and construction of 2-lane road from NH 415 at Chimpu to NH 415 at Papunala via Julang is also approved. इसको भी हम लोग अभी ये बना के देंगे। कुल मिला के अभी हमारा जो खास करके आप सबको पता है कि पिछले 2 साल में लास्ट 2 इयर्स में हमने एक नया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरुआत किया था रोड कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए, चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान, वो 2024 तक का हमने प्लान लिया हुआ है। और उसका अंतर्गत अगर ईटानगर का बात किया जाए तो यहाँ पे जो ट्विन कैपिटल ईटानगर नाहरलगन में कुल मिला के जो सेक्टोरल रोड्स है 330 किलोमीटर्स है, ऑफ विच वी हैव ऑलरेडी टेकन अपग्रेडेशन ऑफ 260 किलोमीटर्स। लास्ट 2 इयर्स में हम लोग ने 260 किलोमीटर्स का काम ऑलरेडी शुरुआत कर दिया है। और इस बार हम लोग ने तय किया है कि 60 किलोमीटर जो बच गया है उसको भी हम लोग इस साल हम लोग ने टेकअप करने का ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया। और बजट प्रोविजन में हम लोग 80 करोड़ इस साल हम लोग और देंगे ईटानगर नाहरलगन का रोड। तो हमने टारगेट किया है कि बाय 2024 ईटानगर नाहरलगन का जितने भी जो सेक्टोरल जो रोड्स है उसको हम लोग अच्छा रोड बना के पब्लिक को हम लोग डेडिकेट करेंगे। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी आने वाला दिनों में, क्योंकि ईटानगर जो है हम लोग का कैपिटल है और बाहर से जितने भी जो डिग्निटरीज भी सीधा यहीं आता है, बाहर से विजिटर्स लोग भी यहीं आता है, तो ईटानगर जो है इट शुड बी वन ऑफ द फाइनेस्ट कैपिटल ऑफ द कंट्री। ऑलरेडी स्मार्ट सिटीज़ का भी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल रहा है। तो इसको अच्छा से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट करके जो ईटानगर नाहरलगन का फेस लिफ्ट जो कर पाएगा, इसको भी मैंने सोच रखा है कि इसको हम लोग बाई अप्रैल एंड इसको हम रेकमेंड करके कॉन्स्टिट्यूट कर लेगा, ताकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट होता है ईटानगर नाहरलगन में, क्योंकि यहाँ में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट यहीं से रन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं, बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे बहुत है, तो सरकार की ओर से भी इन्वेस्टमेंट बहुत चीज़ होता है यहाँ पे, मगर वो थोड़ा सा प्लान वे में नहीं होने का कारण से हम लोग को दिख नहीं रहा है वो सब चीज़। स्मार्ट सिटीज़ का भी काम चल रहा है मगर दिख नहीं रहा है, गवर्नमेंट इतना इन्वेस्टमेंट कर रहा है मगर दिख नहीं रहा है वो चीज़ को। तो इसको एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में लेके हम लोग किस प्रकार से आगे लेके जाए, तो इस बार से हम ज़रूर हम ये कोशिश यहाँ पे कर रहा है। और बाकी अभी बताने के लिए तो बहुत सारा चीज़ है, मगर इसमें हम ज़्यादा डिटेल में हम और नहीं जाएंगे। और अभी ऑनरेबल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल मेंबर ऑफ द हाउस श्री नवम तुकी जी ने एक बहुत कंसर्न एक बात यहाँ पे अपना डिस्कशन में यहाँ रखा था कि आपने शायद सोशल मीडिया में जो एक आंगनवाड़ी का जो एक मिड डे मील, एजुकेशन डिपार्टमेंट का मिड डे मील के बारे में आपने जिक्र किया कि सोशल मीडिया में उस क्वालिटी के बारे में चर्चा चल रहा था बोल के आपने यहाँ प्रश्न पूछा था। तो मैंने तुरंत डिपार्टमेंट को कहा कि इस विषय के ऊपर में थोड़ा सा हमको अपडेट किया जाए ताकि हाउस को मैं बता पाएगा। तो यहाँ में जो लिखित में जो आया है, यहाँ लिखा है कि देयर वाज ए सोशल मीडिया न्यूज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ राइस। टुडे DDSC विजिटेड अपर प्राइमरी स्कूल D सेक्टर नाहरलगन। They interacted with the headmistress of the school and rice distributor and also checked the quality of rice and also cooked the same rice in the school. There was no issue of quality as the rice is fortified, therefore its cooking is little different. The same girl जो मतलब सोशल मीडिया में शायद जिन्होंने डाला था शायद वो एक बच्ची थी, the same girl later posted another message in social media that she has no problem. तो ऑलरेडी इस प्रॉब्लम शायद वो फोर्टिफाइड राइस था, तो एक कुकिंग पैटर्न थोड़ा सा अलग होता होगा, उसके कारण से वो शायद सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा था और बताया था, लेकिन सोशल मीडिया में फिर दोबारा क्लियर भी कर दिया कि प्रॉब्लम नहीं है बोल के।
तो ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से मैं जितने भी मेंबर्स जो है उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का अगर करप्ट प्रैक्टिस कहीं भी होता है तो ज़रूर सरकार का इंफॉर्मेशन में देना चाहिए। कंसर्न मिनिस्टर को इमीडिएटली आप लोग फ़ोन करके बताना चाहिए और कंसर्न मिनिस्टर भी उसमें तुरंत एक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो गंदगी जो है, जो करप्ट प्रैक्टिस, उसको हम लोगों को सोसाइटी से निकालना होगा। अभी आज देखिए, कभी कभी यूथ लोगों को साथ में मैं इंटरेक्शन करता हूँ, यूथ लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट भी हो जाता है, क्योंकि हम लोग चीज़ को अगर सही ढंग से, सही नीयत से उसको एड्रेस नहीं करेगा, बिकॉज द यूथ आर द फ्यूचर। उन लोगों को स्टेट को सही डायरेक्शन में लेके जाने के लिए तो वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। तो जो भी सोसाइटी में या डिपार्टमेंट्स में जो भी खराब प्रैक्टिस होता है उसको तुरंत सरकार का नॉलेज में लेके आइए, हम ज़रूर एक्शन लेगा। मैं जितने भी मेंबर से आपको एश्योर देता हूँ और अरुणाचल प्रदेश का जितने भी जनता है उसको भी थ्रू यू ऑनरेबल स्पीकर सर मैं एश्योरेंस देता हूँ कि करप्ट प्रैक्टिस को हम बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। अभी तक भी मैंने करप्ट प्रैक्टिस को टॉलरेट नहीं किया। शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम SIC बोलिए या SIT बोलिए, पिछले 6 साल में वो एक्टिव हुआ है। उससे पहले तो अरेस्ट का तो कोई नाम ही नहीं था, लेकिन लास्ट 5-6 ईयर्स में आप लोग देख सकते हैं कि SIC ने कितने लोगों को अरेस्ट किया हुआ है और SIT ने क्या काम किया हुआ है। अभी करप्शन एक ऐसा चीज़ है कि इसको हम लोग जड़ से ही उखाड़ के फेंकना होगा, अदरवाइज सोसाइटी करप्ट होते जाता है, लोगों का सोच करप्ट होके जाता है, लीडर्स का सोच करप्ट होता है, ऑफिसर्स का सोच करप्ट होता है। तो इससे हम लोग क्या भविष्य में कैसे जाएंगे हम लोग? तो ये जो करप्शन जहाँ तक होता है उसको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है हम लोग बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। ये कहते हुए मैं और एक चीज़ क्लैरिफाई भी करना चाहेगा। इस डिस्कशन में एक ऑनरेबल मेंबर ने भी यहाँ पे, काफ़ी ऑनरेबल मेंबर ने भी कुछ जिक्र किया कि MLAs को फंडिंग पैटर्न और गवर्नमेंट जो फंडिंग पैटर्न किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, ट्रेनिंग जो होता है, मैं थोड़ी देर पहले अपना सरकारी कर्मचारी का ट्रेनिंग के लिए भी मैंने बात किया है, उसी प्रकार से अपना जितने भी जो मेंबर्स का भी एक ओरिएंटेशन एक या 2 दिन का आपको रखना चाहिए, हमको ये लग रहा है। क्योंकि एज एन रोल ऑफ एन MLA क्या होना चाहिए वो भी उन लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। MLA है, सरकार में नहीं है, लेकिन मेंबर है, लेकिन अपना बिजनेस कंडक्ट सरकार का किस प्रकार से होता है उसको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज कुछ MLA सोचता है कि हम लोगों को नॉन प्लान चाहिए, हम लोगों को ये फंड चाहिए, हम लोगों को वो फंड चाहिए, और पहले कुछ दिया तो इस बार क्यों नहीं है, या इस बार क्या हो गया, या इस बार क्या नहीं है, वहाँ में फंड मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमको बताए बिना कैसे फंड पहुँच गया। तो ये सब एक चाहत है जानने का, वो अच्छा बात है, मगर MLAs का एक्चुअली रोल तो प्रॉब्लम्स को बताना ये है, सरकार का होता है, मिनिस्ट्री को आके अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का, डिस्ट्रिक्ट का प्रॉब्लम्स को बताना ये बहुत ज़रूरी है, ये बताना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे फंडिंग करता है वो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है। MLAs को वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव है, जितना हो सके MLAs का कंसर्न को भी हम लोग एड्रेस की कोशिश करता है। इसका बावजूद भी जो डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर्स लोग जो टूर में जाता है, या DCM जाता है, या CM जाता है, तो वहाँ का जनता भी, मैंने थोड़ी देर पहले जो कहा कि इतना मेमोरेंडम भी वो लोग को देते हैं, उस चीज़ को भी हम लोग को एड्रेस करना पड़ता है। लेकिन एज एन MLA, अगर हम एक MLA होता, हमारा नॉलेज के बिना अगर मेरा वहाँ में कुछ काम आता, तो मैं तो बहुत खुश होता कि सरकार को बोले बिना आपने यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट, मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिया। और एज एन MLA हमारा ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो स्कीम जो नीट एंड क्लीन और सही तरीका से अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में इम्प्लीमेंट हो, ये रोल होना चाहिए MLA का। तो आई थिंक ऑनरेबल स्पीकर साहब, एक बार फिर आप ओरिएंटेशन का भी एक ये रखना एक ज़रूरी है, ताकि क्योंकि ये बजट डिस्कशन होता है और ये आपके माध्यम से आपने इतना इनिशिएटिव लिया कि आज सोशल मीडिया में इसका लाइव चल रहा है, हम लोग का दूरदर्शन अरुण प्रभा में इसका लाइव चल रहा है, वो चर्चा भी सही चर्चा होना चाहिए। हम लोग का चर्चा के कारण से लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं होना चाहिए। तो माननीय स्पीकर साहब, मैं इतना कहते हुए आज जितने भी जो ऑनरेबल मेंबर्स ने इस बजट को विदाउट डिस्कशन, जो हिस्टोरिक बजट, गोल्डन जुबली बजट को
एक बार फिर विदाउट डिस्कशन जो पास कर दिया उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी ऑब्जर्वेशंस आप लोग ने जो कहा है उसको हम लोग डिपार्टमेंट प्लानिंग एंड फाइनेंस ने नोट डाउन कर लिया। और आने वाला दिनों में मैं अपना ऑनरेबल मिनिस्टर कलीग्स लोगों को भी मैंने कहा कि बाय अप्रैल हम लोगों का काम जो है वो शुरुआत हो जाना चाहिए। हम लोग का पूरा 100% सेचुरेशन मोड में जाना चाहिए। तो इसका मॉनिटर जो है मॉनिटरिंग भी हम बार बार हम करते रहेंगे। तो इसके साथ मैं अपना स्पीच को यहीं समाप्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देते हुए। थैंक यू। जय हिंद। Now we have come to the end of the last item, the private member resolution. The House will take up private member resolution moved by Sri Muchumiti on old pension scheme. धन्यवाद अध्यक्ष जी। स्वाभाविक है कि बजट सेशन के अंतिम चरण पे हम हमारे पेंशन की बात करें, क्योंकि रिटायरमेंट के अंतिम चरण पर ही शुरू होता है पेंशन के बारे। तो मैं आज जो विषय लेके आया हूँ, जो प्रस्ताव लेके आया हूँ, ये है कि पुराना पेंशन स्कीम को वापस लाए, उसको बहाल करें और जो एग्जिस्टिंग नेशनल पेंशन स्कीम्स या न्यू पेंशन स्कीम जो चल रहा है उनको बदल कर। अध्यक्ष जी, इसके ऊपर विवेचना करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ कि पेंशन्स के अर्थ क्या होता है। हर कोई समझता है कि पेंशन्स क्या होता है, कि जब आप बहुत सालों के बाद जो सर्विस देंगे सरकार को या कोई भी प्राइवेट कंपनीज को भी, उसका जो खून और पसीना आपने जो लगाया है उनके लिए बाद में रिटायरमेंट के बाद सर्विस आपको सरकार देंगे या प्राइवेट कंपनीज देंगे कि आपके घर कैसे चले। पेंशन्स के मुख्य उद्देश्य और निर्देश ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आप एक डिग्निफाइड लाइफ जिए, कि आप केवल सांस ना ले पर जीने भी सके। और ये एक बैसाखी की तरह काम करता है पेंशन। आज हमारे सरकार में दो तरह की पेंशन चल रहा है, टू पैरेलल सिस्टम चल रहा है पेंशन एक सरकार के अंतर्गत, एक ओल्ड पेंशन स्कीम और दूसरी एक न्यू पेंशन स्कीम। ऐसे लगा कि एक लकीर ताना गया है और कहा गया है कि आप दाएं जाओ और आप एक बाएं जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी चल रहा है, इसका एक्चुअल मूल्य में अर्थ में ये पेंशन्स नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। आपके पैसा सरकार के पैसा मिला के एक इन्वेस्टमेंट में जाता है और जिसके ज़रिए इंटरेस्ट जो आपके सूद समेत जो पैसा मिलता है वो इसको पेंशन डिफाइन नहीं कर सकता है। इसका परिभाषा पेंशन नहीं होना चाहिए। पर इस पर आने से पहले मैं इस सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ हमारे नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में। इसके थोड़ी सी मैं इसके ऊपर पृष्ठभूमि में जाने चाहता हूँ। अध्यक्ष जी, नेशनल पेंशन स्कीम्स को सन 2004 पर केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को के लिए लागू करवाया। ठीक 1 जनवरी 2008 पर हमारे राज्य सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम्स को हमारे यहाँ हमारे सरकारी कर्मचारियों के ऊपर लागू करवाया। पर यह भी है कि ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। केंद्र पर लागू हुआ तो यहाँ पर लागू हुआ, क्योंकि ये कानून नहीं है। कानून केवल हमारे जो PFRD है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वही एक कानूनी तहत से लाया गया है जिसके ज़रिए पेंशन का जो पैसा है उसको रेगुलेट करे। तो ये संवैधानिक तरीक़ा से, कानूनी तरीक़ा से ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि हम राज्य पे भी इसको लागू करें। आज जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिक्र किया, 70,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है अरुणाचल पर। आज 70,000 के अंदर
लगभग 25,000 एम्प्लॉइज़ एनपीएस के अंतर्गत में आता है। माने दो तरफा की विभाजन हो गया है। आज जब से एनपीएस लागू हुआ 2008 से अरुणाचल पर, आज 14 साल बीत चुका है। आज 14 साल के बाद मैं आपके इसके एक्सपेक्टेशंस और इसके हकीकत के बारे में आपको सामने कुछ पेश करने चाहता हूँ। हकीकत, एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी का बहुत बड़ा फासला निकला। मैं इसको एक अलग तरीक़ा से उदाहरण से आपके सामने पेश करने चाहता हूँ। मेरे ही क्षेत्र के आजू बाजू पर एक किसान थे। उस किसान ने सोचा कि वो ऑरेंज कल्टीवेशन करेंगे ताकि कड़ी मेहनत और इसके कल्टीवेशन के बाद कुछ सालों के बाद रेगुलर इनकम मिलेंगे, उनके परिवार का आमदनी आएंगे। तो उन्होंने बहुत मेहनत किया, बीज बोया है ऑरेंज का, 7-8 साल खून पसीना लगाया। 8 साल के बाद उन्होंने देखा कि उनके जब वो पैदावार निकलना शुरू हुआ, जब फल निकलना शुरू हुआ, वो तो ऑरेंज नहीं थे, वो खट्टा नींबू निकल के आया। तो हमारे जो एनपीएस है, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन सिस्टम जो है, वो भी इस तरह ही है। एक्सपेक्टेशंस अलग था, हकीकत लेकिन अलग तरह से निकला। तो मैं इसके बारे थोड़ी सी विस्तार से यहाँ मैं बताने चाहता हूँ। आई विल ट्राई टू बी एज कंसाइज एंड प्रिसाइज एज मच एज इज पॉसिबल। हर कोई को पता है कि पुराना पेंशन स्कीम में जीपीएफ होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड, जहाँ पे जो सरकारी मुलाजिम है वो अपना जितने भी मिनिमम एक परसेंटेज होता है, शायद 6%, और वो जो भी ऊपर तक जितने भी वो सेविंग्स कर सके वो जीपीएफ के सेविंग्स से वो लगवाए। उसके बाद ठीक रिटायरमेंट के समय में उसको वो जीपीएफ फंड्स प्लस ग्रेच्युटी प्लस सूद समेत इंटरेस्ट ब्याज के साथ वो पैसा तो मिलता ही है, लेकिन रिटायरमेंट के समय में उस समय में जो वो लास्ट पे या लास्ट बेसिक जो पे होता था उनका, वो उसका 50% उसको मिलता ही रहता था इंटरेस्ट के साथ प्लस डीए। डीए का मतलब ये है कि जो महंगाई बढ़ते रहता है हर साल, जो चलते रहता है, 1% परसेंटेज में कैलकुलेशन है, इसको डीएनएस रिलीफ का हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर का 50% और डीए मिला के उनको हर साल मिलते रहता है। और अगर उनका निधन हुआ, उनके परिवार का एक फैमिली पेंशन स्कीम भी है। तो ये हमारे सरकारी कर्मचारियों को बहुत अच्छी तरीक़ा से सहयोग करता है। जहाँ पर नए पेंशन स्कीम्स पर फिलहाल का अभी का परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति पर एम्प्लॉइज़ जो होता है वो 10% अपने जो सैलरी से वो बियर करेंगे, सरकार 10% अपना लगाएंगे। मैंने सुना है कि ये 10% को भी 14% कर रहा है फिलहाल, फिर भी 10% और 10% है, तो ये 20% को लेकर सरकार जमा करेंगे। एक हमारे पीएफआरडीए जो प्रोविडेंट फंड रेगुलेटरी बॉडी है उस पर जमा करेंगे और वहाँ पर निवेश करेंगे, शेयर मार्केट पे या कहाँ पर भी, इक्विटी में या कहाँ पर बॉन्ड्स में, वहाँ पर निवेश करेंगे। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों का पैसा, कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा है, ये निवेश है, इन्वेस्टमेंट्स है। अब एक बात है अध्यक्ष जी, मुझे इतना शेयर मार्केट के बारे में इतना जानकारी तो नहीं है, पर इतना सूझबूझ तो मेरा है कि एक अफवाह से भी 20,000 करोड़ शेयर मार्केट में गायब हो जाता है। कहाँ पे युद्ध हो जाता है, कौन सा देश पे युद्ध हो जाता है, सेंसेक्स गिर जाता है, तो ठीक है, बट आई वुडंट रियली सिग्निफाई शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट एज अ रियली बेसिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जहाँ वेरी टेंजेबल है, डिटरमाइंड सिस्टम है। हमारे पुराना पेंशन स्कीम्स एक डिफाइंड डिटरमाइंड निर्धारित पेंशन सिस्टम था कि ये पैसा आपको मिलेगा, आपके रिटायरमेंट में जीपीएफ ग्रेच्युटी मिलेगा, प्लस आपके हर बार 50% बेसिक मिलेगा, और आपके परिवार का कुछ हुआ तो सडनली उनको भी एक रेशियो में एक पैसा उनको मिलेंगे। यहाँ पर इतना एनपीएस पर इतना खास सुविधा भी नहीं है। आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा सुनता होगा पे कमीशन, 6 पे कमीशन, 7 पे कमीशन, आने वाला 8 पे कमीशन। जो रिटायर्ड हो गया ओपीएस के सिस्टम में, उनको भी जब हर 10 साल में पे कमीशन बढ़ता है
वो जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उनको भी मिलता है एज पर दैट इंक्रीज, जो वृद्धि है उनको भी मिलता है, ताकि वो उस समय वर्तमान स्थिति का, उस समय का परिस्थिति को वो जूझ सके। वहाँ में जो महंगाई भी वहाँ पे जो होता है उस समय के लिए। अभी एनपीएस में कहा जाता है कि 8% या 10% आपको आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है उनको हर महीना पे मिलेंगे। यहाँ पर एनपीएस में सिस्टम ये है कि आपके जो सेविंग्स है 10% आपके सरकार के 10%, वो दोनों मिला के आपके रिटायरमेंट के समय में आपको केवल 60% ही पैसा निकलवा सकेंगे। बाकी मिनिमम 40% आपको मार्केट में निवेश करना पड़ेंगे ही, और वो निवेश के आधारित आपको मंथली इनकम मिलेंगे, हर सैलरी के रूप में, ऐसे पेंशन के रूप में हर बार मिलेंगे ना। अभी ये मुझे नहीं लगता है कि ये एक्चुअल पेंशन सिस्टम है, एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम है। ठीक है, बढ़िया है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कर्मचारी ये नेशनल पेंशन स्कीम के आधारित खुश है। और एक बात, बहुत सारे कर्मचारी 20 साल के बाद वीआरएस ले लेते हैं, वीआरएस ले लेके एक उनको जो जीपीएफ मिलेंगे वगैरह, उसके बाद पेंशन भी मिलता है। यहाँ पर आपके ना वीआरएस का ना रिटायरमेंट का कुछ ये नहीं है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है, आपने जो जमा किया है आपको बस वही मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन और दुर्भावना इसका सबसे बड़ा ये है कि हमारे देखिए अरुणाचल पे बहुत सारे कर्मचारी हैं, a lot of employees are there who are not regular till now। 20 साल काम करते हैं, 25 years काम करते हैं, अंतिम 4-5 साल में रेगुलराइजेशन होते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिस्टम में उनका क्या बेनिफिट होगा? 2-3 लाख ही जमा होगा, 2-3 लाख वापस मिल जाएगा। आपको पता है छोटा मोटा कर्मचारी तो होता है, ड्राइवर्स, एमटीएस, चपरासी, आपके नर्सेस, आंगनवाड़ी, 30 साल 40 साल काम करने के बाद भी घर नहीं बना सकता है। और ये पेंशन सिस्टम में तो मुझे पता नहीं उनको कैसे उनके सुविधा मिलेंगे, उनके परिवार को कैसे सुविधा मिलेंगे। एनपीएस में तो और एक बहुत ही अजीब सा या जो स्ट्रक्चर बनाया है। एनपीएस में अगर आपने 60 ईयर्स जो रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट से पहले अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो वो जो इन्वेस्टमेंट होता था ना, जो एन्युइटी बोलता है इन्वेस्टमेंट, 80% आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाएंगे, 20% ही रिटायरमेंट के समय या नौकरी छोड़ने के। ये विडम्बना, ये जो एनपीएस का इश्यूज है, मैं समझ में नहीं पा रहा हूँ कि ये किस तरह का या क्यों केंद्र सरकार ने इसको लागू किया या हमारे राज्य सरकार ने। अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब इसको लागू किया केंद्र सरकार में भी या राज्य सरकार में भी जब लागू किया, यहाँ के हमारा सरकारी जो कर्मचारी की संस्था है, किसी ने लोगों ने तो चिल्लाया तो नहीं, हाहाकार क्यों नहीं मचाया? क्योंकि ये पेंशन सिस्टम उसी को लागू था जो भविष्य में अपॉइंट होना था, नियुक्त होना था। तो जो लोग सरकारी कर्मचारी था उन लोग तो ओपीएस में था, तो उनको तो हल्ला करना ज़रूरी नहीं, जो भविष्य में नियुक्त होगा उन्हीं को इसमें एनपीएस में अंतर्गत में आते थे। तो इसलिए ना हाहाकारी ना कुछ हल्ला चल्ला मशवरा चला, सीधी सी लागू हो गया। आज 14 साल के बाद इसके परिणाम हमें दिखाई पड़ता है। अभी हमारे सरकार कहेंगे, मैं भी समझ पाता हूँ सरकार की समस्या, फिस्कल समस्या, इसका आपके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे। थोड़ी सी पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने जिक्र किया है कि 9,000 करोड़ सैलरीज पे जाता है। मेरे ख्याल से दिस इज़ इंक्लूसिव ऑफ सेंट्रल वाला जो सीएसएस का स्कीम का जो पे होता है, एनएचएम होता है या अगर समग्र होता है, शायद उसको मिला करके होता है। मेरा अनुमान में था कि 5 से 1,000 करोड़ हमारे सैलरी में हमारे खर्चा होता है एनुअली, और शायद 1,000 करोड़ हमारे पेंशन में खर्चा होता है। तो हमारे आमदनी जो है, इनकम है वर्सेस आर एक्सपेंडिचर, मैं समझ पाता हूँ ये बहुत सारी इसमें डिफरेंसेस बहुत सारी है। लेकिन हम लोगों ने देखा है, हमारे बहुत ही अनुभवी वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री पिछले 5-6 सालों में क्या
कैसे किस तरह से हमारा फाइनेंशियल्स बढ़ा है, हमारा रेवेन्यूज बढ़ा है। 6-7 साल पहले ऐसे था कि टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारा 600-700 करोड़ था। इस बीई में हम अपेक्षा कर रहा है कि 3000 करोड़, 2000 करोड़ फ्रॉम टैक्स। अगर इस पर हमारे लोअर सुबसिडी प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड होंगे, अगर नहीं है तो शायद उससे भी बड़ा हमारे टैक्स रिटर्न्स, टैक्स रेवेन्यूज आएंगे। तो ज़रूर हमारा टैक्स रेवेन्यूज इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स तो सही नहीं है, पर फिर भी इसका बहुत तेज़ गति से इसका वृद्धि हो रहा है। टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये हमारा जो डिविजिबल पूल से हमारा पैसा आता है, ये भी तो हमारा इनकम है। ये हमारा हिस्सेदारी है, स्टेट की हिस्सेदारी का, ये यूनियन में जो है हमें इस हिस्सेदारी की वजह से तो हम ये हमारे डिविजिबल पूल से जो हम मिल रहे हैं पैसा। यहाँ आज हमारे जो इस पर लिखा हुआ है बी पे एक्सपेक्टेशन है कि 14,000 करोड़, और दैट इज ऑल्सो आवर इनकम। 14,000 करोड़ आप कह सकता है कि ये ग्रांट से हमारे फाइनेंस कमीशन से, पर ये हमारे इनकम है बिकॉज हमारे पर्यावरण से हमारे जो भी हम योगदान कर रहे हैं हमारे देश के ऊपर, तो इसी का तरीका से तो हमारा पैसा मिल रहा है। और इसको अगर हम अगर इसको भी मिलाए, 3,000 करोड़ भी मिलाए, 70,000 करोड़ होंगे हमारे जो स्टेट प्लान्स का जो हम चलाते हैं, सेंट्रल का नहीं, सीएसएस का नहीं, स्टेट प्लान्स का। तो ये सब मिला के ज़रूर ये पैसा कम है, लेकिन हमारे जैसे स्टेट्स के लिए ये पैसा बहुत बड़ी रकम होता है। केंद्र सरकार का अपने नीति तो है, स्कीम्स है, बहुत सारे स्कीम्स जो चलते रहता है। आपका जो पेंशन स्कीम्स पर बात करें क्योंकि समय कम है। Yes, sir, I'm trying to imply the financial implications because I understand that the government will give the argument of the financial implications. So this is the reason why I have been asking कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम्स है, इसका एक संकेत है कि ये हमारे सरकारी कर्मचारियों के लिए क्यों ठीक नहीं है। जितने भी अभी धीरे धीरे हमारे सरकारी कर्मचारियों को पता चल रहा है कि ये नेशनल पेंशन स्कीम्स ठीक नहीं है, आवाज़ उठा रहा है कि हमें पुराना पेंशन स्कीम्स के पास वापस जाना है। लेकिन आप कभी नहीं सुनेंगे जो पुराना पेंशन स्कीम पर लागू है वो कभी नहीं कहेंगे हम नए पेंशन स्कीम पर आना है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, अंडरस्टैंडिंग द फिस्कल इम्प्लीकेशंस ऑल्सो। सर, क्योंकि बहुत बीत चुका है, सब लोग थक चुका है, मैं आज इसके बारे ज़्यादा विस्तार में भी जाने नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे एक सरकार से दरख्वास्त है कि हो सके अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन, अगर हो सके तो हमारे जो पुराना पेंशन स्कीम्स जो है उसको फिर वापस लाइए हमारे राज्य पे, क्योंकि यहाँ पे संवैधानिक कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है वापस जाने के लिए। इसका कंक्लूशन में मैं यही कहना चाहता कि ये जो नेशनल पेंशन स्कीम को जो योजना जो आयोजित किया था, जो बनवाया था, स्पॉन्सर किया था, ये हमारे जो पूर्व वित्त मंत्री, केंद्र के पूर्व वित्त मंत्री हमारे यशवंत सिन्हा हैं, उन्होंने एक रोड मैप बनवाया था। उसी का रोड मैप से ये नेशनल पेंशन स्कीम बना। लेकिन ये भी आश्चर्य की बात है कि कुछ सालों के बाद जब मैंने एक इंटरव्यू में सुना कि यशवंत सिन्हा के वो अपने बारे बोल रहा था कि वो एक आईएएस ऑफिसर थे, वो एक आईएएस ऑफिसर थे और उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने वीआरएस रिटायरमेंट जो अटेन करना जो उम्र होता है, पीरियड होता है, वो अटेन करने के बाद मैंने सोचा कि पॉलिटिक्स में डाइव क्यों, क्योंकि आप समझ पाते हैं कि वो खुद भी विश्वास नहीं था हमारे एनपीएस के ऊपर। अभी वो जो है वो खुद भी अपने जो डिफाइंड पेंशन स्कीम के ऊपर मैंने वो विश्वास था कि वो 24 ईयर्स के बाद आईएएस सर्विस करने के बाद उन्होंने ये सर्विस छोड़ के पॉलिटिक्स में छलांग लगाया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के अंदर, पेंशन के अंदर उसको ये हर महीना में ये रकम मिलेंगे। तो यही इसी से आप समझ पाता है कि ये हमारे पेंशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स हमारे कर्मचारियों के लिए ठीक नहीं। मेरा केवल यही निवेदन है सरकार को कि मेरे कोई पॉलिटिकल इंटेंशंस नहीं है। मैंने कर्मचारियों का मन की बात सुना,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा कहता है कि मन की बात सुनना है, तो इसी आधार पे मैंने इस सदन पे ये पेश किया। मैं निवेदन करता हूँ हमारे उप मुख्यमंत्री को कि काइंडली हो सके तो इस रेजोल्यूशन को पास कर दीजिए। आपको प्यार, हमारे जितने भी नए पेंशन स्कीम्स के आधारित जो जितने भी सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको हमेशा शुक्रगुजार होंगे। इसी बात पे मैं फिर से हमारे सरकार को दरख्वास्त करता हूँ कि हो सके तो इस रेजोल्यूशन को पारित करें और ये ओल्ड पेंशन स्कीम पे अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए वापस हम उस पर जाएं। थैंक यू वेरी मच। I believe all the members are too tired to take part, so I'll request Finance Minister to reply. Mr. Speaker, sir, before I make my replies to the notice of resolution made by Honorable MLA, I would like to express my heartfelt gratitude to all the Honorable MLAs for participating wholeheartedly in this. My sincere thanks to all the citizens for being partners in the development history of our state. Suggestions from our citizens, community-based organizations, NGOs, youth organizations, women associations have been crucial in the process of budget preparation. We received around 250 responses on Jan Bhagidari portal. I would also like to thank members of the media, government officers and others for their participation and contribution. I would like to thank our Honorable Prime Minister, who has always guided and motivated us to perform better with the expectation of our citizens. I would like to thank him for his personal interest in the development of this region. I also sincerely thank Honorable Chief Minister to guide the planning and finance team in preparing the budget documents. I also thank the learned Chief Secretary for his constant guidance and support throughout the preparation of this budget. I also thank the Principal Secretary Finance, Commissioner Planning, and all their officers of Planning and Finance Department for working day and night to bring out a most pragmatic reform and perform-based budget. Now I will go to the replies to the resolution made by Honorable MLS Sri Muchu Mithi on reversion of national pension system to old pension system. Honorable Speaker, sir, GPF, which is known as General Provident Fund. The General Provident Fund was never part of a government employee's pension. It is incorrectly presumed that the old pension scheme had anything to do with General Provident Fund. These are two different things. Under the old pension scheme, pension was paid by the government on the basis of number of years service rendered. Employees who join government on or before 1/1/2008 do not to contribute to their pension. General Provident Fund is a provident fund which employees make their own individual contribution, which is returned to them at the time of retirement along with interest. Under the new pension scheme, employees have to make a
predetermined contribution to their own pension kitty. Based on their contribution, the government deposits a matching employer share grant, which is presently at a maximum of 10%. This has recently been enhanced to 14% by Government of India as employer share, and the same has been adopted by our state government. As such, employees are not expected to make contribution to General Provident Fund. However, still free to make such additional contribution to the Public Provident Fund as they may choose. The employees who are covered under GPF are entitled for pension under CSS Pension Rules 1972, where pension is 50% basic pay of the last pay draw, and later on dearness relief is added as per entitled, which is guided by the Government of India. Towards this payment, employees don't have to make any contribution. National Pension Scheme, National Pension System, NPS. New pension system has replaced the old pension system for all central government employees, whereby an authority is known as National Pension System is established to promote all as income security by establishing, developing and regulating pension funds to protect the interests of government employees after 1/1/2008 in the state of Arunachal Pradesh. The state government is following the central government rules pertaining to service matter and pay structure adopted by the state Arunachal Pradesh adoption of Law Order number 04/1989, and so the NPS has to be automatically adopted by the state government for the regular government employees. The Government of Arunachal Pradesh on adoption of Central Pay Commission. The Government of Arunachal Pradesh on adoption of Central Pay Commission structure are following the Central Pay Commission recommendation, and the salaries of all regular government employees are paid on the lines of Central Pay Commission structure. And the latest one in the line is the 7th Central Pay Commission. New pension system is a defined contributory pension scheme. It is mandatory for all the regular government employees to subscribe to the national pension system. The Government of Arunachal Pradesh has adopted national pension system for all regular government employees with effect from 1/1/2008. The government employees who are under the national pension system regime have to contribute a minimum of 10% of the basic pay plus DA on a monthly basis, and an equal amount of 10% of contribution is made from the government side. The contribution amount is kept under the National Pension System Trust account, which is regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. Directorate of Accounts and Treasuries is the nodal department dealing with the national pension system. The state government has also approved for enhancement of government contribution from 10% to 14%. This will be directly benefit the government employees. All states of the Union of India except West Bengal, all state of Union of India except the West Bengal has adopted national pension system. However, even the West Bengal, the central government employees are covered under national pension.
Government of India has adopted national pension system under the Central Pay Commission structure. Arunachal Pradesh has adopted the Central Pay Commission structure of Government of India. It is Government of India which regulates the Central Pay Commission structure, and Government of India has adopted national pension system. Therefore, there is no option but to adopt the national pension system. However, in the case of government, in case the government decides to revert back to the old pension scheme, discarding national pension system, we require to have a separate state pay commission, delinking from the central pay commission. In case we opt for separate state pay commission, the government employees will actually be losing the benefit of central pay commission structure and will not be getting the high emolument, salary, pay package and other benefits which they are getting at present. Normally, under the state pay commission, pay salary is lesser than the central pay commission. Speaker, sir, do all of us sitting in this august house decide to rip off the high emolument, salary and pay package of our government employees? I personally do not think so. Being a welfare government, we will not be in favor of withdrawing the benefit of government employees from Central Pay Commission structure and put them at the risk of drawing lower salary. Even the government employees who have joined after 1/1/2008 under the National Pension System are enjoying the benefit of Central Pay Commission structure and high pay structure, and their take-away home pay package is higher. So in the interest of our government employees and considering the holistic approach, and considering the holistic approach of a welfare government to provide best of the resources to its citizen, government employees being one of them, I ask the honorable member to withdraw the resolution in overall interest of our government employees. Thank you, Mr. Speaker. Honorable member. Adhyakshi, I would of course agree to certain points given by the Honorable. He's a very senior person, and a request from him, his side, of course, वो हमारा पिता सम्मान है, और ऐसे भी हमारे ये रेजोल्यूशंस तो हारना ही है वोटिंग पर जाने से, उस पर तो कोई अलग बात है ही नहीं। ये एक ज़रिया था कि सरकारी कर्मचारियों को जो आवाज़ है आप में पहुंचाने के लिए। मैं इसको विद्रोह तो करता हूं क्योंकि हमारे पिता सम्मान जैसे डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है, पर मैं भी ये भी सलाह देनी चाहता हूं कि हो सकने से भविष्य पर एक बहुत सारी स्टेटों ने कमिटी सेटअप किया टू स्टडी इट एनालिसिस। What is the final outcome is a different matter, but to study it, to go deeply into wise with the financial experts is also very much required to make the government employees understand whether, how can you explain to them कि ये ऐसा है या इस तरह है। मेरा दरख्वास्त यही है कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी को कि भविष्य में कहीं नहीं आए कि आप कमेटी गठन कीजिए, तो इसी बात से हमारे अपने जो सरकारी कर्मचारी है जो एनपीएस के अंदर फॉल करते हैं और जिसका विचार बहुत ही अलग है, व्यूज़ जो अलग है, क्योंकि उन लोग को सहना पड़ रहा है ये एनपीएस सिस्टम के अंतर्गत। मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त की पत्नी, उसका निधन हुआ जस्ट 2-3 महीना पहले। उनका जो एनपीएस सिस्टम के अंदर उनको जो एमुलमेंट मिला, उनको जो रकम भी मिला, वो कहने के भी लायक नहीं था। तो इसी वजह से मैंने सोचा और लोगों को भी बात सुना, तो ये
आपके सामने पेश करने के लिए प्रयास किया और फिर भी स्पीकर सर आई वुड बी विड्रॉइंग दिस रेजोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच सर। The private member resolution stands withdrawn. Now we have come to the end of the agenda today. There is no more business to be transacted during this current session. Before the House is adjourned, I would like to thank Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister, Honorable Ministers, Honorable Members, Chief Secretary, Commissioners, Secretaries to the Government of Arunachal Pradesh, media friends, security officers, officials of Legislative Assembly, Secretariat and Parliamentary Affairs, and all who have contributed directly or indirectly for the smooth conduct of the session. Now I adjourn the House, Sanajay. Sanajay को ताली मारते हैं।